between Chennai and Tiruvannamalai. Tiruvannamalai railway station in Tamil Nadu is 125 years old. The passenger train from Tambaram to Tiruvannamalai was running till 2007 on narrow gauge. The work relating to conversion of narrow gauge to broad gauge commenced in the year 2007, which temporarily disrupted to railway connectivity in Tiruvannamalai. After completion of conversion of railway track, the daily passenger train which was operating between Tambaram to Tiruvannamalai has not been restored. Needless to reiterate that the temple city of Tiruvannamalai attract lakhs of visitors for darshan, Lord Arunachaleswara temple and Girivalam. The Honorable Railway Minister may therefore take necessary action to resume daily direct train between Chennai and Tiruvannamalai without any delay. Thank you. Shri B. Chandrasekhar ji. Thank you, Madam Chairperson. Madam, I wish to highlight the plight of the state of Andhra Pradesh, which must be immediately mitigated by the central government. The ruling government of Andhra Pradesh is trying its best to recover from the impact of finance of an unjust bifurcation. However, the central government's move of reducing the net borrowing limit of the state by Rs 17,923.24 crores on account of overborrowing of the state during the 16 and 17 is further increased the plight caused by stressed finance. The originally fixed limited was Rs 42,472 crores, which has now been significantly reduced. This is a gross injustice, as overborrowing mentioned as was done by the previous government of the state during the financial year 2016-17, after which is the borrowing limit for the previous government should have been adjusted for the year 17-18 and 18-19. The same was not done, and it is at a critical juncture of relieving from the financial losses of the COVID-19 pandemic and an injustice bifurcation for which is the current ruling regime is being punished. Madam, since the current government has no involvement in this borrowing, the central government has set a dangerous precedent by culturing our finance. Despite multiple requests by the state government to correct this, the Ministry of Finance has not accepted our request. I urge the concerned minister to immediately resolve this issue and ensure that the state government of Andhra Pradesh does not have to suffer another injustice. Thank you, Madam. ठीक. श्रीमती अपूर्वा पोद्दार जी. Thank you, Chairman Madam. Madam, the Indian Institute of Space Science and Technology was founded in 2007 to launch a new generation of young space scientists into the control rooms of Indian Space Research Organization. It comes under the aegis of the Department of Space and offer both BTech and the integrated MTech courses focused around three main areas of aerospace engineering, avionics and physical sciences. Upon graduation, the students are typically absorbed by the ISRO subject to availability position. They are contractually obliged to work at the agencies for minimum 3 years and necessary condition for acceptance into IIST. Starting from the very first batch that joined in ISRO in 2011, former IIST students have been quitting the organization even before their stipulated contract ends, paying lakh out of their pocket to leave. The absence of culture of innovation, lack of force on research were among the issues, along with no choice in picking the area of specialization they wish to work on.
This has resulted in many graduating with one specialization and ending up working in another. I request the government to kindly intervene and take suitable policy measures to retain our homegrown talent and control the unusual high rate of attrition of students graduating from Indian Institute of Space Science and Technology in order to bolster our space program. Thank you. श्री सदाशिव कृष्ण लोखंडे जी, श्री दिनेश चंद्र यादव जी, सभापति महोदया, बिहार राज्य के पूर्व मध्य रेलवे अंतर्गत समस्तीपुर डिवीजन के सहरसा पूर्णिया रेलखंड व्यावसायिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यह अत्यंत पिछड़े क्षेत्र में अवस्थित है। सहरसा, मधेपुरा एवं पूर्णिया के बीच के दैनिक रेल यात्री काफी संख्या में सफर करते हैं, जिससे सहरसा और मधेपुरा के यात्रियों को आवागमन में भारी कठिनाई हो रही है। लंबे समय से ट्रेन का उपलब्ध नहीं रहने से उन क्षेत्रों के रेल यात्रियों को बस एवं टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है, जो काफी महंगा ही नहीं, समय की बर्बादी होती है। पूर्णिया से सहरसा के बीच चलने वाली पैसेंजर गाड़ी जो पूर्णिया से दिन के 11 बजे खुलती है और सहरसा 1:40 बजे अपराह्न तक पहुंचती है, उसके बाद पूर्णिया से सहरसा के लिए अगले दिन सुबह 6 बजे में ही पैसेंजर गाड़ी खुलती है। उसी तरह सहरसा से सुबह 6 बजे के बाद शाम 6 बजे ही दूसरी गाड़ी बनमनखी पूर्णिया के लिए खुलती है। इसलिए पूर्णिया से शाम 4 बजे सहरसा के लिए पैसेंजर गाड़ी चलाई जाए और सहरसा से पूर्णिया के लिए भी दोपहर में पैसेंजर गाड़ी चलाई जाए। उसी क्षेत्र में बरहरा से बिहारीगंज 12 किलोमीटर रेलखंड अमान परिवर्तन का काम पूर्ण हो गया है। डिप्टी कमिश्नर ने भी जांच कर ली है, उसे चालू कराया जाए। अतः माननीय रेल मंत्री से हम मांग करते हैं, सहरसा पूर्णिया के बीच पर्याप्त संख्या में जो कोरोना काल से पहले गाड़ी चलती थी पैसेंजर, उसे चालू कराया जाए। धन्यवाद। श्री महेश साहब जी नहीं है। श्री श्याम यादव सिंह जी नहीं है। श्री माने श्रीनिवास रेड्डी जी नहीं है। पहले से देखा चेक करिए। श्री श्रीनिवास ये नहीं, पाटिल जी नहीं है, ये भी नहीं। श्री MP अब्दुल सलाम साहब। अच्छा, Thank you, Madam. Madam, I hereby draw the attention of the government towards the pathetic condition of AMU Center Malappuram and request for saving an ambitious higher education project of the country. The center was established with the approval of the President of India in 2010. The DPR envisaged acquiring of autonomy by 2018 and becoming independent center by 2020. But it is very unfortunate that the center is running with only 3 departments and it has fewer than 500 students at present. All these hurdles are due to lack of funding by the government. Although the DPR had proposed for 1,200 crores, appraisals for rupees 1,004.93 crores only was sanctioned initially. The concerned departments released only 60 crores till 2017 and there was no further allocation of funds for the development of the center. AMU Malappuram Center deserves special consideration in the context of national education policy, which recommends that regions with significantly larger populations from the socio-economically disadvantaged groups should be declared special education zones. Malappuram Center of AMU was established following the SHR committee findings. I request the government to do the needful for the immediate allocation and release of at least 500 crores and for more programs from the UGC as per the DPR for saving this great center of higher education. Thank you, Madam. Thank you. श्री राजू विस्ता जी। बहुत धन्यवाद मैडम। श्री राजू विस्ता जी इधर हो मैडम। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। दार्जिलिंग और कालिंपोंग इन 2 जिलों में 4 नगर पालिकाएं आती है।
दार्जिलिंग, खरसांग, मिरिक और कालिम्पोंग। और इसके अलावा सिलीगुड़ी में एक कॉरपोरेशन है। और इन दोनों जिलों के अंदर में पिछले कुछ सालों से लगातार जो है आबादी बहुत तेजी से बढ़ी है। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि दार्जिलिंग को भारत के पर्वतीय शहरों का पहला नगर निगम होने का गौरव भी प्राप्त हुआ है और जिसकी स्थापना करीब 1850 में हुई थी। और सिलीगुड़ी जो शहर है पश्चिम बंगाल का, पूरे उत्तर बंगाल के क्षेत्र के लिए एकमात्र जो है नगर निगम है। और दशकों से इन नगर पालिकाओं में और नगर निगम के अंदर लगातार जो आबादी बढ़ी है उसके हिसाब से जो विकास के कार्य होने चाहिए या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़नी चाहिए या जो फाइनेंशियल एड राज्य सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी वो सपोर्ट नहीं रही। और जिनके कारण जो है बड़े पैमाने पर आज विकास कार्यों की बहुत कमी हो रही है। और हर शहर के अंदर में, हर पालिका के अंदर में ट्रैफिक एक बहुत बड़ी समस्या है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बड़ी समस्या है, ड्रेनेज हो, सीवरेज फैसिलिटी हो, और यहाँ तक कि जो है अमृत जैसी स्कीम की योजनाएं भी इन नगर पालिकाओं में नहीं पहुंची, जिसके कारण लगभग सभी लोगों को पीने की पानी की एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरी है। मैं आपके माध्यम से मेरी ये प्रार्थना है केंद्र सरकार से, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार का खजाना पूरी तरह खाली है। 6 लाख करोड़ के कर्जे पे आज जो है पश्चिम बंगाल की सरकार बैठी हुई है। मेरा ये निवेदन है आपके माध्यम से कि केंद्र सरकार कुछ विशेष कृपा करे इन नगर पालिका और नगर निगम में, और कुछ डायरेक्ट कुछ प्रोजेक्ट देने की कृपा करे, और साथ ही साथ हमारे जो अनुदान है उसको थोड़ा सा जो है बढ़ा करके दिया जाए, तो यहाँ पे रहने वाले जनता का जो है बहुत भला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नरेंद्र कुमार जी। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र राजस्थान झुंझुनू जिले में पानी की बड़ी समस्या पैदा हो गई है। जिले में गिरते हुए भू स्तर के कारण सिंचाई लगभग बंद हो चुकी है। झुंझुनू जिला कृषि आधारित जिला है। यहाँ कुओं का पानी सूख रहा है, पीने के पानी का भी संकट खड़ा हो रहा है। यमुना नहर का पानी झुंझुनू जिले में लाने के लिए राजस्थान के सिंचाई विभाग ने यमुना नदी के ताजे वाले हेड से आवंटित जल पर दिनांक 27/10/2020 को केंद्रीय जल आयोग के साथ हुई वीसी में परियोजना को 2 चरणों में क्रियान्वयन करने का निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत पेयजल हेतु प्रथम चरण में कार्य किया जाएगा तथा सिंचाई हेतु परियोजना का द्वितीय चरण में किया जाएगा। परियोजना की डीपीआर केंद्रीय जल आयोग को दिनांक 8/1/2021 को प्रेषित कर दी गई है। डीपीआर के अनुसार प्रथम चरण की लागत रुपये 14,204.81 करोड़ एवं द्वितीय चरण की लागत राशि 17,162.04 करोड़, कुल लागत राशि रुपये 31,366.86 करोड़ आंकी गई है। कई बार जिसके लिए उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई हैं, लेकिन परिणाम शून्य है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान के झुंझुनू जिले को जल्द से जल्द यमुना नहर के ताजेवाला हेड से पानी दिलवा जाए। जय हिंद। निखिल खाडसे जी। मैडम, सिकल सेल एनीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में अब तक इसका कोई सटीक इलाज खोजा जा सका नहीं है। अब तक हुए शोध से पता चलता है कि सिकल सेल एनीमिया बीमारी प्रमुखता से अनुसूचित जनजातियों में पाई जाती है। ये माता पिता के जीन से संतान को मिलती है। सिकल सेल सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रक्त आनुवंशिक रोग है। कैंसर, डायबिटीज, एड्स आदि के लिए भी कोई निश्चित उपचार नहीं है। इसके बावजूद इसके संबंध में जन जागरण किया जाता है और इसकी रोकथाम और लक्षणों के उपचार की व्यवस्था की जाती है। सिकल सेल के साथ ये नहीं किया जा रहा है। सिकल सेल के प्रभावित लोगों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने की व्यवस्था है, जो हर 1 और 2 साल में रिन्यू करना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करती हूँ कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट दिया जाता है वो परमानेंट दिया जाए, कि जिसके कारण इन लोगों को उसका फायदा हो सके। और उसके साथ ही
इस रोग को रोकने के लिए और इसके उपचार की व्यवस्था करने के लिए भी आपसे मैं निवेदन करती हूँ। धन्यवाद। श्री श्रीनिवास दादा साहेब पाटिल जी। मैडम, मैं आपका आभारी हूँ। शायद मेरा नाम जब पुकारा था तब मैं ट्रैफिक ब्लॉक में था। मेरे लोकसभा क्षेत्र में जिला स्तर पर केंद्रीय विद्यालय हो, ऐसी मेरी उम्मीद कहीं जैसे ही एमपी बन गया तब से थी, और मैं उसका टेस्टिंग भी कर रहा हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रम से प्रसिद्ध हुआ सातारा जिला और आदरणीय शंभू छत्रपति महाराज, इनके मुल्क में मुगलों की और उसी जमाने से ये लड़वैया जमात वहां है। 2 जून 1962 में यशवंतराव चौहान जी ने यहाँ सैनिक स्कूल निकाला। मेरे ही सतारा जिले के कई लोग, हर घर में एक एक आदमी, एक एक नर आर्मी में है, और केंद्रीय सर्विस में बहुत सारे लोग हैं। ये बोलना होगा। सतारा जिले में केंद्रीय विद्यालय नहीं है, नियर बाय कोल्हापुर में नहीं है, रत्नागिरी में नहीं है, सांगली में नहीं है, और हमें खाली 10 एडमिशन होते, 7 आमदार होते और 3 खासदार होते। मेरी बहुत दिनों से मांग है कि मेरे जिले में केंद्रीय विद्यालय हो और लड़ने वाले जमात में के बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा मिले। मैडम, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। थैंक यू। आइटम नंबर 17, संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2022। माननीय श्री मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आज ये लोकसभा में त्रिपुरा राज्य से संबंधित इस विधेयक को विचार हेतु लाया गया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश के जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य हो रहे हैं। उसी कड़ी में इस तरह के संवैधानिक अनुसूचित जाति जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक के माध्यम से त्रिपुरा से संबंधित, जिसमें कुकी समुदाय, जो कुकी समुदाय है राज्य के क्रमांक 9 में अंकित है, उसी के सबकास्ट के रूप में डारलों को सम्मिलित करने के संबंध में लाया गया। वो इसलिए कि पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे एक ही समुदाय के लोग विभिन्न सबकास्ट के दृष्टि से हैं, और ये किसी न किसी रूप में लंबे अरसे से छूटे हुए थे, और इस कारण यह विधेयक सदन में लाया गया है। और आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की लगातार रुचि रही है ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में, और ये अमृत काल के समय जब हम पूरा देश अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो इस अमृत महोत्सव के समय हम इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो ऐसे समस्याओं का निदान करते हुए कैसे जनजातीय समुदाय को विकास के लिए तीव्र गति से आगे लाया जाए। और आपको यह निश्चित रूप से और देश को इस बात से खासकर जनजातीय समुदाय अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज़ादी के लंबे कालखंड बाद इस देश में आदिवासी गौरव दिवस के रूप में एक तिथि निर्धारित की गई है महान स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के नाम पर।
तो ये इस बात को दर्शाता है कि जहाँ एक तरफ हम जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय लोगों के प्राइड को, उनके स्वाभिमान को, और दूसरे तरफ इसके साथ ही उनके डेवलपमेंट को सुनिश्चित करें। लगातार यह मंत्रालय उस क्षेत्र में कार्य कर रहा है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कि आने वाले दिनों में हम उसका अच्छा परिणाम देख सकें, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे वो रोजगार में हो। अभी 377 के अधीन मैं सुन रहा था कि जो ट्राइबल एरिया है, उस ट्राइबल एरिया में एक बड़ी आनुवांशिक समस्या है। उस समस्या के निदान के लिए भारत सरकार और यह मंत्रालय संवेदनशील है। इस पर रिसर्च का कार्य ICMR के साथ मिलकर के और साथ ही साथ हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर और हमारा मंत्रालय पूरे देश भर में राज्यों के अंदर सबके साथ मिलकर किस तरीके से बेहतर एवं प्रभावी व्यवस्था खड़ी की जाए, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसी तरीके से आपको जानकारी है कि भारत सरकार का यह मंत्रालय जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए, ताकि शिक्षा में खासकर उन सारे समुदायों को, सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जिनका एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है और एक जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति के साथ आदिकाल से रहने वाले लोग जो विविध क्षेत्र में रहकर अपने आप को लंबे अरसे तक सांस्कृतिक विरासत के साथ जीने का, परंपरा का निर्वहन किया है, जो अछूता है। तो ये जो विधेयक आज आपके सामने लाया गया है, ये विधेयक उसी दृष्टि से है और जिसके माध्यम से हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किसी भी राज्य के वैसे लोग जो इस तरह के राज्य सरकार के द्वारा जो एक व्यवस्था है कि उसकी रिसर्च की जाती है और रिसर्च के माध्यम से यह सुनिश्चित की जाती है कि उसमें जो ट्राइबल कैरेक्टर है वह ट्राइबल कैरेक्टर मेंटेन हो, वह उसके चारित्रिक गुणों में आए और उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को भेजी जाती है। भारत सरकार की जो प्रविधियां हैं, जो व्यवस्था है, उसके तहत विभिन्न स्तरों पर इसकी समीक्षा उपरांत इसको वेटिंग करने के बाद, इसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत सदन में लाया जाता है। आज बेहद प्रसन्नता है कि आज त्रिपुरा के वैसे जो पिछले कई वर्षों से उपेक्षित रहे हैं, जो कुकी कास्ट के है और सब कास्ट के रूप में डारलोंग कम्युनिटी है, वह उसके बारे में यह सदन विचार कर रहा है और मैं यह आशा रखूंगा कि यह सदन इसको पारित करे और इस पर यहाँ जो डारलोंग कम्युनिटी है उसको न्याय दे। श्री द्युत बारदोलोई जी। धन्यवाद महोदया। जैसे माननीय मंत्री जी ने कहा कि दिस बिल seeks to amend the part 15 of the schedule to 1950 order, which specifies the scheduled tribes in the state of Tripura. Tripura has 19 very distinct recognized ethnic tribal groups, and among these 19 distinct ethnic tribal groups, there are also 9 distinct tribal languages used by these tribal people. The bill seeks to recognize the Darlong community as a sub-tribe of the Greater Kuki tribe in the list of the STs in the state of Tripura. Now, it is heartening to know that this particular tribal group, the Darlong community, is comparatively more advanced in Tripura because the literacy rate, the education rate in comparison is high among the Darling community, and there is no question of not supporting this move of the government. Let me tell you one thing. But, sir,
what is intriguing about this sudden move of the government to bring this bill and having it passed in the parliament is this, because Tripura is going to elections very soon. And it is known that the ruling party here, the government, is a past master of game of giving out election-oriented different measures. Nothing harm in it, but actually that is what is intriguing, because government is probably hoping to reap political benefits by singling out Tripura just before the elections that are going to take place in a couple of months. Why I am telling you this, that ये बिल तो अच्छा बात है, ये ट्राइबल स्टेटस देने में हम लोगों का सपोर्ट तो होगा, लेकिन जो खुखलापन है ये मूव में, मैं यही बताना चाहूंगा कि देखिए करंट जो बिल, ये जो बिल मंत्री जी ने पेश किया है, current bill has not estimated expenditure for the welfare of the proposed inclusion of tribe or accounted for the budget outlay. Decreasing accountability. More recognition is not sufficient. Only recognition is not sufficient. Need to commit funds and concrete policies. Why I am telling you this? The financial memorandum of the bill says it is not possible to estimate the likely additional expenditure to be incurred on this account at this stage. However, the expenditure, if any, shall be accommodated within the approved budgetary outlay of the government. जो existing पैसा है, जो प्रावधान है, उसी में से ये tribal community का ऊपर खर्चा किया जाएगा. I just wanted to point out, महोदया, कि according to the Niti Ayog's allocation for the welfare of civil tribe guidelines, जिसको AWSP बोलते हैं, वहाँ नीति आयोग ने ये मैंडेटरी बोला है कि it is mandatory to allocate an amount that is proportionate to tribal population. बहुत दुख का बात है कि the allocation in the financial year 2022-23 was not proportionate at all. And the scheduled caste and scheduled tribe budgets actually have a shortfall of rupees 40,634 crore and rupees 9,399 crore respectively. ये बहुत दुख का बात है. आप लोग ट्राइबल स्टेटस दे रहे हो, लेकिन ट्राइबल का बेनिफिट्स के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो प्रावधान करना चाहिए, वो तो आप लोग नहीं कर रहे हो. The budget for schemes aimed at creating jobs for civil tribes in the union budget of 2022-23 has been substantially decreased. ये ज्यादा कम हो गया है. From rupees 89.5 crore last year to rupees 11.3 crore this year. Is it not very grave matter? It's actually khokhlapan. Or the current year labor welfare scheme for STs saw a decrease from the previous year's 12.9 crore to 10.66 crore this year. The budget for STs have also lacked significant funding in areas like education and women's safety. तो यही बात मैं दोहराना चाहूंगा कि सिर्फ रिकॉग्निशन देने से नहीं होगा, उसका पीछे आप लोगों का सिंसियरिटी भी आपको दिखाना होगा कि ट्राइबल को इलेक्शन से पहले आप रिकॉग्निशन दे दो, सिडलिंग दे दो, लेकिन काम करने के लिए, वो ट्राइबल कम्युनिटी को बेनिफिट ऊपर लाने के लिए, आफलिट के लिए आप लोग क्या कदम उठा रहे हो, ये तो बिल्कुल कहीं भी लिखा नहीं है या दिखा नहीं जा रहा है. मैं यही बात बताना चाहूंगा that the union government must do more than recognition of the civil tribes and work in the direction of their well-being and development. Article सिर्फ tokenism से नहीं चलता. Article 46 of the Constitution provides that the state shall promote with special care of the education and economic interests of the weaker sections of the society, and in particular the scheduled castes and scheduled tribes, and shall protect them
from social injustice and all forms of exploitation. Mahodaya, government ने बैजबोरुआ कमिटी अबाउट द नॉर्थ ईस्ट ट्राइबल जो हमारे पॉपुलेशन है, in the context of North East, the need to meaningfully implement the Baijborua Committee report for safety and security of the North East tribal communities, which was given. This Baijborua Committee was formed by the government of India, by the government here in Delhi. Baijborua Committee submitted report, but this government never showed any sincerity in the implementation of the Baijborua Committee report. Similarly, I just want to point out, Mahodaya, the Standing Committee on Social Justice and Empowerment has found that the National Commission for Civil Tribes has been dysfunctional for the last 4 years. Don't you think it's shameful? The National Commission for Civil Tribes, जो Standing Committee ने report में कहा है कि ये National Commission for Civil Tribes has been dysfunctional for the last 4 years and has not delivered a single report to the Parliament. What do you have to say, माननीय मंत्री जी? क्योंकि ये जो National Commission of Civil Tribes है, उन्होंने कोई रिपोर्ट भी सबमिट नहीं किया है और पूरा फंक्शन भी नहीं कर रहा है, तो आप लोगों का जो सिंसियरिटी है हमारे ट्राइबल्स के बारे में, ये कि सही है, ये सही दिखाई दे रहे हैं. Standing Committee found that these reports, though finalized by the Commission, are withheld by the Union Ministry of Tribal Affairs. I'm very sorry to say, Honorable Minister, that your ministry has withheld these reports. That is what the Commission has said, Standing Committee has said, कि आपने उसको permission भी नहीं दिया शायद. जो भी हो, I think there is some explanation to be made by your ministry on this. Need to expedite working and presentation of reports, address the commissions of manpower and budget shortages so that it can actively work towards the welfare of the civil tribe communities. दूसरा बात है कि ऐसा जो revisions, structural revisions, categorical revisions जो आप कर रहे हो, इसमें data on caste is very important. We all know that no census, caste census has taken place ever since 1931. अगर कास्ट सेंसस नहीं होगा, अगर डेटा नहीं रहेगा कि कौन सी ट्राइबल एथनिक कम्युनिटी का पॉपुलेशन कितना है, उसका रिवीजन, स्ट्रक्चरल रिवीजन कैसे किया जाता है कि एससी में आएगा, एससी में आएगा, तो दिस डेटा इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड डाटा ऑन कास्ट इज इंपेरेटिव फॉर एनेबलिंग रीजनेबल conversations on categorical revisions within the civil caste, civil tribe and other backward class categories, and the legitimacy of the economically weaker section category, targeted development programs for the marginalized, and so on. It is very, very important, किंतु गवर्नमेंट ने कोई सिंसियरिटी दिखाया नहीं है. मैडम, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि there are many ethnic groups in our state, in our country, and these ethnic groups have to be recognized, क्योंकि ये जो ethnic tribal communities है, ये हमारा देश का धरोहर है, और इनको ना सिर्फ रिजर्वेशन, उनको कंजर्व करना है, प्रोटेक्टेड करना है, उनको डेवलप करने के लिए काम करना है. अभी ये जो ट्राइबल एथनिसिटी के बारे में जो मैं दो शब्द बोलना चाहूंगा मैडम, कि देखिए द ट्राइबल पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, वी ऑल नो दैट, हैज एंड्योर्ड historic and systematic discrimination over the ages. According to the Tribal Health Report of 2018, madam, 55% of our country's tribal population now resides outside their traditional habitats. वो पहले जो रहते थे, उनसे उनको भगा दिया जाता है. तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि और एक मिनट मैडम मैं बोलना चाहूंगा. The report cites the census of 2011 that found 32% decline in their villages where पहले 100% tribal population था. और जो illiteracy का रेट है, ट्राइबल हेल्थ रिपोर्ट बताया है 41% of the tribal population is illiterate in comparison to 31% of the non-tribal population. मैडम, ये इसके बारे में मैं और एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा असम क्षेत्र में 6 कम्युनिटीज है. हमारा ये 6 कम्युनिटीज है, तायाहुम, कोच राजवंशी, सुटिया, मोरान, मटक
and tea tribes. ये 6 communities को लगातार बीजेपी सरकार ने उनको आश्वासन दे रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी पार्टी, ruling party, that's why I'm mentioning BJP, the ruling party, in the run up to the 2014 का जो इलेक्शन हुआ था, लोकसभा इलेक्शन, उसी समय आप लोगों का बड़ा बड़ा नेतागण असम में जाकर उस कम्युनिटीज को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को सीडलिंग हम करेंगे। फिर 2016 में असम का जो असेंबली इलेक्शंस का पहले फिर ये पार्टी का टॉप लीडर्स जाकर इस कम्युनिटी लीडर्स के साथ मीटिंग करके उन लोगों को आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों का क्या जाएगा, सीडलिंग क्या जाएगा। सिर्फ यही नहीं, जो विजन डॉक्यूमेंट दिया गया था 2016 में मैडम बीजेपी का, वहां में भी प्रॉमिस किया था कि 6 कम्युनिटीज को दिया जाएगा सीडलिंग। और असम का जो बीजेपी सरकार है, ये बीजेपी सरकार ने रिपोर्ट देने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म किया था 2019-14 जनवरी। अभी तक वो रिपोर्ट आपका हिसाब में, आपका उत्तर में देखा गया कि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया। तो ये जो इनसिंसियरिटी है, 9 साल बीत गया 2014 से, लेकिन अभी भी आपने ये 6 ट्राइबल कम्युनिटीज जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रेट्स है, जो अपना उन लोगों का बहुत, हमारे असम का इंडिजिनियस कम्युनिटीज है, ट्राइबल ट्रेड्स है, उन लोगों का प्रोटेक्शन देने के लिए, उन लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए आप लोगों का गवर्नमेंट कुछ नहीं किया है। इसीलिए मैं बोलना चाहूंगा मैडम, जस्टिस शुड बी गिवन टू दिस कम्युनिटीज इंक्लूडिंग द 6 कम्युनिटीज ऑफ असम। थैंक यू। ऑनरेबल चेयरपर्सन, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शेड्यूल ट्राइब 1950 जो यहाँ ऑनरेबल मिनिस्टर मुंडा साहब ने लाया है, इसको समर्थन करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आज त्रिपुरा स्टेट के दार्लोंग ट्राइब्स को आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी का नेतृत्व में और अर्जुन मुंडा साहब ने इनिशिएट करके ये एसटी स्टेटस में देने का ये जो बिल लाया है, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, त्रिपुरा एक ट्राइबल स्टेट था जिसको ट्राइबल राजा ने राज किया करता था एक जमाने में, लेकिन 1949 में जब त्रिपुरा का राजा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथ मार्च हुआ, तब से लेके आज तक जो ट्राइबल एक स्टेट था, आज मार्जिनलाइज होके ट्राइबल त्रिपुरा का ट्राइबल 31% रह गया है। इसमें हो सकता है 1971 वॉर का वजह से बांग्लादेश से हमारा हिंदू आए और डेवलपमेंट गतिविधि बढ़ने के कारण पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक ये हो रहा होगा। लेकिन आज मैं हमारा फ्रेंड बोर्डोलोई साहब को ये बताना चाहूँगा, इस दार्लोंग ट्राइब को ट्राइबल स्टेटस मिलने में आज मैं इन लोगों को मुबारक भी देता हूँ और ये बताना भी चाहूँगा, 75 इयर्स लगा। आपने अभी कह रहा था कि असम में भी 6 ट्राइब्स है, आपने भी इस देश को 75 इयर्स में असम में कांग्रेस का ही सरकार था, आपने जो नहीं किया हमारा सरकार जरूर करेंगे, इसको आप चिंता मत कीजिए। हाँ, असम में जितना भी शेड्यूल ट्राइब दिया गया और अभी भी आगे भी जाके देखेंगे ऑनरेबल चेयरपर्सन, ये हमारा मोदी जी का नेतृत्व में और अर्जुन मुंडा का नेतृत्व में ये हम जरूर करेंगे, इसको भी चिंता करने का जरूरी नहीं है। दार्लोंग ट्राइब्स में चेयरपर्सन मैडम, एक तांगा दार्लोंग जिसको पद्मश्री से भी अवार्ड दिया गया है, उसका कल्चरल एक्टिविटीज नाम से कुकी का नाम ट्राइब दिया गया था, लेकिन वो दार्लोंग ट्राइब्स है, उसको आज मोदी जी के नेतृत्व में और अर्जुन मुंडा जी के नेतृत्व में जो रिकॉग्नाइज दिया जा रहा है, मैं उस दार्लोंग कम्युनिटी को आज त्रिपुरा का टोटल पॉपुलेशन से 2.15% ही पॉपुलेशन दार्लोंग पॉपुलेशन रह गया है त्रिपुरा में। वहाँ लिटरेचर भी अच्छा है और वहाँ का अपना कल्चरल ट्रेडिशंस कुकी से अलग है, मेन कुकी से,
इसलिए आज ये रिकॉग्नाइजेशन दे रहा है, इसलिए मैं मंत्री जी को और मोदी सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं इस कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज करने के लिए। आज वहां त्रिपुरा में एक TTAADC जो 31% जो ट्राइबल रह गया है, उसके लिए एक 6 शेड्यूल है, त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। मैं आपका माध्यम से मंत्री जी से भी ये कहना चाहूंगा और भारत सरकार से भी मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे हमारा असम में कार्बी ऑटोनोमस काउंसिल और इस टाइप से ऑटोनोमस काउंसिल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है ताकि वहाँ 100% ट्राइब है। बोडो काउंसिल को भी मोर देन 500 करोड़ दिया गया था और कुकी वहाँ कार्बी एंगलोंग में भी ये दिया जाता है। तो इसलिए मैं आपका माध्यम से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ट्राइबल स्टेटस देना कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन ट्राइबल को रिकॉग्नाइज करने के बाद या जिन लोगों को रिकॉग्नाइज ऑलरेडी कर चुका है उसको इकोनॉमिकल, सोशियो इकोनॉमिकल, लिटरेचर, इसको ध्यान देने के लिए सरकार इस चीज को स्पेशल TTAADC को स्टेट गवर्नमेंट का बजटरी बहुत कम है, तो इसलिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी इस ऑटोनोमस काउंसिल को त्रिपुरा में जो अभी 100% से 31% ट्राइबल भाषा है जिसमें 6 शेड्यूल है, उस 6 शेड्यूल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहिए, मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और मैडम, आज मैं मोदी सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूँ। बोडोलोई साहब, अरुणाचल प्रदेश में 12 ट्राइब को रिकॉग्नाइज इस सरकार ने लास्ट ईयर दिया गया, उसके लिए अरुणाचल प्रदेश ने भी हम भी तड़पता रहा कि 12 ट्राइब्स को रिकॉग्नाइज किया जाए। आज अरुणाचल प्रदेश में हमारा 12 ट्राइब्स को ST स्टेटस रिकॉग्नाइज अपना पहचान बना दिया 75 इयर्स के बाद। तो इसलिए मैं ये सरकार को यही मैं कहना चाहूंगा कि हमारा ट्राइबल मिनिस्ट्री में आर्टिकल 275 SCA और TSS में बहुत फंडिंग होता है, साथ में 14 स्कीम्स है जिसके लिए हमारा ट्राइबल आगे बढ़ सकता है, इकोनॉमिकली, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में। मैं आपका माध्यम से हमारा मंत्री साहब से मैं दरखास्त करना चाहूंगा कि इसका एक मैकेनिज्म आप हम सबको करना होगा, क्योंकि ये मैकेनिज्म है कि मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशंस। आज आदिवासी ट्राइबल, हम ट्राइबल से उठ चुके हैं, लेकिन बहुत रूरल इलाका में अभी दार्लोंग कम्युनिटी त्रिपुरा में हो, बहुत रूरल एरिया में रहने का सुविधा, मेडिकल, बच्चों का एजुकेशन और रोड एंड कम्युनिकेशन ये जरूरी है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ ऑनरेबल मिनिस्टर, आपका माध्यम से जितना स्कीम आप ट्राइबल इलाका में, रूरल, स्पेशली रूरल इलाका में जितना भी फंडिंग होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक मॉनिटरिंग सिस्टम किया जाए ताकि सही में जो ट्राइबल आप जंगल में है उसका सुविधा हो। आज मैं इस सदन में ऑनरेबल चेयरपर्सन में बताना चाहूंगा, जहां ट्राइबल है वहां वन है और जहां वन है वहां ट्राइबल है, क्योंकि जंगल एंड ट्राइबल आदिवासियों का जिंदगी बिना जंगल से और जंगल को संभालने के लिए देख रेख करने का सदियों से जनरेशंस ऑफ जनरेशंस हम जीते आए हैं। जंगल हिंदुस्तान में कई भाषा है जहां ट्राइबल है, लेकिन बाहर का इन्फ्लुएंस, इकोनॉमिकल इन्फ्लुएंस आके जंगल को कटाया जाता है, सारा नदियां को बर्बाद किया जाता है। इसमें ऑनरेबल मिनिस्टर, इसमें भी ध्यान दिया जाए, जहां ट्राइबल है वहां जंगल है, उस जंगल को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जरूरी नहीं है। यहां जितना मोदी साहब ने जितना मेडल अवार्ड दिया गया है, बेयरफुट में राष्ट्रपति भवन में आया, जिन लोगों ने जंगल को बचाए रखा है, तो इसलिए इसमें भी हमको एक स्कीम जुड़ना होगा कि ट्राइबल जगह में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जरूरी नहीं है,
जहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहां पेड़ पौधा को काटा जाता है। यहाँ ट्राइबल है, वहां इन लोगों को कैसे इकोनॉमिकली एनहेंस किया जाए, इन लोग को कैसे मेडिकली और एजुकेशनली, टेलीकम्युनिकेशनली इन लोग को कैसे बढ़ावा दिया जाए। मैं आज इस बिल को समर्थन करते हुए उस दार्लोंग आदिवासियों को त्रिपुरा में जो बसे कुकी का नाम से जाना जाता था, उसको आज अपना पहचान 75 इयर्स का बाद इन लोग को दिया जा रहा है। इसलिए मैं त्रिपुरा वासियों को भी, दार्लोंग वासियों को भी मैं मुबारक देता हूं और देते हुए मंत्री जी को यही मेरा कहना चाहूंगा कि आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का साथ ही जंगल को बचाने देना है और ट्राइबल को प्रिजर्व करने देना है। अपना आइडेंटिटी, कल्चर, सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ इसको भी साथ में लेके जाना चाहिए। ट्राइबल को प्रोटेक्ट होगा, वन बचेगा, ट्राइबल को प्रोटेक्ट होगा, नदियां बचेगा। ये मैं कहते हुए इस बिल को मैं समर्थन करता हूं। नमस्कार, थैंक यू। राजा जी। Madam Chairperson, thank you for the opportunity to speak on the bill, namely the Constitution Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2022. Madam, though the legislation came into existence by virtue of the constitutional provision in the year 1950, it is shock and surprise to the House, not only for me. After 70 years, still this exercise is going on the part of the government. Who is scheduled caste, who is scheduled tribe? Is it not shame on our part? Whoever within government, notwithstanding the political entity of the government so far for 70 years, is it not shame on our part to say after 70 years a tribal community is being identified by this House and the discussion is going on? Even I am telling, my submission is this exercise is not final and holistic. More demands are also there. That is why I wanted to speak on this bill. Of course, Madam, this type of exercise was started not after independence. Even before independence, the British people were so humanitarian towards us. They wanted to identify who are the scheduled castes, untouchable, unseeable, unapproachable, and the tribals. They wanted to have upliftment of these people on par with the rest of the people in the society. I welcome this bill. I appreciate the minister for taking this effort, at least to bring this bill at this belated position. But does it mean to say it is holistic? We are having a national commission for SC and ST. We are having so many mechanisms in the government. But yet, the social topography of the country has not been reviewed and redressal mechanism is not at all fully addressed. That is why this bill came into existence as the part on transit. Some more bills have to come. I will come to the latter part. I do not want to speak much. I am having only one demand for my state. Our Honorable Chief Minister, Dr. M.K. Stalin, who is also the President of our TMK party, wrote recently to the Prime Minister to include a Narikuravar community in Tamil Nadu, whose social and cultural identifications are not only unique, something distinct. They have been completely neglected in terms of education and other life facilities. Even basic amenities were not at all provided to them. They are landless poor. The education is, literacy rate is almost 0.01%. There is no representation in the government service almost. So these communities were almost neglected so far more than 70 years. In 1965, the state of Tamil Nadu demanded this Narikuravar community should be included in the tribal list. On the basis of the state government's demand, in 1969, when our beloved leader Dr. Kalainar Karunanidhi was Chief Minister of Tamil Nadu, again the attention was drawn by the central government on the basis of the recommendation made by the state government. The Lokur committee was constituted and it was referred to the joint parliamentary committee whether these two communities can be included in the tribal list. So JPC gave the recommendation, Lokur commission gave the recommendation, Director of Tribal Affairs gave the recommendation, yet National Commission for Tribals
gave the recommendation. What else you need? National Commission, state government, your director, your ministry, your cabinet, all recommended. The Narikura community in Tamil Nadu, Kurumbas community in Ooty, Nilgiris, in my constituency, they have to be included. In spite of that, so fruitful result. Of course, in 2016, the credit may go to this government. In 2016, bill was brought to this house to include these communities on the recommendation of the DMK government. But for the reasons best known to you, the bill was lapsed. My only suggestion is, knowing fully well that two communities from Tamil Nadu, Narikuravas and Kurumbas, were included through a bill, and a draft bill was submitted before this house. Pending the bill was permitted to lapse, allowed to lapse. But you are bringing another bill. What does it mean? Where is the what is the parity? You must be fair to everybody. That is why I am telling. I do not say that it should be withdrawn. You must give the Honorable Minister, and having high regards for you and the government. But at least on the floor of the house, you must give the assurance that the Narikuravas community of Tamil Nadu and the Kurumbas and Kurumbans in Nilgiris must be listed in the tribal list, since the already recommendation came to you. Yet another demand is, in my own constituency, Baduga community is demanding the same status. I am representing those people. They are having unique and separate cultural values, customary laws. They are also associated with the forest lands. They are having their own customary laws, which cannot be equated even with Hindu laws. Some unique features are in the society. They demanded for the ST status. Similarly, fishermen in Tamil Nadu, some part, they demanded for ST. They are also very poor. They are also social status very in the low position. So, what I am submitting before the house is, your intention is okay, good, but when having such intention, it must be holistic throughout the country. You are having your own system in the name of the Commission for SC and ST, even separate ST Commission you are having. So your commission, National Commission, is having a constitutional status. It is having its own mechanism. Please get the details throughout the country. Not for Tripura, not for Tamil Nadu, not for Andhra, not for Gujarat. Have a holistic study. After the study, you list out what all the communities can be included in the tribes, what all the communities can be included in the scheduled castes. That is why accusation came from the Pradyut, Honorable my friend Pradyut from the Congress, that you are politically motivated for this exercise. You may be genuine, but unnecessarily you are getting the political color on your part because it is a piecemeal. So don't have piecemeal exercise. Be fair to every part or section of this country. And as such, I am welcome this bill. Please take my demand into consideration and give some assurance. Thank you. Srimati Ji, Madhvi Ji. Thank you very much, Madam. Thank you for the opportunity to speak on such an important bill. Scheduled tribes have been one of the most deprived and neglected section of India for thousands of years. After the country got independence, our constitution makers provided constitutional protection to the deprived classes to get rid of the discrimination. Constitutional provisions under the Article 15, 16, 46, 330, 332, 335, 342 were made to give reservation to the marginalized classes in education and jobs. But despite many social security schemes by the government, scheduled tribes are living in a desperation and poverty. Now that our country is preparing to celebrate the 75th anniversary of its independence, there is an urgent need to take to concrete a meaningful steps to bring the above mentioned section into a mainstream of the country's development. Madam, it is a progressive bill as it ensures that tribal Dorlang community recognition under Article 342 of the Constitution. It will attract several benefits, including reservation in jobs and education, scholarships after passing class 10th, national overseas scholarships for the studies, national fellowships, soft loans, and free residential and food facilities in the student hostels for the communities. There is no denying that societies must not only feel the
a collective responsibility for injustice done to the communities, but also attempt to atone for it in concrete ways. The bill is significant steps in the direction to establish the tribal rights. Madam, tribal youth in India are facing inequality in terms of educational and attainment, employment opportunities, healthcare infrastructure and facilities, stigmatization, lack of proper awareness, and ecological constraints. Both the tribal men and women suffered from vulnerability during the pandemic. While the men are suffering from the loss of jobs and economic sustenance, the women are suffering from the burden from the family's economic conditions, nutrition, hunger problems, and domestic violence. Unlike initiatives taken by the other countries like Australia, Costa Rica, New Zealand, the initiatives taken by the India government are very few. Without the help of the SGHs and cooperative efforts at all the villages level, it is very difficult to conceive that the tribal could not handle the precociousness during the pandemic. Tribals are the most vulnerable to food insecurity, malnutrition, and illness. In 2019, India ranked 1 or 2 out of 117 countries in the Global Hunger Index and fall under the serious hunger category. COVID-19 and subsequent lockdown have threatened the livelihood of the tribals. Tribals are having inherent diseases, and these researchers need to study deeply for the permanent eradication. Imparting employability training skills to the tribal migrants will improve their skills and empower them to look for other income generation opportunities. The skill mapping approach will help the assessment of jobs as per their unique skill set. Employment creation via startups and small medium entrepreneurship should be encouraged by the engaging tribals to make local products. The promotion of the tribal products in collaboration with public figures will quickly push sales. Ekalavya model residence schools have been started with the support of Government of India. The objective of the Ekalavya model residence schools to provide the quality middle and high level education to the scheduled tribes students in the remote areas, not only to enable them to avail to reservation in higher and professional education courses and as jobs in the government and public and private sector, but also have access to them best opportunities in education at par with non-ST population. The ministry has sanctioned 28 Ekalavya model residence schools for the state of Andhra Pradesh, out of which 7 EMRs of Visakhapatnam and 2 for the East Godavari are not yet functional. Efforts should be made to make all EMRs functional for the comprehensive physical, mental and social development of all the students enrolled in each and every EMRS. I would like to request the central government to consider setting up the special educational zones in the scheduled areas for better educational facilities for the students from the tribal community. Especially EMR schools cannot cater to all the students. This creation for special educational zones would be extremely benefits for the current generation students from the communities to compare with the other students. There has been successive decrease in the funds released to the state of Andhra Pradesh under the scheme of grant Article 275(1) of the Constitution from the 63.9 crores in 2018-2019 to 20.5 crores in 2020 and 2021. To achieve the basic objective of the scheme to support the state government in the bridging gap of the tribal population, create must ensure the release of funds, especially for the states in the 5th schedule having more tribal population like state of Andhra Pradesh. In AP, state government too recently has specific ST sub-plan of rupees 6,145 crores, and such a system can be also followed at a national level. I would like to bring to the notice of this House the support of the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh has extended the tribal community, especially for the women. The Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh is a woman from the tribal community, and also he provides all the schemes, especially development of the women.
I would like to request the government to support the tribal communities in all states, especially ensure the budget allocation on the welfare programs do not get lapsed and are implemented effectively. Furthermore, I would like to request the government to ensure the public sector institutions are not shut down. I would like to bring to the example of Vizag steel plant. As disinvestigating, this plant would result in a loss of jobs 4,000 people from the SC and STs. If the government, instead of starting new institutions, began to shut down the institutions, the lost hope of the people from the community to get jobs also get lost. Hence, I would like request the government to create more government jobs in the government sector for the comprehensive development of tribal community, not to close down the institutions. For this, with these suggestions, I support the bill. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. Shri Dr. Pratima Mandal ji. So now I am not doctor, only Pratima Mandal. अच्छा, ओह, लेकिन यहाँ डॉक्टर लिख दिया आपको. Thank you, Madam. I rise to speak on the Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2020-22. So the bill seeks to include Darlam community as a sub-tribe of Kuki of Tripura into the Scheduled Tribes list. But the problems lying at the core cannot be solved by just including more categories into the list. The government has to make progressive changes in order to ensure development for Scheduled Tribes population. And this I say so because Scheduled Tribes fall under the category of India's poorest people, with 5 out of 10 falling into the lowest wealth bracket. And this poverty-stricken state leads to all sorts of problems that they face, be it lack of education, dependency on forest produces, or resulting to minorist activities. Here I would like to take the opportunity to mention that under the leadership of our Honorable Chief Minister Mamata Bandyopadhyay, Government of West Bengal has been largely successful in abolishing minorist activities by bringing about development in the district. Not only this, districts with highest population of scheduled tribes like Birbhum, Bankura, Jhargram, Purulia and others have reflected a significant rise in education and employment level. And some women from scheduled tribes, scheduled caste communities are receiving 1,000 rupees per month under Lokhir Bhandar scheme as a symbol of women empowerment. And people above the age of 60 years are also receiving 1,000 rupees per month under Joy Johar scheme for scheduled tribes and Taposhili Bondhu for scheduled caste. This has to be ensured in all the areas dominated by scheduled caste and scheduled tribes across the nation. Sir, Madam, the unending measures related to land for tribal population began with the increasing pressure on extracting minerals from these areas. This led to displacement of the people from their own homeland. The growth led to springing up of industries by depleting forests and thus worsening the scenario. Currently, the status of our tribal men and women affected by rampant industrialization is not even being studied. And this clearly depicts the lack of concern from the government's end. The railway connectivity projects in the northwest areas are being opposed by numerous groups of tribal people because they are fearful of being uprooted from their own cultural habitat and with no secure means of livelihood. So why should any person be fearful in a democratic country? Just ponder upon this question, and I would like to put forth my views that it is because the government is taking steps which, instead of helping people, is affecting them negatively. So, Madam, I would like to request the Honorable Minister that before using or getting the lands of tribals, the permission from Panchayat ends must be made compulsory, and government should take necessary steps in this regard.
And so because of economic backwardness and insecure livelihood, the tribal face health problems such as prevalence of diseases like malaria, cholera, tuberculosis, diarrhea and jaundice, problems associated with malnutrition like iron deficiency and anemia, high infant mortality rates, low levels of life expectancy, etc. The government must allocate more funds and set up at least one major hospitals having best facilities in all the remote areas inhabited by the tribes. Madam, the degradation of the natural environment, particularly through the destruction of forests and a rapidly shrinking resource base, has had its impact on the status of women. The opening of the tribal belts to mining, industries and commercialization has exposed tribal men and women to the ruthless operation of the market economy, giving rise to consumerism. This must be combated by promoting women's self-help group and MSMEs, which doesn't impact environment negatively. And the most critical and delicate problem faced by the tribal population of the nation is related to their identity. Increasingly, the traditional institutions and laws of tribals are coming into conflict with modern institutions, which create apprehensions among the tribals about preserving their identity. Extinction of tribal dialects and language is another cause of concern, as it indicates an erosion of tribal identity in certain areas. So government must go beyond the listed language and promote the protection of hundreds of languages spoken in the country. But along with that, I sincerely believe that English must be taught to not only scheduled tribes, but every citizen, at least youth or children of India. The language is very critical to enhance their pool of knowledge and required for every government examination as well. Sir, Madam, I would like to conclude by saying that the object of the bill is very positive, but the government cannot shrug off its duty by doing just this. It has to address the real problem and bring about positive changes, and government should bring a comprehensive bill to include more tribes into the list after a good research. Thank you, sir. And I, on behalf of my party, All India Trinamool Congress, support the bill. Thank you, ma'am. चुनाव में चलना है ना त्रिपुरा चुनाव में चलना है ना तृणमूल कांग्रेस। आदरणीय चेयरमैन मैडम, एक अच्छा बिल सरकार ने लाया है। मेरे मित्र अर्जुन मुंडा जी लेकर आए हैं, उनका स्वागत करता हूं। लेकिन कुछ मुद्दे जो महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि आज श्रद्धेय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया, तभी संविधान में उन्होंने आरक्षण का मुद्दा लेकर आए। क्यों लाए? पिछड़े वर्ग, जाति से, समाज से, ऐसे पिछड़े वर्गों का उद्धार करने के लिए उन्होंने उसका प्रावधान अपने संविधान में किया। 70 वर्ष के बाद में भी आज भी वो कुछ लोग पिछड़े आज भी है, और आज भी हम उनकी समस्या का निराकरण नहीं कर पा रहे। मैंने अभी थोड़ा सा मेरे मित्र अर्जुन जी से पूछा कि हम हर रोज एक एक बिल क्यों ला रहे हैं, आज त्रिपुरा के लिए, कल उत्तर प्रदेश के लिए। मैं इस बारे में बहुत बार बोलता आया हूं कि महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था, स्पिरिचुअलाइज द पॉलिटिक्स। हम लोग तो पॉलिटिसाइज कर रहे हैं कास्टिसिज्म, पॉलिटिसाइज कर रहे हैं स्पिरिचुअलिज्म ऑल्सो। तो बोथ दीज थिंग्स आर बीइंग पॉलिटिसाइज। हम राजनीतिक दृष्टिकोण से इसका निर्णय नहीं लेना चाहिए, सामाजिक दृष्टिकोण से लेना चाहिए। स्वराज्य, समता और बंधुत्व, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इस प्रिंसिपल को लेकर ये संविधान में आए, सारे प्रावधान आए। आज हम अभी महाराष्ट्र की बात करते हैं। मैं बहुत बार बोला हूं 7 बरस। अर्जुन जी, मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरे मित्र हैं, ये जो स्थिति है उसको अगर आप देखोगे, हर राज्य में जाति के नाम, उच्चारण, शब्द, अक्षर, उसमें थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, काम वही करता है। चर्मकार चर्मकार है, बौद्ध बौद्ध है, उसके जाति में थोड़ा सा इधर उधर अक्षर का, शब्दों का भी नहीं, अगर फर्क हुआ तो उसको उसकी सहूलत मिलती नहीं है, सुविधा मिलती नहीं है। जैसे अभी महाराष्ट्र में धनगर, अभी यहाँ धनगढ़, अब धनगर मीन्स अंग्रेजी में कहो तो शेफर्ड। वो धनगर समाज
महाराष्ट्र में कितने सालों से बात कर रहे हैं कि हमें उसमें हमारे आरक्षण मिलना चाहिए, एससी में मिलना चाहिए, एसटी में मिलना चाहिए, वो आप देखिए कर रहा है। धोबी समाज ऐसे बहुत सारे हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कहते हैं कि गवर्नर साहब के जरिए आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी पूछेंगे और उसका प्रावधान करेंगे। गवर्नर साहब को कौन बताएगा? राज्य बताएगा ना, राज्य की सरकार बताएगी। मेरी आपसे प्रार्थना है, एक बार आपकी तरफ से एक पत्र सभी राज्यों को जाने दो और सभी राज्यों को पूछो कौन सी जातियां पिछड़े वर्गों में हैं जो आज भी हमारे संविधान के तहत उनको ये सहूलियतें मिलती नहीं है। अब अगर जैसे धनगर की बात की, धोबी की बात की, इसको देखेंगे तो ये सारी चीज किसने किया था? हमने, हमारा जो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जो सोच थी वो क्या थी? उनकी सोच थी शिक्षा में उनको आगे बढ़े, समाज में उनका आर्थिक स्थान है ऊपर हो जाए। अब जब शिक्षा ही नहीं तो नौकरी कहां से आएगी? नौकरी नहीं आए, व्यवसाय नहीं है तो आर्थिक स्थान कहां से आएगा? तो शिक्षा मूलभूत होती है। मराठी में उन्होंने कहा था, शिका संगठित व्हा आणि संघर्ष करा। पहले सीख लो, संगठन करो और फिर बाद में संघर्ष करो। जिंदगी भर संघर्ष ही करते रहेंगे, कभी बाहर आएंगे इससे ही बाहर। वो दिया, एक सोच दी, लेकिन भाई इससे बाहर निकलना चाहिए। आज भी हम देखेंगे, अभी हम आप देखिए बहुत सारे लोग डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट की भी बात कर रहे हैं। मैं अलग दूसरी बात करूंगा, निजीकरण की बात करूंगा। हमने जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी ली, अगर हमने, आप सोचिए क्या आरक्षण देके समाज को क्या करने वाले हो? एजुकेशन में मिल सकता है थोड़ा सा आरक्षण, अगर एजुकेशन में आरक्षण मिला, नौकरी कहाँ मिलेगी? सब तो निजीकरण हो गया। वेयर इज द रिजर्वेशन फॉर दैट? अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो रिजर्वेशन देंगी, बाहर कौन देता प्राइवेट में? और वही निजीकरण में भी सारा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई परमानेंट जॉब नहीं रहा। अभी मिलेगा क्या? इतना दूर आने के बाद में भी हमारे महाराष्ट्र में मराठा समाज, बहुसंख्यक जो मराठा समाज है, रास्ते पर आया हुआ है। वो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है, मेजॉरिटी है, लेकिन बिलो 5 एकर्स ऑफ लैंड वाले महाराष्ट्र मराठा समाज सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको। परिवार बड़ा, पहले कभी था 25 एकड़ 50 एकड़, अब उसके बंटवारे हुए, 5 एकड़ से जमीन कम है, जात उचर है, नौकरी में नहीं मिलता, शिक्षा में नहीं मिलता, सोशली बैकवर्ड हुए, एजुकेशनल बैकवर्ड हुए, रास्ते पर आ गए। लाखों मराठा रास्ते पर आए, ओबीसी का आरक्षण के लिए झगड़ रहे, हम नहीं करते। मेरा कहना है कि मेरी प्रार्थना है, कहना मतलब प्रार्थना है आपसे, ये झगड़े है ना, बाला साहब तो अलग विचार के थे, वो तो जाति नहीं मानते थे, उसने तो उन्होंने मंडल कमीशन को विरोध किया था। जाति की दीवारें धूड़ होगी, पक्की हुई। मैं और अर्जुन एक थाली में खाता था, लेकिन आज मुझे याद आता है अर्जुन के बेटे को एडमिशन मिला, मेरे को नहीं मिला, मेरे बेटे को उससे अंक ज्यादा मिले फिर भी नहीं मिला। फिर मेरे मन में आपके बारे में द्वेष पैदा हो रहा है। ये जो दीवारें हम खड़ी कर रहे हैं ना, उसको सोचो, अमीर और गरीब, गरीब किसी भी जात पात पंथ धर्म का हो, वो गरीब है, उसका गरीब का उद्धार करने की बात आती है। ठीक है, हम जाति न्याय कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब कर सकते हैं, शेड्यूल कास्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ग हैं। तो ये अगर सोचना है तो मैं आपसे बात प्रार्थना करता हूं, एक बार राज्य को आप लिखिए, हर राज्य को लिखिए, एक बार बता तो दो। और इतना नहीं, सिर्फ जात नहीं बताओ, उनका पॉपुलेशन बताओ, उनका पिछड़ापन बताओ, ऐसे करो। और उसी पर एक बार ऐसा बिल लेके आओ कि आगे चलकर, जैसे अभी राजा 70 साल तक हम यहाँ इसी चीज पे बातें करते रहे, कोई भी होने तो राज्य ने सरकार, लेकिन इससे बाहर निकलना है कि नहीं निकलना है? अगर बाहर निकलना है तो एक ही बार करो। और समस्या आगे है, आरक्षण देने के बाद क्या होगा, उसका उद्धार कैसे होगा? आज भी शिक्षा के लिए नदियों के पीछे, पहाड़ों में, जंगलों में स्कूल नहीं है, ना तुम्हारा डिजिटल नेट है, ना तुम्हारी ऑनलाइन है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे बड़े होंगे? सिर्फ जाति का आरक्षण देकर राजनीति नहीं, उद्धार सही मायने में करना है तो राज्य को भी जिम्मेवार बनाओ कि भैया हम दे रहे, केंद्र की जिम्मेदारी आरक्षण देना, हमने दे दिया, अब उनको फैसिलिटेट करो, उनको पढ़ाओ। जब पढ़ेगा नहीं तो जैसे बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ कहते, तो पढ़ाओ तो बढ़ेगा ना, पढ़ेगा तो बढ़ेगा, पढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा क्या? उसको पिछड़ापन है। इसको लेकर आप अगर ये विषय लेंगे, स्वागत करता हूं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं, ये रोजाना नहीं चलना चाहिए।
एक बार टुकड़ा दिखा दो। जितनी भी पिछड़े वर्ग है, पिछड़ी जातियां हैं, उनको अगर न्याय देना है तो एक बार अच्छा बिल लेकर आओ, ताकि देखो अर्जुन जी, नाम अर्जुन है, इतिहास में भी, लोकसभा के इतिहास में भी एक ऐसा अर्जुन निकला कि जिसने लक्ष्य पर बाण मारा और सभी जातियों को न्याय दिया। ऐसा भी होना चाहिए। काम आपके शुभ कार्यकाल में हो जाए, ऐसी शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। श्री मोहम्मद फैजल जी। Thank you so much, Madam, for allowing me to participate in this Constitution Amendment for Scheduled Tribe Order 2022, and I am thankful for my party for giving me this opportunity. I was listening to the Honorable Minister's introductory speech, and he was very voraciously he was telling that these bills are for the development, upliftment of the scheduled caste and scheduled tribe people across the country. My first introduction, I would like to say that I am very well supporting this bill. There is no doubt on this. Our party is also on the support of it. At the same time, what Mr. Raja have told here, same thing I would like to reiterate here. See, being a member of parliament from Lakshadweep, this is my second term. I also had same issue that this is a very simple issue. This is, I was listening to my colleagues talking about including a group of community for this. But my point is that in Lakshadweep, there are nearly 3,000 children whose either father or mother belong to scheduled tribe. Father or mother belong to scheduled tribe, but since the act is saying that if to the offspring, if scheduled tribe status should be granted, both the parents should belong to scheduled tribe. Because of that, now the fate of those children in Lakshadweep, nearly 3,000 की आसपास है सर। आज उनको न शेड्यूल ट्राइब कहा जा सकता है, न शेड्यूल कास्ट कहा जा सकता है, ओबीसी नहीं कहा सकता है, और इनके लिए जो एजुकेशनल एड्स देना चाहते हैं वो भी नहीं दे पा रहा है। एम्प्लॉयमेंट्स के लिए जो उनकी रिजर्वेशन होता है वो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आपसे पहले जो जुअल ओराम जी थे तब भी मैंने ये पत्र लिखा था। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन से मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ उसके लिए प्रपोजल भी भेजे गए थे। तो जब ऐसी एक अमेंडमेंट लेके आता है तो मेरे माननीय मंत्री जी से और गवर्नमेंट से गुजारिश ये होगा कि ये पूरी इंडिया को मद्देनजर रखते हुए, जहां तक ऐसे कौन सी सफर कर रहा है, कौन सी एरिया में शेड्यूल ट्राइब की प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सबको साथ में लेकर अगर एक बिल, एक कॉम्प्रिहेंसिव पैन इंडिया बिल अगर लाते तो इसका हम पूरी सपोर्ट हम कर सकता था सर। आज भी अगर लेट नहीं है सर, आपसे मैं गुजारिश करूंगा सर, लक्षद्वीप की इशू है, ऐसे सारे सब जगह पे इशू होता है, महाराष्ट्र में है, केरल में है, तमिलनाडु में है, सब जगह पे अपने पे डिमांड है। तो इस डिमांड को एक कंसोलिडेट करके सर, जिनको दर्जा देना चाहिए उसकी स्टेट गवर्नमेंट की सपोर्टिव में है, तो वो सारी चीजें आप एक बार मद्देनजर रखते हुए इस सारी चीज को, क्योंकि वी आर सेलिब्रेटिंग दी आज़ादी की अमृत महोत्सव ऑफ 70 years of independence, 35 years of independence. आज भी वी आर ब्रिंगिंग इन पीस मील लाइक आज त्रिपुरा का हो गया, कल यूपी का हो रहा है, परसों कहीं तमिलनाडु का होगा, फिर महाराष्ट्र का होगा। ऐसी चीजें लाने से अच्छा होगा कि एक साथ मिलकर कहाँ इशू पॉलिटिकली वी कीप असाइड, बिकॉज दिस इज फॉर आवर फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि जिनको मिलना चाहिए जो वो देने के लिए आप कृपया इसका कष्ट उठाए। ये मेरी पहली इंट्रोडक्टरी रिक्वेस्ट आपसे है। दूसरा है सर, आप डेवलपमेंट के बारे में, शेड्यूल ट्राइब के बारे में आपने बताया कि एक बॉर्डरिंग स्टेट है हमारा लक्षद्वीप का। सर पिछली एक साल से लक्षद्वीप में अगर आप बताएंगे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कितना जनरेट हुआ, अगर पूछेंगे एक भी जनरेशन नहीं हुआ। उसके बावजूद उसके साथ क्या क्या हुआ, मतलब 2000 के ऊपर जो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता था, प्राइवेट सेक्टर छोड़ दे, प्राइवेट सेक्टर उतना कम है, गवर्नमेंट सेक्टर में 2000 के आसपास, यानी कि डॉक्टर से लेके पंचायत की कर्मचारी तक, जिनको कॉन्ट्रैक्ट और कैजुअल लेबर कहा जाता है, 2000 के ऊपर लोगों को रिटेंच कर चुका है। इसकी आंकड़ा मैं बताना चाहूंगा सर, एक महीने में लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था से 2.5 करोड़ रुपए वहां से हट गया।
यानी कि इकोनॉमिक सर्कल से लक्षद्वीप से 2.5 रुपये अगर एक महीना हटता है, एक छोटी जगह जहां की आबादी है 70,000, वहां से 2.5 करोड़ रुपीस की अर्थव्यवस्था से हट जाता है, तो वहां की इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में आपको अंदाज लगा सकता है। ना वहां पे दुकान, घर बनाना, बच्चों के एजुकेशन के लिए, सब जगह अभी इतनी फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है कि लोग अपनी डीमोटिवेट होने लगे हैं बच्चों के एजुकेशन को देकर। स्कॉलरशिप जिनको टाइमली मिलता था, अभी 1 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। दूसरा, अगर छोटे मोटे दुकान की परमिशन, लाइसेंस को लेकर, लाइसेंस की परमिशन रिन्यू करने के लिए जो पंचायत को दिया गया था, वो पंचायत से वो अधिकार पूरा लेके वापस डीएम के पास लेके गया। पंचायत को जो परमिशन कॉन्स्टिट्यूशनली दिया, 5 और डिपार्टमेंट का पावर पंचायत को दिया, वो पूरी वापस लेके डीएम के पास लेके गया, तो न रिन्यूअल नहीं हो रहा है। दूसरी सबसे बड़ा इश्यू है सर, वहां की लैंड मास 32 स्क्वायर किलोमीटर है, उसमें से आज लक्षद्वीप की, मैंने एक चिट्ठी भी लिखा हूं सर आपको, और कमीशन को सबको लिखा, 52,000 लाख स्क्वायर मीटर लैंड का एक्विजिशन के लिए विदाउट एनी प्रॉपर लैंड एक्विजिशन एक्ट की 2013 का जो एक्ट के हिसाब से मैं कंप्लीट कर रहा हूं, जो करना चाहता उस बिना कुछ प्रोसेस के 52,000 लाख स्क्वायर मीटर लैंड कब्जा करने के लिए, वो भी गरीबों की, पिछड़ों की, शेड्यूल ट्राइब की पूरी इतनी लैंड कब्जा करने की नोटिफिकेशन हो चुका है सर। तो आप अगर डेवलपमेंट की बात कर रहा है, आप अगर एसटी कम्युनिटी की प्रोटेक्शन की बात कर रहा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एटलीस्ट एक कमिटी लक्षद्वीप में जाके वहां देख ले क्या हो रहा है सर। मैं कंप्लीट कर रहा हूं, तो ये बिल को मैं बिल्कुल सपोर्ट करूंगा। मेरी पहली रिक्वेस्ट वही था कि लक्षद्वीप में जो बच्चे अभी 3,000 के आसपास जो बच्चे एसटी सर्टिफिकेट से डिप्राइव्ड है, उनके प्रपोजल को आप मद्देनजर रखते हुए उनको भी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस दिया जाए। थैंक यू सो मच। श्री हसनैन मसूदी जी। बहुत शुक्रिया चेयरपर्सन साहिबा। गवर्नमेंट का मंशा है कि एक अमेंडमेंट की जाए, तरमीम की जाए, जो ऑर्डर है शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर, और डार्लूंग नाम की एक जाति है उसको शामिल किया जाए इस फहरिस्त में। तो हर कोई कदम जो उठाया जाए नाइंसाफी दूर करने के लिए, तो उसकी सराहना करनी चाहिए, और ये भी ऐसा एक कदम है। लेकिन क्या ये खुद में एक लक्ष्य है, खुद में ये एक एंड है? इज इट एंड इन इटसेल्फ? आपने सिंपली किसी को नॉमिनेट किया, किसी को इंक्लूड किया, इज दैट एंड इन इटसेल्फ? होता क्या है, हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जैसे जो ऑनरेबल मेंबर्स है उन्होंने पूरा वजाहत के साथ कहा कि ये कि हम कुछ जो करना चाहिए उनकी बेहतरी के लिए, बहबूद के लिए, वो नहीं कर रहे। तो महज एक रस्म हो जाती है, फॉर्मेलिटी हो जाती है, आज आपने इंक्लूड किया, ये पहली बात है। तो आप प्रैक्टिकल स्टेप्स उठाइए। अब देखिए जम्मू कश्मीर में इस साल आपने जम्मू कश्मीर की सैर की, सभी ने, मिनिस्टर साहिबान आ गए, तो जम्मू से कोई 5 लाख से ज़्यादा की ट्राइबल आबादी, बकरवाल और गुर्जर अपना लाइव स्टॉक लेकर कश्मीर के पहाड़ों में जाते हैं 6 महीने के लिए। आपने देखा होगा सोनमर्ग से ऊपर वाला इलाका जहाँ आप सैर के लिए गए, पहलगाम से ऊपर वाला इलाका, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और गंडोला जो गुलमर्ग है उससे आगे वाला इलाका, वहाँ ये अपना जो माल मवेशी लेकर, लाइव स्टॉक लेकर आते हैं। अब इनके लिए नहीं कोई तालीम, के बच्चों के लिए नहीं कोई तालीम का इंतजाम, अगर इंतजाम है तो वो टेम्प्रेरी इंतजाम है, और जो भी टीचर है वो सीजनल है, उनके बाद उनकी छुट्टी की जाती है, और अगले सीजन में आधा सीजन खत्म हो जाता है वो टीचर ढूंढने में। और जहाँ पर जो बड़ी एक एम्बिशियस प्रोग्राम जो है प्राइम मिनिस्टर का, उज्ज्वला योजना, और जो हमारी बहनें हैं इस कम्युनिटी से, उनको वो जो एलपीजी सिलेंडर से वो मैसर ही नहीं कहीं वहाँ पर जो इनकी चरागाहें हैं उन पर कहीं पर व्यवस्था है कि ताकि उनको ये डिलीवरी इसकी हो जाए और वो बच्चे, क्योंकि वही ज़्यादा तर उनको ही इन जंगलों में जो कुकिंग वगैरह का काम करना होता है वही एलपीजी के बगैर, और वो सारे जो मुज़र असरात हैं उसके वो उनको सहने पड़ते हैं। तो और इसी तरह ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन एजुकेशन की कोई इनके बच्चों के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं। एक ऐसा प्रयास कीजिए ना कि आप स्मार्टफोन इन बच्चों की एक गिनती करा के उनको हर एक स्कूल में पहले इनके जो टीचर्स हैं उनको परमानेंट कीजिए, उनको इंटीग्रेट कीजिए,
तीसरी बात यह है कि जनाब जो तरक्की की दौड़ में इनको शामिल करना है, प्रयास तो यही है ना, इस कदम का मकसद यह है कि इनको भी वो लेवल प्ले फील्ड प्रोवाइड कीजिए और तरक्की की दौड़ में शामिल कीजिए जो डिसएम्पावर्ड है। तो इनके लिए जो रोजगार के मामले हैं उनमें ध्यान दीजिएगा। अभी जोजिला टनल बन रहा है, लेकिन जो ट्राइबल आबादी वहाँ की है, लोकल आबादी है, उसकी तरफ ध्यान दीजिए ताकि उनको ज़्यादा अवसर मिले। और इसी एक और बात है, हमारा एक माइंडसेट बन गया है कि ट्राइबल को हमेशा जंगल में ही रखना है। जो ही ये जंगल से बाहर हुआ वो सारी जो इसकी असुविधाएं हैं इनकन्वीनियंस हैं उनको दूर किया जाएगा। उनको कोई हक नहीं है शहरों में या नीम शहरी इलाकों में रहने का। अभी जम्मू में रूपनगर एरिया में एक सबरम में एक पूरी जो बस्ती थी 50 साल की से बस्ती जो थी इनकी, उसको डिमोलिश किया गया रातों रात, ये जाने बिना कि उनका रोजगार इस पर का दारोमदार है। तो जनाब बात यह है कि सिर्फ इसको एक महज एक रस्म ना बनाइए, एक पॉलिटिकल एक टूल ना बनाइए, बल्कि इन ट्राइबल्स के लिए जनाब आप अगर मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं वो देखें कि डिमोलिशन जो किया गया वहाँ पर रात के अंधेरे में रूपनगर एरिया में, अभी वो धरने पर लोग बैठे हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन का कोई कीजिए, कोई प्रबंध कीजिएगा क्या? इसलिए कि वो ट्राइबल हैं तो उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए। तो जनाब ये सारे उपाय उठाने की जरूरत है। और दूसरी बात है, अब आ गई बात एक हॉलिस्टिक अप्रोच की। आप क्यों ये पीस मील कर रहे हैं जैसे सभी मेंबरान ने कहा, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। भाई एक हॉलिस्टिक व्यू ले लीजिए। सारे मुल्क से जो आपके पास प्रपोजल्स आए हैं गवर्नमेंट्स के अप्रूव्ड, बात है इफ सर्वे हैज बीन डन, इफ ग्राउंड वर्क हैज बीन डन, इफ फैक्ट्स आर अवेलेबल, आपके पास सब कुछ आपके पास मौजूद है, तो सारे मुल्क में एक कंप्रेहेंसिव क्यों नहीं आप प्रयास कर रहे हैं? आप क्यों ये रोक रहे हैं, एक नाइंसाफी को परपेचुएट कर रहे हैं एक जगह, फिर हम जी जब हमारा मन करेगा तब हम आपकी नाइंसाफी दूर करेंगे? तो जनाब ये सारे कदम उठाने चाहिए ताकि एक अगर वाकई तौर पर आप चाहते हैं कि जो हमारे ट्राइबल्स हैं, आप बजट की बात देखिए, यहाँ पर इस साल और भी बजट में कम, और हमारा यूटी का बजट देखिए वहाँ भी ट्राइबल अफेयर्स पर कम से कम। ऐसे तो हम बोलते बहुत है कि भाई हमें मकसद है हमारी वर्षा इतनी बहबूदी, नहीं इनकी तालीम की तरफ हम कोई तवज्जो दे रहे हैं, नहीं इनके बच्चों के भविष्य के बारे में हम सोच रहे हैं, नहीं जो वहाँ पर टीचर्स हैं उनको परमानेंट बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं, नहीं इनके बाकी रोजगार के जो वसाइल हैं वो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, और नहीं हम कोई कम। अब देखिए हर जगह कैसा अन्याय है, हर जगह देश में एक जैसा है जो डिसेबिलिटी पेंशन है। जम्मू कश्मीर में 1000, दिल्ली में 5000, क्यों? वो भी एक वर्ग है ना जो डिसएम्पावर्ड है, अनअटेंडेड है, तो ये अंतर क्यों हो? तो जनाब मेरी ये गुजारिश होगी कि आप एक तो एक कंप्रेहेंसिव कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि ये इसी तरह मैं चाहूँगा कि आप इंटरवीन करें इसमें, ताकि ये जो उज्ज्वल योजना है, इसी तरह जो हमारा अगर कहीं पर भी जो सोलर एनर्जी की जो रिन्यूएबल एनर्जी के जो गैजेट्स हैं कि कोई डिजर्व करता है, मुझे लगता है ये हमारे सारे मुल्क में, सारे देश में और जम्मू कश्मीर में ट्राइबल कम्युनिटी पहले ही डिजर्व करती है उनके सोलर लाइट्स हों, सोलर हीटर्स हों, ताकि क्योंकि वो जंगलों में जहाँ बिजली की तरसील नहीं है, जहाँ अवेलेबिलिटी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी की, वहाँ उनको ये सारी सुविधाएं, सारी सहूलियत मैसर हो। तो ये अगर करना है तो प्रैक्टिकल काम कीजिए, ये वेलकम है। अगर आपके पास इनपुट्स हैं, आपने जांच की होगी, सर्वे किए होंगे, जो भी इनपुट्स हैं आपने उस पर कहा कि नहीं जो दारलोंग ये कम्युनिटी है इस कम्युनिटी को शामिल किया जाना चाहिए, इसी तरह का आप एक सारा बिल्कुल एक कंप्रेसिव करके पॉलिसी करके बोलाइए। उसमें ये कहते हुए मैं इसकी सराहना करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि बाकी जो ऐसे ही कम्युनिटीज़ हैं उनकी साथ जो नाइंसाफी बहुत दूर, और खासकर जम्मू में जो भी डिमोलिशंस हो गई उसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सप्तगिरी उलाकर जी। Thank you, Chairman, sir. I rise to speak on the Constitution Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2022. And सर इस बिल का स्वागत करते हैं हम, लेकिन मेरे कुछ 2-3 सुझाव भी है जो माननीय सांसद जी ने भी कहा था। आप हर एक स्टेट में ये पूछिए कि कौन कौन ऐसे ट्राइबल लोग हैं जो मतलब ऑलरेडी होना चाहिए था बट वो हो नहीं पा रहे हैं। उड़ीसा का मैं एग्जांपल देता हूँ सर। देयर आर 3 ट्राइब्स, जोड़िया कम्युनिटी इन काशीपुर ब्लॉक, Dharua in Koraput district and Dora in Koraput district. Already the community people have met our Minister of State also when he had visited the place, and they are very well deserving. So Jhodia community example दूंगा, 97 तक वो आदिवासी थे, वो बगल वाले कलांडी में आदिवासी है लेकिन काशीपुर में आदिवासी नहीं है। द सेम विद Dharua and Dora, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए यहाँ वो छूट गया है। तो मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा सर इसके बारे में आप रिव्यू कीजिएगा। And these community, they are very deserving. They are actually tribals with all the culture and everything. They should be literally included.
सर एक और रिक्वेस्ट है हम लोग सोरा लैंग्वेज का. The primitive Sora language having been given by our ancestors and now supported with the unique script, Sora Sampak, invented during the year 1936 by late Sora Pandit Mangai Gomang, is a long pending demand to be included in the language in the 8th schedule of Indian Constitution. ये Sora language जो है ये हम लोग का अपना स्क्रिप्ट है 1936 में इन्वेंट हो गया है. इसके कई बार हम लोग डिमांड कर चुके हैं एंड इसको आप अगर 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज में इंक्लूड करोगे तो ये बहुत हेल्पफुल होगा. एक चीज है सर, हम सब जानते हैं कि ट्राइबल सबसे गरीब है, बट एक और समस्या है कि ट्राइबल सब कोई अमीर ट्राइबल को नहीं देखोगे, कोई एंटरप्रेन्योर नहीं देखोगे, कोई बिजनेसमैन नहीं देखोगे. उसका भी एक कारण है. जो आपके वेरियस एक्ट्स है, ओलार एक्ट हो या जो भी है, क्या होता है अपने क्षेत्र में मेरे पास जमीन है, 5 एकड़ के अंदर जमीन है, तो उसको मैं बेच नहीं सकता हूँ, बैंक हमें लोन नहीं देती है, उसको मोर्टगेज नहीं कर सकता हूँ, हम लोग का डेवलपमेंट कैसे होगा. ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके पास 1 से 5 एकड़ जमीन है बट उनका कुछ उधार ही नहीं होता है. अब क्या हुआ सर, अब जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया या फिर कोई माइनिंग का प्रोजेक्ट हो गया, फैक्ट्री हो गया, अब सरकार उसी लैंड को एक्वायर कर रहे हैं. अब प्रॉब्लम क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोरापुट में एक किसान के पास 1 एकड़ जमीन है जिसका ट्रांजेक्शन हो नहीं रहा है, ट्रांजेक्शन नहीं है, उसका दाम बहुत कम है. जो मार्केट वैल्यू अभी आ रहा है सर, दैट इज वेरी वेरी लेस. 30,000 रुपये एकड़ आ रहा है. आंध्रा में जाओगे वो सेम जनरल जमीन 1 करोड़ एकड़ का दाम है. सो ये गड़बड़ी है सर. इसीलिए आप देखोगे कि कोई आदिवासी ये अमीर नहीं बनता, एंटरप्रेन्योर नहीं बनता, बिजनेसमैन नहीं बनता. इसका एक समाधान होना चाहिए एंड मुझे लगता है अपने मंत्री जी जो अर्जुन है तो उनको एक कोई कदम उठाना पड़ेगा कि भगवान कृष्ण को भी बुलाए, ये आदिवासी लोग कैसे एंटरप्रेन्योर बन पाए, उनको कम से कम बैंक से लोन मिले, मॉर्टगेज करे, अपने जगह को डेवलप करने के लिए पैसा नहीं है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है एंड वो जमीन वैसे ही रहता है. लास्ट में क्या होता है कि सरकारी कोई फैक्ट्री लेके आते हैं, उसको एनक्रोच कर लेते हैं, उनको लैंड एक्वायर करते हैं, या भारतमाला प्रोजेक्ट तो ये होता है. एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन है सर कि ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार, केंद्र सरकार के भी कई सारे मिनिस्ट्रीज को ये अपना पैसा खर्चा करने की जरूरत है. लेकिन अगर देखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एग्जाम्पल लेता हूं मैं, IITs के लिए 250 करोड़ का सैंक्शन हुआ है, लेकिन कितने IITs PhD कर रहे हैं, PG कर रहे हैं, 95% सीट खाली है. ये पैसा आप ट्राइबल के नाम पे लेते हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट देते हो, जो ट्राइबल मिनिस्ट्री से कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर है, बट वो पैसा खर्चा नहीं होता है. वैकेंसीज देखोगे कितने ट्राइबल से वैकेंसी है. सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा इसमें ट्राइबल इतने वैकेंसी है, लेकिन कोई ट्राइबल पढ़ ही नहीं पाता है, कोई ज्वाइन नहीं कर पाता. ये विभिन्न समस्या है सर. एंड आप देखोगे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आदिवासियों के डिस्प्लेसमेंट है. आप हम लोग जंगल जमीन में हजारों साल से रहते आ रहे हैं, अब सब खत्म हो गया तो आप माइनिंग के चक्कर में, डेवलपमेंट के चक्कर में हम आदिवासी के पास आप आते हो, हमारी जमीन लेने की कोशिश करते हो. लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट, जो रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है वो ठीक नहीं है सर. पोलावरम प्रोजेक्ट ये अगर होगा तो हजारों आदिवासी वो डूब जाएंगे वहां मलकानगिरी में. नालको को प्राइवेटाइज कर रहे हो. जो आदिवासी लोग अपना जमीन दिए हैं, जो आदिवासी लोग वहां पर रिजर्वेशन में वो नौकरी कर रहे हैं, वो कहां जाएंगे. समस्या है कि रिहैबिलिटेशन पॉलिसी जो है, नालको के एग्जाम्पल में दे रहा हूं, उसमें एक परिवार को एक नौकरी दी है और जमीन लिए हजारों एकड़ जमीन लिए सब लोगों से. अब वो परिवार के ही बंदा, उसके परिवार में 5 बंदे हैं, वो बंदा अगर मर गया तो और कुछ नहीं है. सर ये रिहैबिलिटेशन पॉलिसी है. मैं माननीय मंत्री जी से मैं अनुरोध करता हूं कि इसको देखिए. एक नौकरी देने से काफी नहीं है. आप पीढ़ी के बाद पीढ़ी, जनरेशन के बाद जनरेशन कैसे उसको आप ठहरान कर सकते हो, उसकी आप कोशिश कीजिए. या फिर मेरा तो एक सुझाव है, इसको एक शेयरिंग मॉडल में कर दो. जैसे मैं अपना जमीन दे रहा हूं कोई फैक्ट्री के लिए, मुझे एक शेयर होल्डर बना दीजिएगा, तो मैं जिंदगी भर मैं अपना देता रहूं. सर 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं. बहुत सारे समस्या है सर. एंड हमारे 10 करोड़ आदिवासी हैं इंडिया में, 47 MPs है. मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी एंड अर्जुन जी को रिक्वेस्ट करता हूं, एक दिन चर्चा कीजिए आदिवासियों क्या प्रॉब्लम है. सारे सांसद आदिवासी लोग हम लोग बोलेंगे एक्चुअली हमें क्या प्रॉब्लम है. खाली रिजर्वेशन देने से हमारे प्रॉब्लम का समाधान नहीं हो रहा सर. इस पे एक आलोचना होना चाहिए एंड पार्लियामेंट से बड़ी जगह कोई नहीं है. तो मैं अनुरोध करता हूं अर्जुन जी को, आप देखिए क्या कर सकते हो, हम आदिवासी का डिमांड कैसे फुलफिल कर सकते हो. एक दिन का चर्चा कराइए, सारे सांसद को बुलाओ, हम सब मिलकर यहाँ पे करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि क्या है. खाली रिजर्वेशन हम लोग का हल है कि हमारा डेवलपमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद सर. एंड इस बिल का समर्थन करते हैं. थैंक यू. श्री रेवती त्रिपुरा जी. धन्यवाद सर.
धन्यवाद सर। सर मैं अर्जुन मुंडा जी ने जो अमेंडमेंट बिल लाए दालंग ट्राइब को शेड्यूल ट्राइब में इंक्लूशन के लिए, मैं पॉक्स में इन फेवर में बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ। सर मैं मेन चर्चा में जाने से पहले मैं त्रिपुरा का थोड़ा सा इतिहास में दोहराना चाहता हूँ। यहाँ बहुत सारे एमपीज ने पूरा इंडिया में ट्राइबल के बारे में चर्चा किया। मैं भी बताना चाहता हूँ कि त्रिपुरा में भी ट्राइबल लोगों का उसी हाल है, लेकिन मैं ये भी बोलना चाहता हूँ एक समय ऐसा था कि जो अभी ट्राइबल या जनजाति हम लोग बोलते हैं, त्रिपुरा में 183 राजाओं ने राज किया पहले, और भारत जब स्वाधीन हुआ उस समय त्रिपुरा एक स्वाधीन राज्यों के तौर पे उस समय इंडिया से अलग था। 1949 में त्रिपुरा इंडिया के साथ मार्च किया और उसी दिन से अभी त्रिपुरा इंडिया का एक स्टेट के रूप में इंडिया में हूँ। जैसे कि 1949 के बाद 1971 तक अगर देखा जाए, बांग्लादेश जो फ्रीडम के लिए जब मूवमेंट चल रहा था, 50 से 51 से लेकर 71 तक बांग्लादेश से बहुत माइग्रेंट त्रिपुरा में हुआ, और जहां जनजाति संख्या एक समय 80 से 85% था, वो कम होते होते अभी सिर्फ 31% हो गया त्रिपुरा में। अभी 19 कम्युनिटी है त्रिपुरा में, और 19 कम्युनिटी में कुकी कम्युनिटी भी एक है। लेकिन उसमें अभी जो बिल लाया गया, दालोंग जो ट्राइब है, ये दालोंग जो समुदाय, ये खुद को कुकी बोलने में ये राजी नहीं है, क्योंकि वहाँ का रीजनल जो लैंग्वेज, उसमें कुकी का मतलब होता है अनसिविलाइज्ड। तो इसलिए ये लोग बहुत सालों से इन लोगों का मांग था कि इन लोगों को अलग एक स्टेटस दिया जाए और शेड्यूल ट्राइब में भी इन लोगों को इंक्लूड किया जाए। त्रिपुरा सरकार ने, खास करके बीजेपी सरकार जब से त्रिपुरा में आए 2018 से, हम लोगों ने जनजातियों के विकास के लिए काम करना शुरू किया। एक समय ये भी देखा गया, यहाँ कांग्रेसों का साथियों ने, एक दो साथियों ने, खास करके प्रद्युत बदलोई जी और जम्मू कश्मीर से मासूदी जी, इन्होंने भी चर्चा में भाग लिया और बहुत सारे उदाहरण इन्होंने भी दिया। मैं बोलना चाहता हूं, अगर कांग्रेस और बाकी जितना भी सरकार केंद्र में हो या तो त्रिपुरा में, अगर शुरू से इस विषय को गंभीरता से देखता तो और बहुत साल पहले ये काम हो सकता था। लेकिन त्रिपुरा में सिर्फ 2018 से बीजेपी 4 साल हो गया, बाकी 25 साल त्रिपुरा में कम्युनिस्ट का शासन था, उससे पहले भी, और बाकी कांग्रेस का राज था। लेकिन कभी भी सीपीएम हो या कांग्रेस हो, कभी भी जनजातियों का विकास के लिए काम नहीं की। तो इसीलिए एक समय त्रिपुरा में ये मांग भी उठा कि 1949 में हम लोग इंडिया के साथ मार्च किया था, लेकिन ये भूल था, और इसीलिए ये भी मांग उठा था कि हम लोग फिर अलग होंगे। तो अभी भी सर त्रिपुरा में कुछ लोग, अभी कोई त्रिपुरा लैंड के लिए, कोई ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के लिए ये भी मांग आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये जो कांग्रेस और बाकी
जितना भी दल त्रिपुरा को शासन किया, इन लोगों का गलत जो पॉलिसी था उसके वजह से हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को और अर्जुन मुंडा जी को ये बिल लाने के लिए, और खास करके राज्य सरकार विप्लव देव जी की नेतृत्व में जो राज्य सरकार अभी काम कर रही है वहाँ, क्योंकि राज्य सरकार ने इससे पहले एक फील्ड स्टडी किया और इस डालंग कम्युनिटी के बारे में रिसर्च किया, और इसमें जो रिपोर्ट आया दिखा गया कि डालंग कम्युनिटी में शिक्षित का जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है। और तापिर गांव जी ने ये भी बोला कि एक थंगा दालुंग जी को कल्चर और इनका कल्चर के क्षेत्र में इनका जो योगदान, उसके लिए पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। तो ये अच्छा उद्योग है। और सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ट्राइबल वेलफेयर के लिए, डेवलपमेंट के लिए और भी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा में जो TTADC तापिर गांव जी ने भी बोला, वहाँ 3 टायर सिस्टम जो पंचायत में जिस तहत वो फंड दिया जाता है और TTADC में वो नहीं दिया जा रहा है। तो 125 जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट वो भी पेंडिंग। बहुत बहुत धन्यवाद रेवती जी, वो देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री इंद्रहेंग सुब्बा जी। Thank you, Honorable Chairman, sir. I stand in support of the Constitution ST Orders Amendment Bill 2022, which seeks to recognize Dalang community as a sub-tribe, as a tribe in Tripura. On behalf of Sikkim Krantikari Morcha and our leader P.S. Tamang, I'd like to congratulate Dalang community for being included in scheduled tribe list. At the same time, I belong to a state which is very small, and I'm the lone member from my state. So we as a state, as the 22nd state in Indian Union, our Sikkim was merged in 1975. Before that, every community in Sikkim were equal and had the same tradition, culture, or different traditional culture of their own as a tribal community. However, after 1975, among 3 major communities, Sikkimese Bhutia Lepcha and Sikkimese Nepali, only Sikkimese Bhutia Lepcha were included in 1978 as scheduled tribe. Later on, in 2002, 2 more tribes, Limbu and Tamang, were included. And I'd like to bring to the notice, I think Honorable Minister Sir is well aware of the issue, that these 2 communities are yet to have their seat reservation in Sikkim Legislative Assembly. Despite number of requests from the state government, these 2 communities are yet to have their reservation. At the same time, we have other communities within the Sikkimese Nepali community which do have traits of tribal. However, they have not been recognized as tribal in the Constitution of India. These communities are Gurung, Mangar, Rai, Sunwar, Mukhia, Jogi, Thami, Yakha, Bahun, Khetri, Newar, and Maji. These 12 communities, though they are economically, socially, and culturally the same as other Sikkimese communities, they also deserve to be given the status of scheduled tribe, yet they are yet to get their share and be recognized as scheduled tribe. So I take this opportunity also to request Honorable Minister Sir and the Government of India to take into account these 2 very important issues of Sikkim, where Limbu and Tamang, 2 communities, are yet to get their share of seat reservation in Sikkim Legislative Assembly, and the remaining communities, the 12 communities, which have the tradition and culture as other tribal groups in Sikkim, however, they are yet to be recognized as scheduled tribes. So I take this opportunity to request the Honorable Minister, the government, and also thank the government
for all the policies that they have taken to uplift the tribal community. Thank you very much. With this, I support the bill. Thank you. Thank you very much. Shri Nabha Kumar Sarnia ji. थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जो हमारा अर्जुन मुंडा जी ने बिल लाया है डार्लंग कम्युनिटी को इंक्लूड के लिए, ये मैं सपोर्ट करता हूँ और मेरे तरफ से उनको हार्दिक स्वागत है। सर, जैसा डार्लंग को अभी इंक्लूड किया है कुकी से हटके, हमारा असम में भी ऐसा इशू है। स्पेशली थेंगाल कोसारी, सरनिया कोसारी और मोराही कोसारी, उन लोग भी अभी पहले से जब से ये ऑर्डर निकला है उससे अभी वो ट्राइबल सेजा एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बीच बीच में ये जो मंगोलॉयड ग्रुप का, लाजार कोसारी ग्रुप का लोग है, लेकिन वो बीच बीच में विवाद होता है क्योंकि सोने कोसारी लोग बड्डो कोसारी से, राभा कोसारी से पहले से ही ट्राइबल सेजा ले रहा था सर्टिफिकेट, लेकिन बीच बीच में निजी स्वार्थों के लिए कुछ लोगों ने इसको एक मुद्दा बनाया था। सर, मैंने जब ये इलेक्शन जीता था 2014 में, मेरे ऊपर भी इलेक्शन पिटीशन लग गया, उसके बाद रिट पिटीशन लग गया, मैं हाई कोर्ट जीत गया, सुप्रीम कोर्ट जीत गया, फिर अगेन 19 में हमारे ऊपर केस आ गया, फिर अभी रिट पिटीशन केस चल रहे हैं, फिर एसटी कमीशन में ये चल रहे हैं। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को ऐसा सिचुएशन का जो मुकाबला करना पड़ा। तो मेरे आज ये पार्लियामेंट से मेरा मुंडा जी से आपके जरिए असम गवर्नमेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, जो थेंगाल कोसारी है, सोयना कोसारी है या मराही कोसारी, उसको भी ऐसा लालुंग जैसा एक्स्ट्रा उसका बनाना चाहिए। और एक बात सर, हमारा असम में और 6 कम्युनिटी जो अहोम, कोसारी, कोस, टी ट्राइब्स और मरान मोटो, उसको एसटी करने वाला है। पहले से उधर का जो हमारा ट्राइबल, एग्जिस्टिंग ट्राइबल है, उन लोग के विरोध थे, अभी उन लोग ने मान लिया है अगर एग्जिस्टिंग ट्राइबल को कुछ नुकसान नहीं होगा तो उसको सीडलिंग में लाना चाहिए। तो मेरा साल से वही रिक्वेस्ट है असम गवर्नमेंट से, ये करना चाहिए। और सर, और एक जस्ट ओनली 1 मिनट, और दूसरा एरिया से भी हमने जब गुजर गया उसी में भी कुछ ऐसा कम्युनिटी है जिसको ट्राइबल में डाला गया है गलती से। मुझे हमारा मिनिस्ट्री वही है जो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ट्राइबल लोग बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उनको जो रिजर्वेशन है उसका कोटा भी अभी नहीं मिल रहा है। हमारा यहाँ तो सब मुद्दा आया है, तो इसलिए सर मेरा विनती है जो अभी ऐसा लोग है उसको फिर ठीक ठाक करना है, अभी बहुत लेट हो गया है। और हमारा जो स्पेशली असम का जो ये सोयना कोसारी, मराही कोसारी और थेंगाल कोसारी, उसका जल्दी से जल्द इसमें लाना चाहिए और इंक्लूड करना चाहिए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती अगाथा संगमा जी। धन्यवाद चेयरमैन जी, आपने मुझे ये मौका दिया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बिल पे पार्टिसिपेट करने के लिए। सर, आई वुड लाइक टू at the outset, on behalf of my political party, the National People's Party, I would like to give our support to this amendment that is being brought in order to include the Darlong community into the Scheduled Tribe list by the Constitution Scheduled Tribe Order 1950 Amendment Bill. Sir, while holistically, we support this amendment, I would like to say that there are very important issues regarding to the scheduled tribes in this country that needs to be given due attention. According to the Niti Ayog's AWST, the Allocation for the Welfare of Scheduled Tribes guidelines, it is mandatory to allocate an amount that is proportionate to tribal population. Initially, the budgetary allocation of rupees 7,355.76 crores and rupees 7,084.07 crores were made for the Ministry of Tribal Affairs for the year 2020-21 and 21-22 respectively, to administer their central sector and centrally sponsored schemes. Besides 2 official programs, Special Central Assistance to Tribal Sub-Scheme and the Grants and Aid under Article 2
75(1) of the Constitution. However, the allocation was reduced to rupees 5,472.50 crores in 2021 and 6,126.46 crores in 2021-22 at the revised estimate stage. The Ministry of Tribal Affairs could not fully spend the RE allocation in 2020-21 and have been able to spend 4,070.04 crores in 2020-21 up to 15 February 22, leaving apart the cut in allocation made by the Ministry of Finance for the ministries due to COVID. Sir, the National Commission for Scheduled Tribe report, the Standing Committee on the Social Justice and Empowerment has found that the National Commission has been dysfunctional for the last 4 years and has not delivered a single report to the Parliament. Standing Committee found that these reports, though finalized by the Commission, are withheld with the Union Ministry of Tribal Affairs, as was pointed out by my colleague Mr. Bordoloi. Ministry needs to expedite working and presentation of reports, address the Commission's manpower and budget shortage so that it can be actively worked towards the welfare of the ST community. So in terms of the tribal health report, as I said, we need to look at the holistic development of the scheduled tribe communities. The expert committee on tribal health was constituted jointly by the Ministry of Health and Family Welfare and the Ministry of Tribal Affairs in 2013, and the report was submitted in 2018. The Tribal Health in India, Bridging the Gap and a Roadmap for the Future. It was India's first comprehensive report on tribal health, and it still awaits implementation. The tribal population has endured historic and a systematic discrimination which needs to be corrected. मैडम मंत्री जी का जवाब 4:45 पर है आपसे और सभी सदस्यों का निवेदन है कि अपनी बात संक्षिप्त में रखिए. Sir, according to the Tribal Health Report 2018, about 55% of country's tribal population now resides outside the traditional habitat. The report cites that the census 2011 found that 32% decline in the number of villages with 100% tribal population between 2001 to 2011. Sir, the impact of displacement and denial of access to forests have impacted lives and health, especially of the particularly vulnerable tribal groups. These communities have lived in forests and are traditionally dependent on forest resources for their subsistence, as identified by the Government of India itself. In the absence of adequate access to the forest, the Adivasi communities and others that are deprived of their food insecurity and diversity and livelihood security, which inevitably results in poor health outcomes. Studies on women experiences of such displacement in India have shown their ordeal include vulnerability to violence and early marriage. So according to the Tribal Health Report, about 41% of the tribal population is illiterate as compared Please conclude कीजिए. Okay, sir. So in conclusion, I do have a few statistics to put, but since there is paucity of time, I would just like to say that while, my political party, the National People's Party, we welcome this amendment and inclusion of the Dalong community into the scheduled tribe list, we, as a political party, would urge the government to look at a holistic well-being of the tribal communities. And, in order to ensure that, I would request our Honourable Minister Thank you very much. to look into the various aspects that I have already Thank you very much. pointed out that would give us a holistic indicator of the well-being of tribal communities. Thank you. श्री बी मेहताब जी, सभी सदस्यों से निवेदन है कि अपनी बात संक्षिप्त में रखिए. 4:45 बजे मंत्री जी का जवाब आना है, तो मेरा निवेदन है. 3 points I have to make relating to this bill. Bill was introduced in February this year, and Article 46 of the Constitution enjoins the states to take special care in promoting the educational and economic interest of the weaker section. The state government of Tripura has requested to include
Darlong community as a sub-tribe of Kuki in entry 9 in the list of scheduled tribes in respect of state of Tripura. And that's why this bill is confined to that issue only. But taking advantage of this bill being discussed here, every state has their own issue to bring forth before the government through this house. And I have a Odisha's perspective. The government of India, I would say the scheduled tribe identified from Odisha are 62 in number, including the tribes of Godaba, Ghara, Kharia, Kondho, Matya, Oraon, Rajuar, Santas. As far as particularly vulnerable tribe groups, PVTG, are concerned, Odisha has the highest number of PVTGs. In 2020, the Odisha government further identified 888 villages, hamlets inhabited by PVT, that is particularly vulnerable tribal groups. Since 1978 onwards, 169 proposals have been sent to Government of India, Ministry of Tribal Affairs at different point of time for inclusion in ST list of Odisha. At present, 149, new 140, resubmission is 9, proposals are pending with the Ministry of Tribal Affairs, Government of India for inclusion in ST list of Odisha. Honorable Chief Minister of Odisha, Mr. Naveen Patnaik has written to the Ministry of Tribal Affairs in a letter dated 19th February 2021 for consideration of these tribes in the ST list. Some of these communities proposed for inclusion are actually subsets or phonetic variations of the same, of the name of the existing ST communities, but are still deprived of the benefits availed by the scheduled tribe with similar tribal characteristics residing in different parts of the state who have since been notified as scheduled tribes. Inclusion of the left out communities will give them their much needed recognition as a scheduled tribe. The ruling party in the state, that is Biju Janata Dal, has also been pressing for its long-standing demand for a caste-based census to ascertain the actual population of the various classes and as a result take up several developmental activities for their all-round development. Odisha Cabinet in 2020 passed a resolution to that effect. Sir, I would like to place my demands here on behalf of my state. The task force examined the proposals for inclusion from various states, including 107 proposals from Odisha, and in its report notified in 2014 has recommended the following 10 communities of Odisha for inclusion in scheduled tribe list of the state on priority basis. Inclusion of Bhanja Puran, Tamodia, Tamudia, Tamaria, Tamuria, Puran and Puran, Bhagavata Bhukta, Bhokta or Bhokta. These are all spelling differences, but this is the problem that Durua, Kolongo, Nakasia, Pabo, Khondayat Bhuya, Tumudia or Tamadia, Champua Kamar and Kondho. Some other changes that are sought is Kondho Kumbhar, a subset of Kondho at serial number 31 of scheduled tribe list of Odisha. Sir, there is Jodia, the spelling is Jhodia or Jodia. When we pronounce it, it is same, or Jadia. It is all Jadia, Jodia, Jodi. And these are all synonyms. Similarly, Chuktia, Bhunjia, Soro. And here I would like to mention, sir, I have earlier repeatedly drawn the attention of the minister also. Sabara, Sabar and Soro. These are the RI who goes out for enumeration. He writes it as he hears it. And that is the main problem, that they get excluded from the benefit that a scheduled tribe is expected to get. Similarly, Mankidia should be included as synonym of Makiridiat in serial number 47 of ST list. All these lists have been provided to the government by Odisha government, and all these are still pending with the ministry. Of course, the minister Thank you very much, Mehtab ji. Minister will say it has to do with the census.
and with the population register. But Paudi Bhuya, Chukutiya Bhonja, all these are to be included. Recently, I'll just draw the attention of the Minister through you, sir. 1 minute. I'll take just 1 minute. And that is relating to recently the Supreme Court, perhaps yesterday or day before, has come out with a decision. The Supreme Court wants to fix foolproof parameters to determine if a person belongs to a scheduled tribe and is entitled to the benefits due to the community. Further, it has said in its judgment, the judiciary is no longer sure about an affinity test. Earlier what was being done, that yes, he is similar to the other tribe. So that is an affinity test. But Supreme Court has said day before yesterday, last week, that this affinity test will not do because they migrate. They are in urban areas. And in that respect, the anthropological and ethnological traits Kindly to link conclude. a person to a tribe is not complete. So there are separate method has to be done. And now the Supreme Court has taken the onus on itself, not allowing the Parliament to determine. Thank you. Allow it on itself that we will decide and a larger bench will decide. I hope the government will respond through this deliberation today, and if they want to do it later. But this is what happening in Supreme Court. Thank you, Mehtab ji. Thank you. Thank you, Mehtab ji. Shri Girish Chandra ji. माननीय सभापति महोदय जी, सभी से निवेदन है कि अपनी बात 2 या तो 3 मिनट में समाप्त कीजिए, क्योंकि हमारे पास और भी 4-5 मेंबर है। 2-3 मिनट में आप अपनी बात को समाप्त कीजिए। 2022 पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पक्ष रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सभापति महोदय, समय पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों की सूची में परिवर्तन किया जाता रहा है। पहला यह परिवर्तन वास्तविक रूप से उन जातियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाता रहा है जो वास्तविक रूप से सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ी हुई हैं। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान में व्यवस्था इसलिए की थी कि देश में कोई भी व्यक्ति का समूह वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजित जातियों के साथ सद्भाव और समभाव की स्थिति कायम की जा सके। इसमें सबसे अधिक शोषित व अछूत जातियों को अनुसूचित जाति और आदिवासी जातियों को जनजाति की सूची में रखा गया है। इसी आरक्षण के प्राप्त करने के कारण इन समुदायों को थोड़ा सा आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास महोदय हुआ है, लेकिन यह भी परिपाटी चली आ रही कि देश में तमाम जाति, अनुसूचित जाति, अनुजाति की सूची में शामिल होने के कारण आतुर रहती हैं। अब यह आतुरता ही कुछ राजनीतिक दलों का वोट लेने का अधिकार बन चुकी है। कहने का आशय यह है कि यह देखा जा रहा है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी वर्ग विशेष को शामिल करना उस वर्ग विशेष के विकास के लिए नहीं, बल्कि अपने दल के वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। हमारी बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मैत्री जी का ये मानना है कि यदि कोई जाति किसी भी श्रेणी से अर्थात अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाता है तो उस जाति के मूल रूप पहाड़े आरक्षण कोटे को उसके जनगणना के अनुसार मूल रूप से काटकर उस श्रेणी में जोड़ दिया जाना चाहिए जिसमें शामिल किया जाता है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आगे करना चाहूंगा कि हम सभी को ये ज्ञात है कि देश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों का शोषण हुआ है। इसी शोषण की मुक्ति के लिए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने संविधान में दलित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व्यक्तियों के ऊपर शोषण ना हो इसके लिए विधि का निर्माण हुआ है। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के ऊपर अत्याचार की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण अभी हाल में राजस्थान की तमाम घटनाएं आपने देखी होंगी। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने कहा था कि संविधान का निर्माण तो हो गया है, लेकिन इनकी सार्थकता तभी कायम होगी जब इनको भली भांति अमल में लाया जाएगा। सभापति महोदय, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को शिक्षित बनाने के लिए सरकार शिक्षा के अच्छे प्रबंध करे जिससे ये समाज पूर्ण रूप से शिक्षित बन सके और उसके बाद जो बाबा साहब ने संविधान में सरकारी नौकरी में कृपया समाप्त कीजिए, उसी के आधार पर पूर्ण भागीदारी ले सके और अपने आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती जसकौर मीना जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।
आज मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखिए मैडम। हाँ। अब आप पहले ही संक्षिप्त बोले, हमारी पार्टी से तो बोले ही 2 लोग हैं। माननीय सभापति जी, त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कतिपय समुदाय को सम्मिलित करने के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 का संशोधन पेश किया है। मैं उसके लिए समर्थन में खड़ी हुई हूं और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि देश के विभिन्न राज्यों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से कुछ जातियां पिछड़ रही हैं। हमारी सरकार उन सभी जाति वर्ग को मुख्य धारा में लाने हेतु संविधान में संशोधन करती आई है। संशोधन के साथ साथ विगत समय अरुणाचल में भी हुआ, छत्तीसगढ़ में भी हुआ, मध्य प्रदेश में भी संशोधन हुए और आज त्रिपुरा में कुकी जाति समुदाय के जनजाति के भाइयों को आज 9वीं सूची में जोड़ा जा रहा है। मैं ये कहूं कि ये भूली बिसरी जातियां जिस तरह से जल, जंगल और जमीन के अंदर अपना गुजर बसर करती रही हैं, उसी संदर्भ में आज हमारे मंत्री जी, जनजातीय मंत्री अर्जुन जी भाई बहुत अच्छा विधेयक त्रिपुरा के लिए लेकर आए हैं। मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे जो सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास है, ये हमारी सरकार सदैव करती आई है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय आपको ध्यान होगा कि हमारे मंत्रालय अलग हुए, हमारे आयोग अलग हुए, ताकि हमारी जनजातियों के बारे में सही सही जानकारियां प्राप्त करने के लिए सुगम रास्ता बना। और इसके बाद मैं माननीय सभापति जी ये भी आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि सदन में कुछ भाइयों ने, विद्वान साथियों ने इस बिल में राजनीति को जोड़ा है, जबकि राजनीति को जोड़ना तो इन्हीं का कर्म था, क्योंकि एसटी, एससी दोनों को केवल कांग्रेस की सरकार वोट बैंक मानती थी और वोट बैंक मानने के कारण ही न हमारा विकास हुआ, न हमें किसी मुख्य धारा में लाने का प्रयास हुआ। आज भी जिन राज्यों के अंदर ये सरकारें हैं, उन राज्यों में जनजातियों पर होने वाले भारत सरकार के बजट को खर्च नहीं किया जाता। भले ही आप राजस्थान को देख लें, भले छत्तीसगढ़ को देख लें या भले ही अन्य राज्यों को देखें, महाराष्ट्र को भी देखेंगे तो आपको उसके अंदर भी विसंगति मिलेगी। मैं माननीय आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूंगी कि जो हमारे बारे में घृणित सोच बनी हुई है कि केवल वोट बैंक के लिए हमको पूछा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर सवर्ण जातियों को भी 10% आरक्षण दिया, लेकिन इस आरक्षण को मूर्त रूप देने के लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता होती है। लेकिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जिन राज्यों में इस तरह की सरकार है जो अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों को ही वोट बैंक मानती है, तो उनका पूरा बजट की समीक्षा होनी चाहिए। त्रिपुरा में आज कुकी भाइयों को, इस जाति को जो सम्मान मिलेगा, जो इनको सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक उन्नयन का साधन मिलेगा, इनको एक दर्जा मिलेगा, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बिल के बारे में सबको मन से सहमत होना चाहिए। दूसरी बात ये भी कहूंगी कि एक समय था जब हम, आज भी मैं कहूंगी कि कुत्तों को मिलता दूध वस्त्र, कुत्तों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की हड्डी से चिपट निठुर जाड़े की रात बिताते हैं। ये किसी कवि ने गलत नहीं कहा। आज भी दूरस्थ, दुर्गम और जंगल के क्षेत्र में जाकर देखेंगे तो हमारी जनजाति भाइयों का ये हाल है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने फिर एक बार ललकार दी है कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, आओ एक दीप जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। दीप जलाएं। लेकिन मैं इसके साथ एक सुझाव भी माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगी कि जो लोग अनुसूचित जनजाति का लाभ लेने के बाद अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, उनके आरक्षण के सारे लाभ खत्म कर देने चाहिए, क्योंकि वो दोहरा लाभ लेते हैं और दोहरा लाभ लेने के कारण हमारी जनजातियों की असली जो जातियां हैं उनको लाभ नहीं मिलता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री के सुरेश जी। थैंक यू चेयरमैन सर, गिव मी अपॉर्चुनिटी टू participate this Constitution Scheduled Tribes Order Amendment Bill 2022. Sir, of course, this bill is related to Misate community in tribal list from Tripura. But at the same time, throughout the country, the scheduled tribe communities are facing
so many problems. But in the House, we are not getting chance to explore scheduled tribes problems. Sometime whenever this type of the bill comes to the House, at that time only scheduled caste MPs or scheduled tribes MPs can get an opportunity to expose the problem of this deprived community. Now you are very busy to pass this bill. Okay, of course, we are ready to pass it. But at the same time, you have to give a sufficient time for discussion of this subject. As I said earlier, of course, this matter is related to Tripura. But the throughout country of the scheduled, you are also very much aware in Gujarat, scheduled tribe problem. So I would like to request Honorable Minister and also Parliamentary Affairs Minister, give us sufficient time. Now we are not, in this House, we are not discussing Tribal Affairs Ministry's demands and grants. We are not discussing any other opportunity to get a tribal issue. Only we are getting this type of the bill. I would like to request Honorable Chair, Honorable Speaker, please give us a sufficient time to participate in this issue. Sir, time to time, various governments, this government, that government, every government, so many castes inserting the scheduled tribes community. I have no objection. The government can include or insert any community in the tribal, eligible community in the tribal list. I am not against. But at the same time, what is the reservation for scheduled tribes? We are getting 2% or 3% or 4%. The existing communities are not getting benefit of the present reservation policy. If the compulsion of various governments, various political parties and vote bank, we are including time to time so many communities in scheduled tribes. But you are not enhancing the reservation. The existing reservation only, we are getting, the existing reservation is not enhancing, but you are, every session, you are inserting more community. It's a very, very serious matter, sir. And also, the tribal supply allocation also not increasing. And also the various ministries allocation also not increasing. So without increasing of the allocation, without increasing of the reservation, how these people will survive, sir? You are also very much aware of that. So I would like to appeal the government, you can insert any community for this scheduled caste or scheduled tribe list. At the same time, you have to enhance the reservation, you have to enhance the allocation of the tribal fund, sir. Sir, tribal fund, I am concluding, sir. Sir, initially I told you, sir, the importance of this. Sir, in my state, Kerala, sir, in my state, Kerala, one community, Vedar community, their living condition, their backwardness, everything come under scheduled tribes. Unfortunately, this community is still in scheduled caste. Government of Kerala already recommended to tribal department, Government of India, and also registrar of Government of India also recommended. But the proposal is lying in tribal ministry for long years back because there is no compulsion, there is no political pressure. That's why Vedar community from Kerala not inserted into the scheduled tribe. I would like to, I appeal to Honorable Tribal Affairs Minister Mundaji to look. You also gave assurance in the so many times in the House, but you did not do it. I would like to appeal to you to include Vedar community from Kerala. Thank you, Suresh. Thank you very much, Suresh. I'm concluding, sir. Sir, I'm concluding. Sir, I'm concluding. Sir, in Kerala,
Sir, in Kerala, आपके अधीर जी भी बोलने वाले हैं, काइंडली कंक्लूड इट। मेरा को अधीर रंजन जी भी बाद में बोलने वाले हैं, तो यू कंक्लूड इट। He is our leader. उनको बोलने दीजिए। He can speak anytime. आप कंक्लूड कीजिए। This time is not related to our time. He is a opposition. He is a single opposition party leader. He can speak anytime. अपनी बात रखो। Why you are relating to Adhir Ranjan ji time to my time? You are from same It's party. not correct. You are from same party. Adhir Ranjan ji and we are entirely different. No. The time is allotted as per the party. Yes, as per the party, I am only taking allotted time. बात रखिए। I am only taking allotted time. I am not taking anybody. So आप अपनी बात रखो, मैं नेक्स्ट नाम पुकारता हूँ। नेक्स्ट नाम पुकारता हूँ। Sir, in Kerala, one important area is Attapadi in Palakkad district is a tribal area. There are so many problems they are facing in the Attapadi. Honorable Minister is also very much aware. The infant death is day by day increasing, mortality, so many problems are facing there. So, I would like to request the Tribal Affairs Minister to investigate what is happening in Attapadi. Why the people living in Attapadi. Thank you very much, Suresh ji. Very, they are also facing lot of problems. So I would like to, Honorable Minister, sir, you are aware of that Attapadi in Kerala. Every month there is a problem. Every year there is a problem for Attapadi tribe. Thank you. So I would like to request Honorable Kunar Hemram to consider the tribal people in Attapadi, Kerala. Thank you. Thank you very much. Thank you, Suresh ji. ধন্যবাদ সভাপতি মহোদয়। আজকে আমাদের ট্রাইবাল মিনিস্টার যে বিল নিয়ে এসেছেন তার সপক্ষে আমি দু এক কথা বলতে চাই। আমাদের এই ভারতবর্ষে প্রায় 750 থেকে বেশি ট্রাইবেল বা আদিবাসী গ্রুপ আছে। 1950 সালে যে প্রথম লিস্ট বেরিয়েছিল 342 প্রভিশন অনুসারে, আমরা জানি আদিবাসীরা জল জঙ্গল জমিনের সাথে জুড়ে আছে। যেখানে জঙ্গল, যেখানে পাহাড়, সেখানে আদিবাসীরা আছে। অনেক দুর্গম জায়গাতে তারা বেশিরভাগ বসবাস করেন। কিন্তু এই দুর্গম জায়গায় প্রকৃতভাবে আজকে সার্ভে হয়নি, বা সেই সমস্ত জায়গায় যারা সার্ভের সাথে যুক্ত আছেন, যারা আধিকারিক আছেন, যারা মানে এই সার্ভের কাজ করেন, তারা বেশিরভাগ জায়গায় দুর্গম জায়গায় যেতে চান না, বা যায় এখনো সেই রকম পরিস্থিতি আছে। এই জন্য এখনো আমাদের ভারতবর্ষে অনেক আদিবাসীরা এই লিস্টে স্থান পায়নি। আজকে অর্জুন মুন্ডাজি যে ত্রিপুরার জন্য ডারলং আদিবাসীদের জন্য যে ইয়েতে শিডিউল ট্রাইব লিস্টে অন্তর্ভুক্তর জন্য যে বিল নিয়ে এসছেন তার জন্য ওনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সাথে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি যিনি বলেছেন যে ভারতবর্ষের পিছিয়ে বর্গের জন্য, আদিবাসীদের জন্য, দলিতদের জন্য, সবার জন্য কাজ করবেন, এই উদ্দেশ্যে একটা পদক্ষেপ। আমরা জানি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে অনেক আদিবাসী আছে, অনেকেই এখনো একই রাজ্যে এক রাজ্যে আদিবাসী হিসাবে গণিত, বা অন্য রাজ্যে সেটা তারা সেই সুযোগটা পায়নি। যেমন আমাদের ঝাড়খণ্ড, উড়িষ্যা, পশ্চিমবাংলা, ত্রিপুরাতে সাঁওতালরা আদিবাসী, কিন্তু আসামের সাঁওতালরা আদিবাসী নয়। তাদেরকে ব্রিটিশ পিরিয়ডে তখনকার বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যার থেকে তাদেরকে চা বাগানে কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। এখনো ওখানে তারা বসবাস করে আছেন, কিন্তু তারা আজ পর্যন্ত তারা সেই আদিবাসীদের সুযোগ সুবিধা পায়নি, যেহেতু তারা শিডিউল ট্রাইব লিস্টে নেই। এইভাবে অনেক জাতি আছেন, তারা এখনো শিডিউল ট্রাইব লিস্টে স্থান পায়নি। এই জন্য আমাদের এখনকার যে ভারতবর্ষের আমাদের যতগুলো সুযোগ সুবিধা আমরা আদিবাসীদেরকে প্রকৃতভাবে
তথ্য অনুসন্ধান করে তাদেরকে যাতে আদিবাসীদের লিস্টে আমরা আবার তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে তাদের যে প্রকৃত সুযোগ সুবিধা আমরা সেটা মানে দিতে পারি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে একটা সমস্যা আসছে, এটা হচ্ছে যে এখন সেখানে প্রচুর ফেক এসটি সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে, আর যারা মানে আগে আছে তারা কিন্তু এই আদিবাসীদের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করছে। আমরা চাই এই আদিবাসী উন্নয়ন আদিবাসী দপ্তর তাদের প্রকৃত অনুসন্ধান করে সেই সমস্ত ফেক সার্টিফিকেট ধারে অন্যান্যদের তালিকা থেকে বাদ করে তাদের সার্টিফিকেট গুলোকে বাদ করে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। শ্রী ইটি মোহাম্মদ বশির জি। Sir, thank you very much. Sir, with regard to this bill, is to amend the list of tribal group of Tripura. They have fulfilled all the formalities and sent it to the parliament, and we are making an enactment on that. Of course, it's okay. That's welcome also. Sir, participating in this discussion, I would like to mention certain general things in brief. Number one, sir, programs are there, legislations are there, various kind of commission reports are there. Despite all these things are going from bad to worse as far as tribals are concerned. My learned friend Suresh has mentioned certain things. I would like to support that. Sir, I wish to raise action taken report on 26 report on subject monitoring of scheduled tribe subplan SP and now called as tribal STC by Ministry of Tribal Affairs and the implementation for the development of various schemes. I wish to quote that because there is so much time. I wish to quote certain things from the authentic report of the Parliamentary Standing Committee with regard to implementation of schemes on tribal sector. I will just quote, sir, the committee, Parliamentary Committee, the committee sad to note that most of the central ministries, department and state and UTs, yes, have not followed the guideline in letter and spirit. The committee note that most of the central ministries have not earmarked allocation of fund according to the guideline. The earmarked fund are much less than the stipulated allocation of fund. As an example, Ministry of Rural Development has earmarked only 5.45 for TSP, whereas the TSP earmarking for the ministry is 17.5%. The committee feels that this utter disregard and non-compliance by most of the central ministries and the state and union territories in implementing the extent of guideline is the reason for the TSP strategy is not able to achieve its objectives as originally envisaged. Sir, it's a sad thing, sir. This section of society, which is neglected like anything, they are not getting the benefit of the scheme we have passed. Now the second point is, sir, only one thing, sir. Pass SC certificate. That also is a bad thing going on, sir. However, they also says that non-section of the tribals, they also obtain in some say wrong way the certificate. That's a misuse that is to be curbed. That's what I want to suggest. Towards the end, I would like to say, sir, it has become a lapse of the So in that way, what I am suggesting is there must be a non-lapsable pool for TSP fund. If that is not there, this misusing and reappropriation and that kind of thing will take place in future also. I humbly request the minister and the government to ensure justice to this section of society. Thank you, sir. माननीय मंत्री जी, अधीर रंजन चौधरी जी। सर, बात यह कि मैंने पहले भी मंत्री जी के ध्यान आकर्षण किए थे कि हमारा बंगाल में जो कुर्मी समाज के लोग रहते हैं उनका एक मांग है कि उनको शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए। ये बिल से सर कोई विरोध नहीं है मेरा, क्योंकि आर्टिकल 342 के तहत हमारे त्रिपुरा की डारलोंग कम्युनिटी को कुकी सबकास्ट में इंसर्ट किए जा रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं। हम सुबह भी आज ये कहा था कि व्यापक तरीके से, ये व्यापक रूप से बिल लाइए,
ये मतलब क्रमों से नहीं, व्यापक तरीके से। सर, इस बीच मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कुर्मी समुदाय के लोगों को सालों भर मतलब सदियों से ये मांग कर रहे हैं कि इनको ये शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया जाए। इसकी पक्ष में मैं पहले भी कुछ तर्क रखा था, आपने कहा था कि ये कमियां वो कमियां, तो कमियां दूर करने के लिए आज मैं और थोड़ा तथ्य आपके सामने पेश करना चाहते हैं। सर, बात यह कि ये जो कुर्मी जो है, ये कुर्मी एक डिस्टिंक्टिव कास्ट है। इसका लैंग्वेज, रिलीजियन along with cultural demographic data, it has been proved as a distinctive caste in the census format code in the forthcoming census 2021. That in order to execute the demand, it is noted that the state of West Bengal have passed the West Bengal Official Language Amendment Bill 2018, accepting Kurmali as one of the official state languages of Bengal. In Jharkhand, Kurmali language has been given the status of second state language. हमारे दुबे जी है, निशिकांत दुबे जी को जानकारी है। सर, बात यह है कि कुर्मी is one of the most primitive tribes of old Chotanagpur region of India as well as the state of West Bengal, particularly in the Jungle Mahal region. In the British census of 1872, Kurmi were analyzed as the Kurmis of woods, Jhari Kurmi, produced in support of the report on the census of Bengal 1872 by H. Beverly, Inspector General of Registration, Bengal, described Colonel Dalton mentioned some Jhari Kurmis or Kurmis of the woods in Chotanagpur who are said to worship strange gods. Descriptive ethnology of Bengal 1872 by Edward Dalton describes in the province of Chotanagpur the ancestor of the people now called Kurmis. ये मेरी बात नहीं है सर, ये तथ्य के आधार पर मैं बोल रहा, बस हो गया सर। सर, in 1911-1921, they were again classified as Aboriginal tribe by the Census of India 1911, Volume 5, Bihar, Odisha and Sikkim, Part 1 described. The Kurmi, Koiri and Kurmi are two great cultivating castes of Bihar, but the latter is also the name of an Aboriginal tribe in Chotanagpur and Odisha state. मुंडा जी वहां से आते हैं। It is also meant, sir, ये बात यह कि हिंदू ट्राइब 1941 by Anthropological Survey in British India. Suffice to say that their caste in unison of language, religion, culture, rites and rituals, fairs and festivals still continues until today by its own custom, culture and tradition. They are still considered as a distinctive caste. It is to be noted that the state of West Bengal government, as the information I have gathered, they have supported, they have referred it to you, but I don't know where the lacuna lies. So if you are generous enough to spell it out, that yes, these are the problems for which you are not being able to insert the Kurmi in the scheduled tribe list. So मैं दोबारा आपसे ये मांग कर रहा हूँ कि आप ये कुर्मी को ये शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में शामिल करें। सर, बड़ी इस विषय पे सर मैं आपको भी निवेदन करूंगा कि हिंदुस्तान के ट्राइब्स बहुत सारे हैं सर, 645 करीब ट्राइब्स है। इन लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। बहुत सारे योजना तो इनके लिए बनाए जा रहे थे, लेकिन ये योजना को ये तब्दील नहीं होते धरातल में, ये मुंडा जी भी जानते हैं। तो इसी के मद्देनजर हम चाहते हैं कि इंडियन ट्राइब्स के ऊपर एक सही ढंग से चर्चा हो और कुर्मी को इस तरीके से, जैसे कि आप उड़ीसा त्रिपुरा की एक छोटे से तबके को इसमें शामिल कर रहे हैं, कुर्मी को भी इसमें शामिल करके कुर्मी लोगों को दशकों भर जो आंदोलन जो मांग उसको आप पूरा करें। नमस्कार। माननीय मंत्री जी, तुम्हारा अनुमान बेनीवाल जी क्या लेना देना है इसमें? यूं ही बोलना है, इसलिए बोलना है। हाँ। हमारे अध्यक्ष महोदय, आज त्रिपुरा के संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा हुई है और इसमें हमारे सभी सदन के बहुत ही वरीय माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। हमारे विभिन्न दलों के सांसदों के दृष्टि से हमारे प्रदूत वर्दुलोई जी, तफीर गांव जी,
श्री ए राजा जी, श्रीमती गोमती माधवी जी, श्रीमती प्रतिमा मंडल जी, अरविंद सावंत जी, फैजल मोहम्मद जी, हुसनैन मसूदी जी, कौन बैठेगा, हमारे सप्तगिरी शंकर उलाका जी, रेवती त्रिपुरा जी, इंद्रसेन सुब्बा राव जी, शरणिया जी, अगाथा संगमा जी, और इसके साथ साथ ही भरतरी महताब जी, गिरीश चंद्र जी, जसकोर मीणा जी, हमारे सुरेश जी, कुनार हेमरम जी सहित इटी मोहम्मद बशीर जी और हमारे अधीर रंजन चौधरी जी। अभी हम सब के बीच में विभिन्न प्रदेशों के ऐसे समस्याओं पर जो जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय समस्याओं से जुड़ी हुई, ये त्रिपुरा से संबंधित विधेयक जिसमें कुकी के सबकास्ट के रूप में डारलोंग कम्युनिटी को एक सबकास्ट के दृष्टि से संशोधन के लिए लाया गया है। ये ऑलरेडी ट्राइबल लिस्ट में है कुकी ट्राइब में, लेकिन ये शब्द नहीं होने के कारण उनको कई बार और उनके तरफ से भी कई बार ये विषय सामने आया है और इसके सारे औपचारिकताएं राज्य सरकार ने पूरी करते हुए भारत सरकार को और भारत सरकार के विभिन्न जो मापदंड है, जो तय मापदंड है, उसके आधार पर मंत्रिपरिषद के स्वीकृति उपरांत इसको लाया गया। इसके अलावा आज जो चर्चा में बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस बात की शंका जाहिर की कि जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का बजट है वो बजट समुचित नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने लक्षद्वीप के संबंध में वहाँ के शेड्यूल्ड ट्राइब, क्योंकि वहाँ एक व्यवस्था है लक्षद्वीप की, उस व्यवस्था के तहत जो वहाँ के पेरेंट्स होते हैं, उसके जो बच्चे होते हैं आउटसाइड इंडिया या आउटसाइड लक्षद्वीप में होते हैं, तो उसकी बहुत सारी औपचारिकताएं निर्धारित की गई। ऐसे बहुत विषय इस सदन में अपने चर्चा के माध्यम से लाया गया। मैं सबसे पहले अध्यक्ष महोदय ये बताना चाहता हूं कि भारत सरकार जनजातीय विकास के लिए प्रतिबद्ध है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात पर बल दिया है कि ट्राइबल एंड ट्राइबल एरिया का डेवलपमेंट किए बगैर हम देश को समुचित रूप से विकास के लिए जो सपना हम देख रहे हैं वो पूरा नहीं हो सकेगा और इसलिए हमें बहुत ज़्यादा जोर देना है, ध्यान देना है और विभिन्न जो पैरामीटर है मानव विकास सूचकांक का उसको पूरा करना है। और इसी दृष्टि से आप यदि देखें तो लगातार 2014 के बाद से फंड के दृष्टि से, निर्णयों के दृष्टि से, कार्यक्रमों के दृष्टि से और कार्यान्वयन के दृष्टि से लगातार राज्यों के साथ विभिन्न स्तरों पर कैसे कार्यक्रमों को सफल किया जाए, एक तरफ इसकी कोशिश हो रही है तो दूसरे तरफ राज्यों को लगातार आवंटित राशि में बढ़ोतरी हो रही है। आप यदि 2014-15 से 2021-22 तक को देखें तो जो एसटीसी कंपोनेंट है उसमें कई गुना वृद्धि हुई है और उसी दृष्टि से राज्यों को भी प्रेरित किया गया कि जो सब प्लान प्रोग्राम है, भारत सरकार एसटीसी कंपोनेंट के माध्यम से सभी मंत्रालयों के साथ यह कोशिश करती है कि उन राशियों को हम विभिन्न स्टेट के जो नोडल एजेंसी है, डिपार्टमेंट है, वो अच्छे ढंग से काम करें। और इसलिए जहां उन 14-15 में आप देखेंगे 16,000
111 करोड़ था, आज 21-22 में वह 87,585 करोड़ की राशि आवंटित की गई। तो यह उत्तरोत्तर वृद्धि का क्रम जारी है और उसी ढंग से हम लोग राज्य सरकार को इस बात के लिए कि जो ट्राइबल सब प्लान बनाए, वो ट्राइबल सब प्लान व्यवस्था है कि उसके अनुपात में बनाए जो वहाँ की आबादी है, और ये सुनिश्चित करें कि वो राशि का उपयोग उन्हीं क्षेत्रों में उन्हीं लोगों के बीच में हो जिसके लिए राशि की व्यवस्था करणांकित की गई है। और इस दृष्टि से लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पहले प्लानिंग कमीशन इसकी मॉनिटरिंग करता था, अब यह मंत्रालय कर रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते हैं और प्रधानमंत्री की इच्छा है और प्रधानमंत्री उस लक्ष्य को निर्धारित करते हुए कार्य को आगे बढ़ाने का संकल्प को हमेशा दोहराते हैं कि जिससे हमारा आउटकम अच्छे ढंग से आए और जो मानव विकास सूचकांक का जो मूल उद्देश्य है वो पूरा हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे वो हेल्थ में हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट में हो या अन्य विभिन्न कार्य योजना जो ग्राम्य। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि वहाँ नेटवर्क का स्थिति अच्छी नहीं है और आप डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं। मैं आपको इस सदन में बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों आईटी मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लिया है और उसकी सूची है हमारे पास में कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से एक नया कार्य योजना तैयार किया गया है और उस कार्य योजना में ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी गांव में ब्रॉडबैंड और 4G कैसे पहुंचे, और लगभग 7,000 करोड़ की व्यवस्था उसके लिए अलग से की गई है एसटी कंपोनेंट के अंदर में। गांव को उसका अंत्योदय डेटा लिया गया कि किस गांव में किस चीज की कमी है और उसको कैसे पूरा किया जाए। इसी तरीके से इस अमृत महोत्सव जब हम मना रहे हैं, अमृत काल मना रहे हैं, तो हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाया है आदि आदर्श ग्राम योजना का, जिसमें लक्ष्य रखा है कि जिस गांव को हम आदि आदर्श ग्राम के माध्यम से जो गैप्स है, और उन गांवों को हम लोगों ने इसमें सेलेक्ट किया है जिन गांवों की आबादी अधिक भी है और जहां गैप्स ज़्यादा है, जहां सुविधाएं कम है, उसको हम सैचुरेटेड मोड में कैसे लेकर के आए कि उस गांव की सारी समस्याओं का समाधान करते हुए मानव प्रबंधन बेहतर ढंग से हो सके और शिक्षा और स्वास्थ्य का गैप भी ना रहे, आधारभूत संरचनाओं का भी उसमें कमी ना हो। तो इस तरीके से आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से इस अमृत काल में हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 36,000 गाँव को हमने उसमें सम्मिलित करके इस बार 7,500 गाँव के लिए हम लोगों ने राशि भी आवंटित कर दिया है कि उन गाँवों को चयन करने के बाद राज्य सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से राशि आवंटित की जा रही है। रूरल डेवलपमेंट की कई योजनाएं हैं जिसमें यदि किसी गांव में प्रधानमंत्री आवास की आवश्यकता है तो पूर्ण रूप से उस आदि आदर्श ग्राम योजना के तहत सारे गांव के जो भी पात्रता रखने वाले लोग हैं उसको पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना मिलेगा, पूर्ण हो जाए ताकि वहां का डिमांड खत्म हो। इसी तरीके से जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वहां पेयजल की व्यवस्था, जो माननीय प्रधानमंत्री का संकल्प है हर घर नल का जल पहुंचे, उस योजना के माध्यम से हर घर को, क्योंकि अधिकतर ट्राइबल एरिया में जो बीमारियां होती है वो जल के कारण होती है, तो शुद्ध पेयजल लक्ष्य के साथ पहुंचाने का कार्य प्रारंभ किया गया है। तो इस तरीके से हेल्थ के अभी एक विषय आया था जिसमें हमने जिक्र भी किया कि जो ट्राइबल एरिया है वहाँ कुछ आनुवांशिक इस तरह की समस्या है जिसको लेकर प्रधानमंत्री स्वयं विभिन्न स्थानों में चर्चा भी किया है। सारे साइंटिस्टों से उन्होंने बातचीत किया है। ICMR के साथ हम लगातार संपर्क है, देश के हेमाटोलॉजिस्ट है उनके कॉन्फ्रेंस लगातार हम करते हैं, उन लोगों से बातचीत करते हैं और ICMR को हमने इस बार हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिल करके अलग से रिसर्च का राशि भी आवंटित किया है। इस तरीके से हेल्थ इश्यूज को कैसे एड्रेस किया जाए, ये भारत सरकार की और ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की प्राथमिकता में से है। एजुकेशन में जहां आप देखेंगे, यदि आंकड़ों को आप देखेंगे तो
आपको आश्चर्य होगा कि एकलव्य मॉडल स्कूल जब आप 2014 के आंकड़ों को देखेंगे और अभी का आंकड़ों को देखेंगे तो आपको स्वतः स्पष्ट होगा कि उसमें कितना गैप। पहले एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए मात्र 278 करोड़ का बजट प्रोविजन होता था, अभी उसको संचालित करने के लिए 1418 करोड़ रुपया हम आवंटित करते हैं। इसी तरीके से 2014 में जो हमारा स्कूल की संख्या थी उसके तुलना में इस बार स्कूल डबल संख्या हो गई। पहले हमारी संख्या लगभग 160 थी, वह 365 से अधिक स्कूल की संख्या संचालित जो प्रारंभ की गई है। और ये पूरा होने के बाद लगभग 700 से अधिक विद्यालय 700 से अधिक विद्यालय के लिए माननीय वित्त मंत्री ने लगभग 28,000 करोड़ की स्वीकृति दी है अगले 5 साल में उन स्कूलों को बनाने के लिए। इस तरीके से जो गैप्स है उसको जहां तक डेवलपमेंट प्रोग्राम, मैं सामूहिक तौर से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राज्यों के बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी के बारे में लोगों ने चर्चा किया। वो एक रिसर्च का निर्बाध गति से चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें राज्य की बड़ी जिम्मेदारी है, राज्यों की बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ राज्यों से प्राप्त हुए, कुछ राज्यों से प्राप्त नहीं हुए, उसको विभिन्न स्तरों पर देखा जा रहा है और उसके जो भी निष्कर्ष होंगे मैं निश्चित रूप से, क्योंकि इतने लगभग सभी राज्यों के कुछ कम्युनिटी में, खास करके उड़ीसा के तो बहुत सारे, उसमें लगभग मुझे लगता है कि जितना आपने संख्या बताया है लगभग 62 हमारे पास में रिसीव हुए हैं, उसमें लगभग 14-15 तो क्लियर हो चुके हैं जिसके रिपोर्ट सबमिट होकर के आरजीआई के यहाँ से आ चुका है। इस तरह कई संख्या आपको मैं अलग से उपलब्ध करा दूंगा। और भी बाकी जो भी सदस्यों ने इस विषय को उठाया है उन सारे विषयों पर सरकार संवेदनशील होकर के ये देख रही है कि जो विषय, जो मानक, अध्यक्ष महोदय 1962 से 67 के बीच में इस विषय पर एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी का नाम था लोकूर कमेटी। लोकूर कमेटी ने, क्योंकि यह विषय जब बहुत ज़्यादा चर्चा में आई तो उस समय में इस चर्चा के दौरान एक लोकूर कमेटी बनाई गई जिसमें एक मानक तय किया गया कि ट्राइबल कैरेक्टर इनहेरिट करने वाले लोगों के पहचान कैसे की जाए और उसी आधार पर सभी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्टेट लेवल पे उसका रिसर्च राज्य सरकार कराती है और राज्य सरकार कराने के बाद उसको केंद्र को भेज दिया। केंद्र में आने के बाद में इस विषय को ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री आरजीआई के साथ कंसल्ट करती है, आरजीआई के पास भेजती है और आरजीआई के माध्यम से ये मामला फिर गृह मंत्रालय के पास, फिर तमाम मंत्रालय से कंसल्ट लेकर इसको मंत्रिमंडल में लाया जाता है और मंत्रिमंडल में आने के बाद में इस सदन में चर्चा की जाती है। तो यह सारी औपचारिकताएं विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न कम्युनिटी के मामले में हो सकते हैं जिसको समय समय पर हम चर्चा करते रहेंगे और जानकारी भी हम दे देंगे। माननीय सदस्य जो उसकी जानकारी चाहते हैं कि उसके बारे में क्या रिपोर्ट आया नहीं आया है, और इसलिए मैं माननीय सदस्यों को ये बताना चाहता हूं कि सरकार संवेदनशील है ऐसे मामले को, जिस मामले में वास्तविक रूप से, क्योंकि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है जिसमें ये कहा है कि ये सारा विषय देश का पार्लियामेंट ही चर्चा करके इसका निष्कर्ष निकाल सकता है और इसलिए ऐसे मामले जितने भी आते हैं जो जिस तरह के हैं उस मामले को हम लेकर के आते हैं और इसलिए आज ये डारलोंग कम्युनिटी जो कुकी का सब कास्ट के रूप में लाया गया है उसको सदन में हमने प्रस्तुत किया है। मेरा आग्रह है, वैसे सभी ने इसका सपोर्ट किया है, सभी जितने भी माननीय सदस्य हैं सभी ने सपोर्ट किया, मैं उन लोगों का आभारी हूं। इसको सदन से पास किया जाए और इस तरीके से जो भी इस
अदर्स मामले हैं उसको भी निश्चित रूप से सरकार गंभीरता से देख रही है और उस कमेटी के जो रिकमेंडेशन है उस रिकमेंडेशन के आधार पर जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा खंड 2 विधेयक का अंग बना। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, सुबह शून्यकाल नहीं हो पाया था। अब लिस्ट में जिनका नाम उनका शून्यकाल में मैं नाम बोल रहा हूं और कोई अविलंब लोकमत के विषय होंगे तो उनको भी मौका दिया जाएगा। श्रीमती नवनीत राणा। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मेरे मेलघाट क्षेत्र में ट्राइबल एरिया में ऐसे 6 गांव हैं, गाड़गा, भांडूम, बोराखेड़ा, सवई, ढाकना, भांडूम और धवई। ये 6 गांव में सर 2 तालुके पड़ते हैं हमारे क्षेत्र में, एक धारनी तालुका और एक चिकलदारा तालुका। धारनी तालुका के पास में ये 6 गांव पड़ते हैं, पर इनका 6 गांव के जो अकाउंट जो होल्डर्स हैं उनको 75 से 80 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके चिकलदारा के पास के गांव में इनको बैंक के रिलेटेड कामों के लिए वहां जाना पड़ता है। मैं आपसे विनती करूंगी सर, ये इतने सादे सूदे से लोग हैं हमारे ट्राइबल क्षेत्र में रहने वाले। अगर कोई गरीब व्यक्ति 1000 रुपये अगर निराधार श्रावण बाढ़ का आता है, मनरेगा के अंदर कोई पैसे डिपॉजिट करने जाता है या विड्रॉ करने जाता है, उन्हें 75 से 80 किलोमीटर प्रवास करना पड़ता है ये बैंक के अकाउंट के रिलेटेड काम के लिए। तो मैं आपके माध्यम से विनती करूंगी अध्यक्ष महोदय कि आप ये रिलेटेड जो बैंक के बहुत छोटी सी चीजें हैं पर उन्हें यहाँ तक लाना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ के बैंक मैनेजर इनकी सुनवाई नहीं करते हैं, तो इनको 75 किलोमीटर जाके ये सब बैंक के काम करने पड़ते। तो मैं आपसे विनंती करूंगी कि रिलेटेड इनको आदेश दीजिए और इनके पास तक ये 2000 अकाउंट होल्डर है सर और गरीब लोग हैं मेरे शेड्यूल ट्राइब के, इनको उनके गांव के भीतर एक सब ब्रांच ओपन करके दे जहां इनकी सुविधाएं सब इनके गांव के आसपास मिले। इतनी विनंती मैं आपसे करती हूँ सर, धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से पर्यटन मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया प्रतिष्ठित पर्यटक गंतव्यों के विकास योजना की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के थावे में एक प्राचीन थावे धार्मिक पीठ है जो कि माँ दुर्गा का मंदिर है, जो उत्तर बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है। यहाँ चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मंत्रालय ने पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव यानी प्रसाद योजना शुरू की है, जिससे राज्यों को टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा मिलेगा तथा ग्रामीण टूरिज्म का भी विकास होगा, रोजगार बढ़ेगा। और अब तक प्रसाद योजना में 39 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री पर्यटन से निवेदन करता हूं कि थावे पीठ माँ दुर्गा मंदिर को प्रसाद योजना के तहत प्रतिष्ठित पर्यटक गंतव्यों में शामिल की जाए ताकि यह स्थान ग्रामीण टूरिज्म के रूप में विकसित हो सके और लोगों को रोजगार मिल सके। श्री चंदन सिंह जी। श्री चंदन सिंह जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हाँ, जी जी। मेरा संसदीय क्षेत्र नवादा एक सिंचाई विहीन जिला है। यहाँ के किसानों को सिंचाई की समुचित सुविधा उपलब्ध
कराने हेतु 20 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने अपर सखी जलाशय परियोजना का शिलान्यास किया था, जिसे झारखंड से पानी मिलना था, लेकिन झारखंड सरकार द्वारा पानी मुहैया नहीं कराए जाने के कारण यह परियोजना पिछले 38 वर्षों से अधर में लटकी पड़ी है। बिहार सरकार द्वारा झारखंड सरकार से बार बार पानी मुहैया कराए जाने का आग्रह करने एवं नेशनल वाटर कमीशन की सहमति एवं निर्देश के बावजूद झारखंड सरकार इस परियोजना हेतु पानी उपलब्ध नहीं करा रही है, जिसका खमियाजा यहाँ के किसानों को उठाना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करना चाहूँगा कि इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए झारखंड सरकार को निर्देशित करे, ताकि 38 वर्षों से अधर में लटकी अपर सखी जलाशय परियोजना मूर्त रूप ले सके। श्री T.N. Prathapan ji. Honorable Chairman Sir, 10 Central Labour and Trade Unions started a 2-day national strike from today's midnight. This is one of the largest national-wide strike in last 10 years. Actually, this 2-day national strike reflects the desperation of people. One of the main demands of the strike is scrapping labor code, which is anti-working class and inhuman. It is a genuine concern as unemployment is increasing in our country and the working sector is regulated for capitalist interests. The national strike demands disposal of national monetary pipeline, which is selling our public sector companies and private cooperative companies. Along with the unions in coal, steel, oil, telecom, postal, income tax, copper, banks, insurance, railways, and defense sectors, farmers, unorganized workers, low-grade laborers are all protesting against the anti-people, anti-India policies and privatization. Proper social security for all informal sector workers, Anganwadi teachers and helpers, ASHA workers is an important demand of strike that government shall agree. I kindly request the government to neglect the ego and to agree the demands of trade and labor unions to ensure welfare of common people of this country. Sir, I hope that this strike will open up the eyes of government that the economic policies of BJP government are disaster. While inflation and fuel price is increasing on day basis, government shall revisit the blunders in economy. Otherwise, India will be another Sri Lanka very soon. Thank you. Thank you, sir. श्री उन्मेष पाटिल जी, उन्मेष भैया साहेब पाटिल नहीं है। श्री सुशील कुमार सिंह जी नहीं। श्रीमती कलाबेन मोहनबाई दिलकर जी। माननीय स्पीकर महोदय, आज मैं आपको बहुत ही गंभीर विषय पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। एक तरफ हमारा देश बेरोजगार की समस्या से जूझ रहा है। इस समस्या को हल करने के लिए भारत सरकार कई प्रयास कर रही है, परंतु मेरे प्रदेश की हालत इससे विपरीत है। विभिन्न सरकारी विभागों में 20-25 वर्षों से कार्यरत टीचर्स, मिड डे मील वर्कर्स, पंचायत एवं जिला परिषद के कार्य कर रहे छोटे बड़े तकरीबन 100 से 1200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है, जबकि इन सभी कर्मचारियों की भर्ती प्रशासनिक नियम के अनुसार हुई है। यह वही कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में प्रशासक के आदेश पर अपनी जान की परवाह किए बिना घर घर जाकर लोगों की सेवा की और इनमें से कईयों की तो जान भी चली गई। 1.5 साल
पहले तत्कालीन सांसद श्री मोहन भाई डेलकर जी ने यह मुद्दा सदन में उठाया था, जिसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। महोदय, इनमें से कई मामले कोर्ट ने स्टे ऑर्डर जारी कर कर्मचारियों को तुरंत वापस काम पर लेने के आदेश भी जारी किए, परंतु अभी तक किसी को नौकरी पे वापस नहीं दी गई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज फिर 15-20 साल से काम कर रहे हमारे कर्मचारी 450 मल्टीटास्क कर्मचारियों को वेतन घटाने या उनको नौकरी से निकालने की बात अधिकारी द्वारा की जाती है। महोदय, मेरा प्रदेश सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आता है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और गृह मंत्रालय से नम्र निवेदन करती हूँ कि वे इस मामले में संज्ञान ले तत्कालिक उचित दिशा निर्देश जारी करके कृपा करें, ताकि इन सभी कर्मचारियों की नौकरी बच सके। धन्यवाद। श्री बी चंद्रशेखर जी। श्री बी चंद्रशेखर नहीं है। सीपी जोशी नहीं है। श्री भर्तृहरि मेहता सर। Thank you, sir. I'm drawing a urgent public importance issue. It deals with the Ansupa Lake, which is Odisha's largest freshwater lake, spread around 2 square kilometers, stretch in Cuttack district, and it plays host to 5 species of threatened avian species this winter. According to the joint survey conducted by Chilika Development Authority and Odisha Biodiversity Board, this lake attracted 46 species of migratory birds during winter months. The rare and endangered species cited this time are black-bellied tern Sterna acudicoda, river tern Sterna aurantia, lapwing vanillus duvacelli, etc. For the first time, the population of red-crested pockard Rhodonesia rufina was reported more than 1,000 from this lake. Similarly, species like cotton teal Netapus coromandelians and lesser whistling duck Dendrosigna javanica were also recorded in good numbers among all resident birds. Sir, Ansupa Lake is an ideal ecotourism destination with forest cover surrounding the lake. Tourist footfalls here may rise if it is duly exposed through tourism promotion plans. I would therefore urge upon the government to come out with an integrated management plan for Ansupa Lake so this place can become hotspot for endangered migratory birds and tourists also. Thank you. Please. Thank you, Mr. Chairman, sir. Sir, my surrover submission is in respect of one of the important demands of my constituency, Kollam in Kerala. Sir, Punalur town is a municipal town on the eastern part of Kollam district and which belongs to my constituency. Sir, there are numerous people, they are employed outside in foreign countries, and lot of people are going abroad for employment, for study and even for visits. But it is quite unfortunate to note that there is no passport seva kendra in Punalur area. Though it is densely populated and big population, big number of people are working abroad, but there is no passport seva kendra. The nearest passport seva kendra is in Kollam town and the next one is at Thiruvananthapuram. It is very difficult as far as the people of Punalur is concerned to go to Thiruvananthapuram and Kollam to get the passport facilities. It is very difficult. So my humble submission through you, sir, to the government, especially to the External Affairs Ministry, is to commence a passport seva kendra on the eastern part of Kollam district, that is at Punalur. That is one of the necessity of the district. I once again urge upon the Ministry of External Affairs to give sanction for commencing a passport seva kendra at Punalur. Thank you very much, sir. Shri D.N.V. Senthil Kumar ji. Vanakkam, Chairperson. This is regarding the recent hike in petrol prices, the diesel prices and the LPG cylinders. Sir, this affects the common man.
what is the government going to do to regulate this plight of continuous increase in the diesel fuel prices? Sir, we have seen that often the government comes out saying that they don't have anything to regulate with the prices. They say it is the oil companies which regulates the prices. But during the elections, we see that, however, it magically freezes. There is no price rise in spite of the barrel going above $100 a barrel or below. There is no fluctuation of prices. And recently we have seen, in spite of the start of the Russian-Ukraine conflict, there has not been any increase during the election time. So I sincerely urge upon you, through the chairperson, to urge upon the government to direct the election commission to keep on conducting elections throughout the year. So, because that is the only way that the common man can be saved from the price hike of petrol diesel. Or we are in a fear of state where the rise of this petrol diesel and LPG gas may be from morning it will be shifted and evening again there will be another rise. So to save the common man, I urge upon this government to come with elections throughout the year. Thank you, sir. Dr. Umesh Jadhav ji. Thank you, Speaker sir. Speaker sir, I would like to raise a very important issue pertaining to shortage of teachers in Kalburgi Kendriya Vidyalaya in the state of Karnataka. Sir, the vacancy of the most teachers is having a negative impact on the educational system. This in turn creates instability among the parents who have enrolled children in these schools. It is also estimated that around 50 to 60% of the teachers post in the 50 central schools in the state of Karnataka itself are vacant, and the Kendriya Vidyalaya are running their classes with guest faculties. With the guest faculties, we cannot expect the quality of education delivered by the permanent faculties, as there are some tough procedures were followed to recruit the permanent faculty. Sir, I would like to take the example of Kalburgi in KV itself, where there are 12 permanent sanctioned posts of teachers in primary section, out of which only 5 were working, and higher secondary total 15 sanctioned posts are there, out of which only 4 are working and 11 are vacant. Sir, the reason for this vacancy are this transfer policy they have relaxed. The teachers from North India are recruited in Karnataka, and after relaxation of this rule, they have taken transfer to North, and this is creating a lot of problem. Kalburgi is the most backward area, and we have also requested one more Kendriya Vidyalaya in Gulbarga, in north part of the Gulbarga. Thank you, sir. Shri C.P. Joshi ji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका ध्यान उन लोगों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो पेंशनर हैं। ईपीएस पेंशनर 95 की सूची में बहुत लंबित मांगे उन लोगों की देश भर में चल रही है। देश भर में लगभग 65-70 लाख लोग हैं और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 30 से 40 हजार लोग ऐसे हैं जो आज भी इस मांग को पूरी होने की बाट जोड़ रहे हैं। सभापति महोदय, इनको जिन्होंने पूरे जीवन भर अपना खून पसीना उस इंस्टीट्यूशन को, संस्था को चलाने के लिए उस मेहनत भर के पूरा जीवन भर लगाया, आज उनको पेंशन के नाम पर 200 से लेकर 3000 रुपया मिलता है। और इस कोविड पैंडेमिक इस कार्यकाल में हम लोग देखें तो उनको चिकित्सा और आम छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी बहुत तकलीफ देखनी पड़ी। जिन्होंने पूरा जीवन उस नौकरी में निकाल दिया, आज वो न अपना मकान बना सकते हैं, न बच्चों की शादी कर सकते हैं, न छोटी मोटी जरूरत चिकित्सा सुविधाओं के लिए कोई उनको लाभ मिल पाता है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि बहुत लंबे समय से इनकी मांगे सरकार के पास पेंडिंग है। इनको आयुष्मान भारत योजना से भी जोड़ देंगे तो इन लोगों को चिकित्सा सुविधा उसके माध्यम से मिल पाएगी, और सामाजिक सुरक्षा की योजना से अगर जुड़ जाएंगे तो इनको थोड़ा लाभ मिल पाएगा। जो चाहे अर्ध सरकारी नौकरी में हो, चाहे डेयरी में हो, माइनिंग में हो, चाहे छोटे मोटे उद्योग में हो, इन्होंने पूरा जीवन भर निकाला है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि इनकी लंबित मांगों को पूरा किया जाए ताकि इनको और उनके परिवार को आने वाले समय की सुरक्षा मिल पाए। मैं आपकी तरफ से दीप सिंह राठौड़ जी। दीप सिंह राठौड़ जी जी। माननीय अध्यक्ष महोदय,
मेरे साबरकोटा लोकसभा मत क्षेत्र में चिलोड़ा से हिम्मतनगर होकर श्यामलाजी हाईवे निर्माण कार्य चल रहा है। एक हाईवे में 4 लेन से 6 लेन में परिवर्तन हो रहा है। पिछले बहुत लंबे समय से हाईवे का निर्माण कार्य की बिल्कुल न के बराबर धीमी गति से हो रहा है। संबंधित अधिकारियों को भी इस विषय पे रूबरू माहिती कर की है, लेकिन कोई फर्क नहीं है। मेरे मत क्षेत्र से लोगों के भी भारी तकलीफ सामना करना पड़ता है। यह रूट पे वाहनों की भारी दिक्कत हो रही है, ड्राइविंग करना पड़ना भी मुश्किल हो रहा है। टोल रोड पे धीमी ड्राइविंग गति से स्वीकार्य नहीं है, फिर भी टोल टैक्स लेना चालू है। ये टोल बूथ ऐसी जगह पे है जहां आसपास के गांव के लोगों किसानों को नजदीक से बाजार केंद्र तरफ और पांती तरफ जाना आना और आगे जिला के मुख्यालय हिम्मतनगर रोजाना जाना पड़ता है। ये महत्वपूर्ण बात की ध्यान में रखते हुए दोनों तरफ 15 किलोमीटर के किसानों को वाहनों को न्यूनतम दर पे मासिक पास का प्रावधान देने का लिए मेरी विनती करता हूं। साथ में जरूरी सर्विस रोड और नजदीक गांवों के लिए आमने सामने आने जाने का लिए सर्विस रोड जरूर और कट देना भी विनती करता हूं। आपके माध्यम से संबंधित विभाग से एनएचआई को इस विषय में तुरंत सही कदम उठाए ऐसी मांग करता हूं और टोल रोड पूरा करने के बाद भी टोल टैक्स वसूल करे, यही मेरी अपने माध्यम से मांग। श्री एंटोनी जी नहीं है, एंटोनी साहब नहीं है। डॉक्टर संजीव कुमार जी, डॉक्टर संजीव कुमार शिंगरी, श्री निहाल चंद चौहान, निहाल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति जी, देश के प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना किसान की फसल दुगनी हो, इसके लिए फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई और मैं समझता हूं कि फसल बीमा योजना में किसान को फसल का उचित मूल्य मिले और अगर फसल खराब हो जाए तो उसका कंपनसेशन भी किसान को कंपनी दे, ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी की ये योजना थी। सभापति जी, मेरे लोकसभा क्षेत्र श्री गंगानगर में फसल बीमा योजना ई मित्रा और सीएससी पोर्टल के द्वारा होती है। श्री गंगानगर में फसल बीमा योजना में 5,500 किसान की खरीफ की 2021 की क्लेम जो ई मित्रा सीएससी के माध्यम से एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने करवाया था, करीबन 1,37,000 पॉलिसी जो एसबीआई ने रद्द कर दी है। और मैं समझता हूं कि जब किसान को इतना बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि किसान पूरे डॉक्यूमेंट्स दे नहीं सकता, छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स को लेके वो पॉलिसी रद्द की जा रही है। मैं आपसे आग्रह करूंगा और केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पोर्टल को दोबारा खुलवाकर कृषि विभाग द्वारा इसकी रिपोर्ट मंगाकर उस पोर्टल पे डाली जाए। इसी तरीके से मेरा जो जिला हनुमानगढ़ जिला भी है, उसमें एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में करीबन 1,000 किसान का पैसा रोक रखा है। करीबन 2 लाख पॉलिसी किसान की इस कंपनी ने भी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ने रोक रखा है। मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह है कि इन दोनों को आदेशित करें कि किसान की जो पॉलिसी है, जो किसान का पैसा है वो रोके नहीं, दोबारा पोर्टल खुलवाकर कृषि विभाग द्वारा उस पोर्टल पे किसान की जो डॉक्यूमेंट्स है वो मंगवाकर इन किसानों को राहत मिले, ताकि किसान को फसल का उचित मुआवजा किसान को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संजीव कुमार शिंगरी जी। Thank you, sir. This is regarding a bridge connecting Andhra Pradesh and Karnataka, sir, of my constituency. People of Andhra Pradesh and Karnataka have been requesting for construction of a bridge across Vedavati River, the so-called Hagari River, since more than a decade. The river divides AP and Karnataka, which forms a boundary line nearly for 20 kilometers. A bridge connecting Gulem village of Andhra Pradesh and Basarkod village of Karnataka will benefit lakhs of people of Bellary district and Alharvi mandal of Andhra Pradesh. Sir, few years back, Honorable Minister for Roads, Transport and Highways, during his visit to Bellary district, promised to sanction a bridge here. Sir, there are 4 points of justification for the request of bridge, sir. One is Gulem village of AP is famous for 200-year-old Gadalingeshwara temple. So nearly daily, hundreds of people from Karnataka traverse the river bed and visit the temple, sir. Likewise, thousands of devotees visit the temple every new moon day
and lakh of people visit annually on the car festival day. Similarly, a Chelukuri village of Bellary district has famous Erithatha Swami temple, sir, which attracts thousands of devotees from Andhra Pradesh. The proposed bridge facilitates the pilgrims from Andhra Pradesh. And the fourth valid point is, sir, there is alternate route of 27 kilometers. The journey is very tedious, arduous journey. So, majority of the commuters, they prefer to cross through the river bed. And this bridge reduces nearly 27 kilometers of hard journey, sir. So, there is a lot of human loss and property loss during flash floods. So, I request the Honorable Minister to consider this promise, sir. So, people of both states have social networking since ages. The proposed bids can strengthen inter-social networking for health, education, business and marriages. Sir, there is a famous quote called, American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good. So this same quotation is seen on the walls of the Office of Minister of Roads and Transport, sir. And I request the Government of India to make their slogan worthwhile. Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas. Thank you. So this is a promise given by Honorable Minister. I request the Minister to keep his promise. Thank you, sir. Sushil Kumar Singh ji. जी सभापति जी, धन्यवाद कि मुझे आपने बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण बात सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। देश भर में आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनके पक्के भवन बने हुए हैं। ये इस बाल विकास योजना के तहत छोटे छोटे बच्चों की देखभाल की जाती है और उसमें 2 पद होते हैं, एक सेविका का और एक सहायिका का। 5 मिनट बाद हमारी ही सरकार ने 2017 के मार्च महीने में जो 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ था, इनके मानदेय को 3000 से बढ़ाकर लगभग 6000, सेविका के लिए 5950 रुपया सेविका का जी और सहायिका को 1500 रुपये से बढ़ाकर 2975 रुपये किया था। ये बढ़ोतरी 5 वर्ष पूर्व हुई थी। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि ये योजना बहुत अच्छी है और ये जो महिलाएं हैं सेविका सहायिका के रूप में अच्छा काम करती हैं। कोरोना के विषम परिस्थिति में उस चुनौतीपूर्ण समय में भी इन लोगों से सरकार ने काम लिया और शैक्षिक तरीके से इन लोगों ने काम भी किया। बाद में हम लोगों की सरकार ने इनको कोरोना वॉरियर का दर्जा भी दिया। इसलिए मेरा निवेदन होगा कि इनका मानदेय अभी जो न्यूनतम जो मजदूरी है उससे भी कम है, तो इनके मानदेय को बढ़ाया जाए ताकि ये अपना परिवार चला सके, अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके। महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री M.K. राघवन जी। Sir, the National Pharmaceutical Pricing Authority of India on 25th of March has announced a 10.7% change in the wholesale price index for the calendar year 2021 over the corresponding period in 2020. Sir, this would mean that the early 800 scheduled medicines included in the national list of essential medicines used in most common ailments will now increase by a steep 10.7% beginning 1st April. Sir, this list will include medicines such as paracetamol, azithromycin, other antibiotics, other mineral and vitamin tablets, etc. Sir, these medicines are used to treat common conditions such as a fever, infections, heart diseases, hypertension, skin diseases, and among others. If such a hike is affected, it can significantly affect large number of Indians. Sir, such a price increase will lead to the disruption of our pharma chains and will only help the private companies in amazing huge profits. The situation is quite unwarranted in a country like India, where lifestyle disease and neglected tropical disease are on rise. A significant number of our people depends upon these essential medicines to save lives. I request the government to urgently intervene and do the needful so that this draconian measure is not implemented. Thank you, sir. श्री एंटोनी जी।
Thank you, Chairman. Chairman, I invite the attention of this August House and the government to the flight of the MBBS students returned to India from Ukraine. Their future is under the shadow of uncertainty as they could not complete the course. More than 25,000 Indian students ranging from first year to final year pursue their MBBS degree in Ukraine. They have already spent several lakhs rupees as a course fee. These students are very much worried about their future. The government may take up the issue with the concerned and find out a solution to help the students. If it is difficult to continue studying in Ukraine, National Medical Commission may come up with a solution to help these students so that they can successfully complete their courses. I also request the government to kindly waive off the education loans taken by the students who are doing courses in Ukraine. As this August House is aware, more than 25,000 Indian students have enrolled in various medical colleges and universities in Ukraine. Out of this, more than 5,000 students are from Kerala. These students joined the course with the help of education loans from various nationalized banks in our country. However, the future of these students is under question now. Therefore, I request the government to kindly waive off their loan amount and also provide an alternative mechanism to complete their studies without any interruption. Thank you, Chairman. श्री सुनील तटकरे जी, श्री सप्तगिरी शंकर जी. Thank you, Chairman, sir. Today I would like to raise a very important issue about my constituency, Koraput. Sir, around 113 khalasis, they were engaged in two FCI FST depots of Umri, Jaipur and Raigada FCI since the last 30 years. Sir, these are very poor people who have been on daily payment basis and they have been getting around 675 rupees. But FCI has unilaterally taken a decision to transfer these poor khalasis from Raigada and Umri, Jaipur to 600 kilometers distance place, Balijhori in Jharsuguda district. Sir, these are very poor people. They are Adivasis, most of them are women, and around 30 years they spend their life in this particular area. They are from undivided Koraput district. Now if you send them to Jharsuguda, which is 600 kilometers away, it's very difficult for them to sustain their life. They used to live in government land and they used to build huts there. They are not getting any room allowance. These persons, they have gone to High Court also. They filed a writ petition, but FCI is not listening to anybody and they passed an order in February itself to transfer all these people to Jharsuguda. Sir, I would like to request through you to the Government of India, Ministry of Food and Consumer Affairs Public Distribution, to immediately cancel the orders, prevent this injustice and make sure that justice is provided to the poor Adivasis, the Khalasis who have been transferred to Jharsuguda and they can't live in such a distant place. Thank you, sir. श्री बालू भाई धानोरकर जी. धन्यवाद जी. अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने वर्ष 2018 में अर्धसैनिक बल पैरामिलिट्री फोर्स 60,210 कांस्टेबलों की भर्ती की थी. अंतिम चयन सूची में 3 साल बाद 21 जनवरी 2021 को केवल 55,000 छात्रों को नियुक्ति पत्र दिया गया. शेष पदों के लिए अन्यायग्रस्त उम्मीदवारों का 8 फरवरी 2021 से जंतर मंतर नई दिल्ली में आंदोलन हो रहा है. इस न्यायिक आंदोलन की ओर केंद्र सरकार अनदेखी कर रही है. अब इस अन्यायग्रस्त उम्मीदवारों ने संविधान चौक नागपुर में आमरण उपोषण शुरू कर दिया है. अर्धसैनिक बल की भर्ती प्रक्रिया को महामारी में 3 साल लगे. इसमें कई उम्मीदवार उम्र की सीमा पार कर गए. इन उम्मीदवारों को विशेष रियायत प्रदान कर प्राधान्यता से नियुक्ति की मैं मांग करता हूं. धन्यवाद. अब सूची के अतिरिक्त नाम मैं बुलाऊंगा और समय की भी अभी अनुमति ले लेता हूं. क्यों, हाउस की सहमति है? समय बढ़ा दिया जाए. ठीक है. श्री A.M. आरिफ जी. Sir, all the trade unions in our country except BMS jointly declared a nationwide tool-down strike from 6 a.m. today to 6 p.m. tomorrow against the anti-workers policies of the union government. Sir, the workers of the country demanded to the government to withdraw or repeal the anti-workers labor codes and the Essential Defence Service Act passed by this parliament.
sir, as repealed as draconian farm laws. These labor codes are curtailed the rights of the workers enjoyed from the times of British India. And these anti-workers labor codes are drafted to protect the interest of multinational corporates, companies and factories. And at the same time, they raise their protest against the anti-people policies of the government, like selling the public sector units and public units, including the Navaratna companies, in a throwaway prices to the corporates, and price rise of the cooking gas and fuels which are affecting the entire life of the common people. Moreover, our government reduced the interest rate of EPF pension accumulations to 8.1% from 8.5%. So on behalf of the trade unions, I urge upon the government to consider the demands raised by the workers of our country, who are the real workforce of our GDP, and withdraw the anti-workers labor codes and withdraw the price rise of the petroleum products urgently. Thank you, sir. Shri Y. Devendrappa ji. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಉಸಿರು ನಿಲ್ಲುವ ಮುನ್ನ ಹೆಸರು ನಿಲ್ಲುವ ಎಂಬ ಕವಿವಾಣಿಯಂತೆ ದಿನಾಂಕ 13/2/21ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ದರಪಟ್ಟಿ MRP ಕಂಪನಿಗಳ ಸ್ವಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 13/24/20ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 11/5/21 ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ 13/2 ದಿನಾಂಕ 16/2/22ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಈ ಆದೇಶವು ಕೇವಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಳಪಡುವ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಿರುವುದು ಸಂಗತಿ. ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಮೇಲಿನ MRPಗೂ ಮತ್ತು ರೈತರ ಸಬ್ಸಿಡಿಗೂ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ MRPಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಸಬ್ಸಿಡಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಾಗಲಿ, ಸಬ್ಸಿಡಿಯ ಕೇವಲ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇತರೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ MRPಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸದಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ ಸಂಗತಿ. ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ MRPಯನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ರೈತರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ದರ ಚೀಟಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ MRP ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅದೇ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಕಂಪನಿಗೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳೆಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್, ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್, ಭತ್ತ ಕಟಾವು ಮತ್ತು ನಾಟಿವೇಟರ್, ಕಬ್ಬು ಕಟಾವು ಯಂತ್ರ ಮುಂತಾದವು. ಈ ಎಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಕಂಪನಿಯು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮೂಲಕ ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ನಕಲಿ MRP ನೀಡುವ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. MRPಗಳ ಪಟ್ಟಿಯು ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಆರೈಕೆಗೆ ಡೀಲರ್ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಶೋರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಕಂಪನಿಯು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಬೆಲೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. श्री इम्तियाज जलील जी, कृपया 1 मिनट में बात करें सब लोग। करे बात तो हर बात में खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। अध्यक्ष महोदय, आज इस मुल्क के अंदर उर्दू पूरी तरह से खत्म की जा रही है। एक और उर्दू के स्कूल्स बंद हो रहे, तो कहीं दूसरी तरफ सरकारी एडवर्टाइजमेंट्स नहीं मिलने की वजह से उर्दू अखबारात भी बंद किए जा रहे। और शायद ये क्यों हो रहा है, इसको उर्दू के एक बहुत मशहूर शायर इकबाल अशर साहब ने ये कहा है, क्यों मुझको बनाते हो तासुब का निशाना, मैंने खुद को कभी मुसलमान नहीं माना। देखा था कभी मैंने भी खुशियों का जमाना, अपने ही वतन में हूं मगर आज अकेली, उर्दू है मेरा नाम मैं खुसरो की पहेली। अध्यक्ष महोदय, हिंदी और उर्दू का रिश्ता इस मुल्क के अंदर ऐसा है जैसा माँ और मासी का,
और हमारी तहजीब, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ये कहती है कि हिंदी और उर्दू जिस नजरिए से देखना चाहिए उसी नजरिए से जैसा हम अपनी माँ और मासी को देखते हैं। लेकिन लता हयात ने इस बारे में भी ये कहा है, यही की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है, सियासत ने क्यों इन्हें हिंदू और मुसलमान बनाया है। हमें ऐसा लगता है कि आज इस मुल्क के अंदर उर्दू को भी नकाब पहनाकर, हिजाब पहनाकर आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, जबकि हम ये इल्तिजा करना चाह रहे हैं उर्दू जबान को मजहब के चश्मे से मत देखिएगा। अगर आज उर्दू हमारे ही मुल्क में जन्म ली है तो क्यों आज उर्दू अखबारात, क्यों आज उर्दू स्कूल्स बंद किए जा रहे हैं, उर्दू जबान को हम क्यों अलग नजरिए से देख रहे हैं। मैं आप सभी से इल्तिजा करना चाहूंगा, अगर आपके सीने में दिल है, दिल धड़कता है और दिल से आप मोहब्बत करते हैं तो उर्दू जबान को खत्म मत होने दीजिएगा। शुक्रिया। श्री दुर्गादास उइके जी। आदरणीय सभापति जी, आपने लोकहित के महत्वपूर्ण विषय को लोकसभा के पटल पर रखने का अवसर दिया है, इस हेतु आपका सहृदय आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मेरे बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र में लघु मध्यम बृहद उद्योगों का भारी अभाव है, जिसकी वजह से आदिवासी समाज का बड़ी संख्या में पलायन होता है, जहां शारीरिक मानसिक आर्थिक शोषण का शिकार होते हैं। माननीय सभापति जी, मेरे क्षेत्र में तेंदुपत्ता, महुआ, अचार, गुठली, कीमती इमारती लकड़ियां, आंवला, बेहड़ा, हर्रा, मुसलियों प्रचुर मात्रा में दुर्लभ वन वस्तुएं उत्पन्न होती हैं। प्रचुर मात्रा में कच्चा माल हमारे यहाँ होता है, जिसे औने पौने दाम में खरीदार खरीदकर बड़े महानगरों में बेचते हैं। क्योंकि औद्योगिक इकाइयां अन्यत्र महानगरों में हैं, मेरे क्षेत्र की जनता चाहती है कि ये इकाइयां हमारे जनजातीय क्षेत्रों में लगें, ताकि क्षेत्र में युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो सके महोदय, तथा क्षेत्र में सुख समृद्धि आ सके। मैं केंद्र सरकार एवं संबंधित मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि इस दिशा में ठोस पहल करें, ताकि क्षेत्र का विकास तीव्र गति से हो सके। सभापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्रीमती अपरूपा बोद्दार। ধন্যবাদ স্পিকার সাহেব, আমাকে বলবার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আমার আরামবাগ লোকসভার তারকেশ্বরে কেন্দ্র বিদ্যালয়ে বিগত 8 বছর ধরে স্টেট গেস্ট হাউসে চলছে এবং ওখানকার ছাত্রছাত্রী এবং যে টিচার্সরা যারা পড়ান তাদেরও ওখানে খুব অসুবিধা হচ্ছে, আর ছাত্রছাত্রীদেরও ওখানে পড়তে খুব অসুবিধা হচ্ছে। নাম্বার অফ স্টুডেন্টস বাড়ছে কিন্তু জায়গা ছোট। রাজ্য সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অলরেডি জমি দিয়ে দিয়েছে, তা দেওয়া সত্ত্বেও এখনো পর্যন্ত নতুন কেন্দ্র বিদ্যালয় তারকেশ্বরে এখনো পর্যন্ত তৈরির জন্য কোনো স্যাংশন গ্র্যান্ট দেওয়া হয়নি কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে। তাই আমি আপনার মাধ্যম দিয়ে আমার এখানকার কেন্দ্র সরকারের শিক্ষামন্ত্রীকে বলছি যে তাড়াতাড়ি এটা গ্র্যান্টটা স্যাংশন করে ওখানে তারকেশ্বরে তৈরি করা হোক। ধন্যবাদ। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पे बोलने की इजाजत। आपके माध्यम से राजस्थान के अजमेर डिस्कॉम में केंद्र सरकार की विद्युत से जुड़ी सौभाग्य योजना में जिम्मेदारों की मिलीभगत से हुए 290 करोड़ से भी अधिक हुए घोटाले की तरफ विद्युत मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले अजमेर डिस्कॉम के अधीन उदयपुर, अजमेर, बांसवाड़ा, सीकर, भीलवाड़ा, राजसमंद, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिलों में 53,298 घरों में सोलर सिस्टम के जरिए बिजली पहुंचानी थी और इसके लिए अजमेर डिस्कॉम ने 11 कंपनियों को फरवरी 2019 में टेंडर दिए। वे टेंडर 53,200 बोलिए एक मिनट जी 53,298 सोलर का ही हुआ, लेकिन बाद में 83,183 सोलर सिस्टम, जिनमें से अधिकतर सिस्टम कागजों में ही लगाए गए, वे 29,885 ज्यादा घरों में सोलर लगाना दिखाकर 104.89 करोड़ का घोटाला किया। मेरी मांग है सभापति महोदय, क्योंकि केंद्र की सौभाग्य योजना में ऑफ ग्रिड योजना के अंतर्गत ऐसे घरों में सोलर के जरिए बिजली पहुंचानी थी जहां बिजली तारों के जरिए नहीं पहुंचाई जा सकती। इसमें 60% राशि केंद्र सरकार में, 30% राशि बैंक लोन, 10% राशि संबंधित डिस्कॉम को वहन करनी होती थी, जबकि उपभोक्ताओं से 2 से लेकर 5,000 रुपए तक की अवैध रूप से वसूले गए। सबसे मेरी मांग है, ये केंद्र की योजना थी और 200 करोड़ से ज्यादा बड़ा घोटाला सौभाग्य योजना के अंदर अजमेर डिस्कॉम ने किया था। इसके अंदर आप एफआईआर करें, केंद्र सरकार सीबीआई एफआईआर करे, सीबीआई जांच हो, इस घोटाले के अंदर जो भी दोषी हो सलाखों के पीछे हो। बहुत बड़ा घोटाला राजस्थान के अंदर केंद्र की योजना के साथ। मसूदी जी, बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब, जम्मू कश्मीर सरकार ने कुछ महीने पहले कई हजार खलास फूट असामियाँ मुश्तर की,
सिलेक्शन लिस्ट बन गई और सिलेक्शन के बाद ये फैसला हुआ कि ग्रेजुएट जो सिलेक्टीज हैं उनको अपॉइंट न किया जाए बल्कि उनको बाहर रखा जाएगा। लेकिन उसके बाद मेरी सूचना है कि कोई 1800 के करीब ग्रेजुएट जो सिलेक्टीज थे उनको अपॉइंट किया गया। अगर ऐसा किया गया तो बाकी जो रहे हैं जो सिलेक्टेड हैं और ग्रेजुएट हैं उनको भी अपॉइंट किया जाए। उसके अलावा टीचर्स का सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन कंप्लीट हुआ तो उसके बाद ड्यूअल डिग्री की वजह से कुछ एक कमेटी बन गई, उसने जो सिफारिशात दी 2 डिस्ट्रिक्ट्स का सिलेक्शन में अपॉइंटमेंट्स की गई, लेकिन सांबा और कठुआ में, लेकिन बाकी जो सिलेक्टीज हैं वो अगरचे कमेटी ने उनका भी सिफारिश की थी लेकिन अभी तक उनके अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए। तो एक पहली छोटी बात। तो उसके बाद जनाब हम जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ा मसला है हज़ारों मुलाजमीन को जो एनिमल हस्बेंड्री से, फॉरेस्ट से, एग्रीकल्चर से, पेज से और बाकी जो भी महकमे हैं मिनिमम वेज से निसफ दिया जा रहा है, 3000 से भी कम दिया जा रहा है। तो तकरीबन जब तक रेगुलराइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो तब तकरीबन तो पालन करते हुए कानून का मिनिमम वेजेस दी जाएं इन सारे मुलाजमीन को जो अभी तक मिनिमम वेज का इंतजार किए हुए। इसके अलावा एक और बात भी है जनाब, जो लोकल फार्मासिस्ट जो कानून था उसके तहत मेडिकल असिस्टेंट को भी ये कॉम्पिटेंस थी कि वो एज फार्मासिस्ट काम करे, लेकिन 5 अगस्त के बाद जो नया कानून लागू किया गया उसमें ये मेडिकल असिस्टेंट बाहर हो गई। पहले ही मैंने जीरो ओवर के दौरान सवाल पूछा था, उस पर जो मंत्रालय है उन्होंने ये फैसला किया था कि एक अमेंडमेंट लाएंगे फार्मेसी एक्ट ताकि उनको वन टाइम एग्जम्पशन मिले, रिलैक्सेशन मिले, लेकिन अभी तक उस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि उस बारे में कार्रवाई की जाए और ये जो अपॉइंटेड सिलेक्टीज हैं, ग्रेजुएट सिलेक्टीज फॉर क्लास 4 और जो टीचर्स के सिलेक्टीज हैं उनको भी अपॉइंटमेंट दी जाए। बहुत शुक्रिया। श्री कराती संगन्ना जी। Sir, respected Speaker, sir, establishment of EMRS in Koppal constituency, sir. Sir, Speaker, sir, I wish to draw your kind attention to the announcement made by the Honorable Finance Minister during the budget speech of the 2021, sir. In Parliament, in the said speech, the Honorable Minister stated the opening of the new Ekalavya Model Residential School across the country, sir. This visionary step was taken by the Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister to provide the best education for the scheduled tribes community students, sir. Those who are not able to get good education, and this new setup will be very much useful to the ST students, sir. By providing quality education, Koppal constituency comes under the Article 371J of the Indian Constitution. In my constituency, Sirguppa, Ballari district and Maski, Raichur district, a blocks comes under the Legislative Assembly of Karnataka MLA. Both are ST reserved constituencies. Therefore, the guidelines commencing of the new school of EMRS are fulfilled. The issued letter of the authority of the Ministry of Tribal Affairs dated 6/9/21 stating that the Sirguppa, Ballari district and Maski, Raichur district blocks of Koppal constituency do not qualify and not consider the proposal, sir. The said authority issued the letter is not correct, sir. Both our constituency are declared as ST constituency. Therefore, the area is the backward area. The scheme is directly suitable for the said constituency. The गुरजीत सिंह औजला जी, कृपया 1 मिनट में अपनी बात कहिए प्लीज। ਧੰਨਵਾਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਲੀ 1948 ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਈ, 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਬੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਾਂਝੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਸਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੱਲ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਦੀ BSF ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ
सर गवर्नर साहब ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 2014 ਚ ਆਖਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਫੈਡਰਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ प्लीज कंक्लूड कीजिए। सर कर रहे हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लेके आवांगे, संघी ढांचे ਨੂੰ मजबूत करांगे, पर हुण ते सर साडा संघ कटिया जा रहा। पंजाब दे नारे धोखा आ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਧੋਖਾ बर्दाश्त नहीं करांगे। माननीय सभापति महोदय, मैं केंद्रीय विद्यालय की बात रख रहा हूँ। मेरे चुनाव क्षेत्र में दो बड़ी सिटी है, पिंपरी चिंचवड सिटी और पनवेल सिटी, और केंद्रीय विद्यालय 6, लगभग 6 केंद्रीय विद्यालयों में करीबन हर साल 600 से 700 यहाँ एडमिशन के लिए अर्जी आती है और 10 सीटें। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ तो केंद्रीय विद्यालय की सीट पूरी तरह से खत्म की जाए, क्योंकि हमें बहुत तकलीफ होती है सभापति महोदय जी। 600 और 700 अगर वहाँ सीट के लिए एप्लीकेशन हमारे पास आते हैं, 10 सीट के लिए 600 नहीं 10 सीट है, 10 सीट में 690 नाराज हो जाते, हमें इससे तकलीफ होती है। मैं आपसे मांग करता हूँ एक तो सीट बढ़ाया जाए, अन्यथा ये पूरी सीट केंद्रीय विद्यालय की खत्म किया जाए। श्री टी.आर. पारिवेंद्र जी, पारिवेंद्र जी, श्री E.T. मोहम्मद बशीर साहब। Sir, thank you very much. Sir, it is really shocking to know that the names of martyrs who participated in the Malabar Rebellion, which was a bold and brave struggle against British Empire, their names is going to be removed from the Dictionary of Freedom Martyrs as decided by ICHR. So it is learned that about 200 martyrs from Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala will be excluded from the 5th part of dictionary, and next edition will be modified accordingly. Sir, this amounts to jeopardizing the truthful history, and such an action are highly condemnable and objectionable. Sir, there is a calculated move to brand Malabar Rebellion as communal. Sir, it is not fact. It is not correct. It was a historical struggle against the British Empire. Finally, sir, they sacrificed their life for the nation. That was the decision of the British Empire. They sentenced them to the death, and it has happened like that. That was the reason, sir. Their names were written with golden letters in our history. Sir, if we permit to cut up their names, it would be distorting to the history, and we should not be, sir, thankless to the freedom fighters. So I humbly submit that it is to be honored. We should not allow to recommend this ICHR. ICHR is finding fault with them, so it should not be allowed. I humbly request the government to desist from such move. Thank you very much, sir. जी धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। रखिए आपको जी रमेश नाइक सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ सर। धन्यवाद चेयरमैन साहब, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसीलिए आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। मेरा संसदीय क्षेत्र के नवरंगपुर के मालकानगिरी जिले के चित्रकोंडा इलाके में पफलूर, कुरमानूर, धूलीपुट, रालेगड़ा और कालीमेला ब्लॉक के बेजिंगवाड़ा, तेलराई और पोडिया इलाके में कोंडा रेड्डी एक कम्युनिटी रह रहे हैं बहुत दिनों से, उनको जनजाति का दर्जा नहीं मिला है। मेरा निवेदन है कोंडा रेड्डी कम्युनिटी को जनजाति का दर्जा दिया जाए। धन्यवाद चेयरमैन साहब। श्रीमती शताब्दी रॉय। सर, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी बीरभूम में बहुत सारे ट्राइबल गांव हैं, ऑलमोस्ट 800, तो उसमें बहुत सारे चीज की जरूरत है। लेकिन आज मैं बोल रही हूँ एकलव्य स्कूल के लिए, मॉडल स्कूल के लिए। अभी मिनिस्टर ने कहा बहुत सारे बनाया, पीएम में भी बोले थे बनाएंगे। तो मेरा मोहम्मद बाजार जो ब्लॉक है उसमें मैं बता रही हूँ, उसमें एक मॉडल स्कूल बना एकलव्य, जहाँ पे रेसिडेंशियल स्कूल होना चाहिए, जहाँ पे बच्चे वहाँ पे पढ़ सकते हैं। भविष्य में जो बच्चे ट्राइबल बच्चे हो रहे हैं वो आगे बढ़े। और वहाँ पे और एक है जो दुनाचार्य मिशन दुनाचार्य आर्चरी होता है ना, वहाँ पे साई से मैं रिक्वेस्ट है एक वहाँ पे बनाए, क्योंकि वहाँ पे फुटबॉल प्लेयर्स बहुत है,
एथलेटिक्स भी बहुत है। जो ट्राइबल बच्चे होते उनको अगर वो एथलेटिक्स भी नहीं बने, फुटबॉल प्लेयर भी नहीं बने, लेकिन बीएसएफ और डिफेंस में भी उसको चांस मिल सकते, इसलिए उन लोग को तैयार करने के लिए ये साई की बहुत जरूरत है। और आदिवासी जो महिला है उसका, मेरा जो मोहम्मद बाजार ब्लॉक है वहां पे टोटल बीरभूम में 137 ये है ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें 93 to 94 ग्रुप सिर्फ मोहम्मद बाजार में है। तो कितना इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, कितना जरूरी है, ये आपके माध्यम से मैं मिनिस्टर को बोलना चाहती हूँ, इसमें नजर दे तो वो लोग। श्रीमती रीति पाठक। बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका सभापति महोदय। ये विषय सुनने में भले ही छोटा लगे और सबको सामान्य सा लगे, पर मेरे क्षेत्र के लिए बहुत गंभीर विषय है। अध्यक्ष सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वन व पर्यावरण मंत्री से ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी सिंगरौली का एक बड़ा भाग जो है वो जंगलों से घिरा हुआ है। महोदय, ऐसे क्षेत्रों से जुड़े हुए जो हमारे किसान हैं वो अपने खेतों में बड़े ही कड़े मेहनत के साथ खेती करते हैं, फसल उपजाते हैं, लेकिन समस्या ये नहीं है। समस्या ये है कि वहां पर जो हमारे यहाँ लगातार जंगली जानवरों की जो समस्या बनी हुई है वो सिर्फ मेरे ही क्षेत्र में नहीं, मुझे लगता है कि हमसे जुड़े हुए सभी संसदीय क्षेत्रों का ये महत्वपूर्ण विषय होगा। ऐसे जंगली जानवर जैसे नीलगाय हो गए, सुअर हो गए, बंदर हो गए, इनका लगातार आक्रमण हमारे खेतों में होता रहता है और हमारे किसानों के द्वारा उपजाई हुई फसल को नष्ट कर देते हैं। और उसके बाद की स्थिति आप समझ ही सकते हैं कि कैसी स्थिति हमारे किसानों की बनती होगी। महोदय, मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाहती हूं कि किसानों के हितों को ध्यान में रखकर जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था हेतु निर्देश किए जाने की कृपा करें। रम्या हरदास जी। Thank you, sir. COVID cases is getting very low and weekly TPR in country is 0.29 only. People begin their routine life and everything is getting into actual swing. Industries, government officers and MSMEs work with full strength. Schools and colleges open and work regular. The problem I point out here is the railway ministry is not ready even yet to reinstate pre-COVID situation in the case of passenger trains. Most of the passenger trains are not operating the service. Some of them are changed into express trains with a limited stops. Halting stations are not functioning, so common people and daily passengers who depend on passenger trains are suffering more. Throughout Kerala, especially in my constituency, most of the people travel to neighboring state Tamil Nadu for their daily job and depend upon passenger trains. Pollachi, Palakkad, Tiruchendur route. Lack of passenger trains and cancellation of halting stations made their journey miserable. I humbly request the railway should take necessary steps to reinstate passenger train and halting stations immediately. Thank you, sir. श्री धनुष कुमार जी। மாண்புமிகு அவைத்தலைவர் அவர்களுக்கு வணக்கம். நான் சார்ந்துள்ள தென்காசி மாவட்டம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலிருந்து புதிதாக பிரிக்கப்பட்ட மாவட்டம். இந்த மாவட்டம் பிரிக்கப்பட்டு 2 ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிய போதிலும் அடிப்படை கட்டமைப்பு வசதிகளிலோ தொழில்துறை போன்ற துறைகளில் எந்தவிதமான வளர்ச்சியோ பெறாமல் இருக்கின்றது. இதற்கு முக்கியமான காரணமாக கருதப்படுவது இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள பெரும்பான்மையான பகுதிகள் ஹில் ஏரியா கன்சர்வேஷன் அத்தாரிட்டியின் கீழ் வருவதால் புதிய திட்டங்களுக்கு அனுமதி வாங்குவது மிகவும் சிரமமாக உள்ளது. தென்காசி மாவட்டத்தினுடைய வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு ஹில் ஏரியா கன்சர்வேஷன் அத்தாரிட்டியிடமிருந்து திட்டங்களுக்கு அனுமதி வாங்கும் வழிமுறைகளை எளிமைப்படுத்துவதுடன் இந்த மாவட்டத்தினுடைய நகர்ப்புற பகுதியிலான தென்காசி, செங்கோட்டை, கடையநல்லூர் போன்ற பகுதிகளுக்கு இதிலிருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என்று தங்களின் மூலமாக ஒன்றிய அரசாங்கத்தை வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ये विषय मैं सदन में लगभग मैंने अपनी सूची निकाल के देखी तो 20 या 21 बार उठा चुका हूं और शायद इसका समाधान आपके इस आसन पर बैठ करके निकल जाए। और हमारे यहाँ एक निर्माण का कार्य 2008 से शुरू हुआ है, वो राष्ट्रीय उच्च पथ का है, छपरा से लेकर मुजफ्फरपुर का। और अभी अंत में ये तय हुआ कि इस योजना को पूरा कराने के लिए 197 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। बैंकों के साथ बैठक हुई और बैंकों ने 4 महीने के विलंब के बाद अपनी सहमति दे दी।
लेकिन अचानक NHAI के पास जब ये प्रस्ताव पुनः गया और जो योजना 400 करोड़ का था आज 1200 करोड़ रुपए का हो गया है और अगले 3 माह में बारिश शुरू हो जाएगा और फिर ये काम रुक जाएगा। महोदय, आपके माध्यम से आग्रह है कि जो NH-19 का काम है जिसको NHAI के EC के पास जाके अप्रूवल होना था, जो कि अधिकारी इस सड़क को बनने में 7 बार नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चेयरमैन बदल गए, लेकिन सड़क का नक्शा नहीं बदला। और मैं इस विषय को उठाता हूं, जब भी कोई नया चेयरमैन आता है तो वो अपने हिसाब से काम करना शुरू करता है और फिर वो योजना बढ़ करके 100 करोड़ बढ़ जाता है, तो इसका परिणाम होता है कि सड़क का निर्माण में बाधित रहता है। मैं आपके माध्यम से NHAI को और विशेष रूप से NHAI के चेयरमैन से आग्रह करूंगा कि इस EC के बैठक में इसकी स्वीकार करते हुए इस कार्य को पूरा कराया डॉक्टर अमर सिंह जी, जो पिछले 12 साल से लंबित है। धन्यवाद सभापति महोदय। कुछ दिन पहले ही मैं सर भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड ते बोलिया सी जिहड़े केंद्र सरकार ने रूल चेंज कीते आ। सर सिमिलरली उसे तरह ही चंडीगढ़ दे जिहड़े एम्पलॉईज आ उन्हां दे सिविल सर्विस रूल्स चेंज करन दी गल चल रही आ। सर 2 गल्लां पंजाब लई बहुत इंपॉर्टेंट हैगियां ने। सर चंडीगढ़ भी अनडिवाइडेड पंजाब ने बनाया सी, भाखड़ा डैम भी अनडिवाइडेड पंजाब ने बनाया सी। उदों साडे मुख मंत्री दोवां दे वक्त सरदार प्रताप सिंह गैरो सी और प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू सी। सर उदों जिहड़ी 1966 च डिवीजन होई, ये मन्निया गया कि 60% हिस्सा पंजाब दा रहूगा, 40% हिस्सा हरियाणा दा रहूगा, पर रूल्स जिहड़े रहणगे सिविल सर्विस रूल पंजाब दे रहणगे, और हुण चेंज हो रहे आ। मैं केंद्र सरकार नूं ये दसना चाहना, पंजाब ने हिंदुस्तान नूं ज्यादा दिता, असीं अपनी जमीन खराब कर ली, साडा अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो गया, पानी साडी जमीन जहरीली हो गई आ। असीं सारे हिंदुस्तान नूं कणक और चावल पैदा करके दिन्ने हैगे आ। सिक्योरिटी हर चीज असीं पंजाब ने ज्यादा दिता। इस तरह की पंजाब नाल ज्यादतियां ना होण, ये ऑर्डर नूं वापस लिया जाए, ये मैं बेनती करना चाहना जी। श्री फजलुर रहमान जी नहीं है, क्या बात है भाई। दुलाल चंद्र, श्री दुलाल चंद्र गोस्वामी जी के नाम लिखा के क्यों चले जाते हैं भाई? धन्यवाद सभापति महोदय। मैं एक अत्यंत ही दुखद घटना की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। सभापति महोदय, बिहार के मनिहारी और झारखंड के बीच फेरी नाव सेवा चलता है और इसमें मालवाहक जहाज भी चलते हैं। 24 तारीख को मालवाहक जहाज जो है मालवाहक जहाज साहेबगंज का से चला गरमा घाट से, और ये रात के 1 बजे कटिहार के बगल में आकर के गंगा नदी में हिलोर मार देता है और झुक जाता है और 5 नाव जो है 14 में से पानी में डूब जाता है। हम यह कहना चाहते हैं सभापति महोदय कि नाव परिचालन का नियम है सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जहाज का जो परिचालन होता है, लेकिन झारखंड अभी इस परिचालन 3 साल के लिए झारखंड के पास है और ये लोग रात के अंधेरे में चिप्स, गिट्टी, बोल्डर लोड करके और नाव का परिचालन करते हैं, जिसमें 5 नाव डूब गया और नाव डूबने के बाद उसमें ये जो ट्रक के चालक, ट्रक के खलासी मर गए सर जी, और उसमें 2 आदमी का लाश प्राप्त हुआ, बाकी लाश भी प्राप्त नहीं हुआ, ट्रक भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। और झारखंड प्रशासन ये कह रहा है कि नाव सुबह चली थी। अगर नाव सर सुबह चली थी तो रात के 1 बजे पलटा और बिना कटिहार के एरिया में पलट गया वो, और बिना कटिहार का प्रशासन को सूचना दिए नाव वापस, जहाज को वापस साहिबगंज ले गया। सर मेरा ये कहना है कि इस तरह से अनियमितता भर करके और लोगों का जान माल के साथ खिलवाड़ करना, सरकार के रेवेन्यू चुराने का काम, ये काम कौन कर रहा है? झारखंड सरकार के इशारे से कर रहा है, झारखंड प्रशासन कर रही है। आप अनुरोध कीजिए केवल जो आप चाहते हैं सर, या फिर नाव परिचालन करने वाला सर, इसको संज्ञान में लेना होगा
नहीं तो इसी तरह से घटना घटेगी और लोग मरेंगे, और जो परिवार के लोग मरे हैं 10 लाख। Honorable Speaker, sir, thanks for the opportunity. I raise here to draw the attention of the Minister for Chemicals and Fertilizers regarding the subsidy provided for farmers on fertilizers. Sir, in this year budget, that is the coming year budget, the subsidy has been reduced to an extent of 25% compared with the previous year, sir, the current year. Sir, this is going to affect the farmers across the country very severely. Particularly, Tamil Nadu farmers would lose about 1,500 crores of subsidy. This will result in the production cost more for the agriculture, and at the same time, another negative effect is that all the ingredients that are used for manufacturing the fertilizers is going up like anything. This reduction in subsidy, compounded with the increase in the ingredient cost, will raise the market price of fertilizers heavily, and it would affect the food price at the end. The consumers had to pay for it. Therefore, I request the government to take a serious note of it and to curtail the increase of fertilizers cost. Thank you. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मला आपण अतिशय महत्त्वाच्या विषयावर शून्य प्रहारामध्ये बोलण्याची संधी दिलीत. अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री आवास योजना ही अतिशय लोकप्रिय योजना आहे, पण या प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये पात्र आणि अपात्रतेचा जेव्हा विषय येतो त्यावेळेस तुमच्याकडे गॅस कनेक्शन आहे म्हणून तुम्ही घरकुल योजनेसाठी अपात्र, तुमच्याकडे मोबाईल आहे म्हणून तुम्ही घरकुल योजनेसाठी अपात्र, तुमच्याकडे टीव्ही सेट आहे म्हणून तुम्ही घरकुल योजनेसाठी अपात्र, तुमच्याकडे मोटरसायकल आहे म्हणून घरकुल योजनेसाठी अपात्र. अध्यक्ष महोदय, आपण गॅस कनेक्शन त्या ठिकाणी सामान्य माणसाला घ्यायला लावले आणि आता तेच गॅस कनेक्शन तुमच्याकडे आहेत म्हणून तुम्ही जर घरकुल योजनेचा लाभ त्याला देत नसाल, त्याच्यापासून वंचित ठेवत असाल तर ही अतिशय दुर्दैवाची गोष्ट आहे. ग्रामीण भागामध्ये ह्याबद्दल तीव्र प्रमाणात नाराजी आहे आणि म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की ह्याच्या बाबतीतल्या ज्या अटी शर्ती त्या ठिकाणी ठेवल्यात पात्र आणि अपात्र करण्याच्या, त्याच्यामध्ये दुरुस्ती करून त्या ठिकाणी ह्या जाचक अटी रद्द करून सामान्यातल्या सामान्य माणसाला त्या ठिकाणी घरकुल प्रधानमंत्री घरकुल योजनेचा लाभ घेता यावा अशा पद्धतीची व्यवस्था सरकारनं करावी ही विनंती. श्री बी चंद्रशेखर. Thank you very much, sir, giving the opportunity. Raise an important issue related to my parliamentary constituency. The central government has sanctioned numerous road and national highway projects in Andhra Pradesh over the last 5 years. A new highway is planned from the Visakhapatnam port to Bhogapuram in the Vijayanaram district, where a greenfield airport is coming up. The proposed highway would be extremely useful as it would shorten the distance between the Visakhapatnam port and the state of Odisha and Chhattisgarh. It would pass through the Rishikonda and Bhimli beach corridor projects along the coast. Thus, the project would increase road convenience in the state and also contributed to the development of tourism in the region. The development of the national highway would also provide easy convenience to the proposed airport at the Bhogapuram for the people of Andhra Pradesh. So therefore, I would request the Honorable Minister of Road Transport and Highway Ministers to expedite the work on the proposed highway from Visakhapatnam port to Bhogapuram. Thank you. श्री जसवीर सिंह गिल जी. ਧੰਨਵਾਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰ. ਸਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਠਿਆ. ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਡਾਨਸ ਕੈਡਰ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ. ਸਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ. ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਗਈ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਬਚਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ
पंजाब सर्विस रूल जेडे उदा दे उदा रहन दिते जान। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने बोलने का समय दिया। आपके माध्यम से मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान अपने लोकसभा जिला भिंड के किसानों की समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। मेरे लोकसभा का जिला भिंड कृषि की दृष्टि से बड़ा उत्तम जिला है। कृषि में भिंड को और समृद्ध और क्षमतावान बनाया जा सकता है। केंद्र द्वारा देश में बड़ी संख्या में प्रत्येक जिलों में कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की स्थापना की गई है। भिंड में भी एक कृषि विज्ञान केंद्र है, पर जिले की भौगोलिक क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण संपूर्ण जिले के किसान इस लाभ से वंचित रह जाते हैं, जिस कारण जिले में अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की अति आवश्यकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है कि हर किसान की आय दुगनी हो। इसलिए मैं आपके माध्यम से पुनः अनुरोध करती हूं कृषि मंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी के स्वप्न को साकार करने हेतु भिंड जिले में एक अतिरिक्त कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की अति आवश्यकता है, और जिससे कि किसानों की आय एवं क्षमताओं में वृद्धि हो। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री वी कलानिधि जी। Very much, sir. Sir, railway recruitment boards are recruiting several thousands of people every year, sir. It has already been a problem in Tamil Nadu, where we have found that most of the people who are recruited are from other states, and local preference is not being given for most of the southern states. And on top of that, we are also hearing that railway recruitment boards are also going to be shut down, where the number is going to get reduced. On top of that, a shocking news that we heard is the unreserved category, the cut-off marks of the exams put up by the railway recruitment boards are open to in the public forum, sir. In the websites, we find that the unreserved categories cut-off mark is lower than the reserved categories. How is it possible? I have never understood, sir. This has been happening for the last 3 to 4 years. From 2017-18, the unreserved category cut-off marks are lower than OBC, SC and even ST candidates, sir. So I have also taken it to the Minister of Railways, and explained it to him through a letter and also in person, and he said that the matter has been looked into. But following that, I found that it still persists that way, and I urge upon you to insist on the government to ensure that the unreserved categories jobs are not taken away, sir. Thank you very much. श्री दानिश अली जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका दिया। सर, मेरे लोकसभा क्षेत्र का एक छोर आबरोहा से शुरू होकर के दूसरा छोर हापुड़ में खत्म होता है। इस हापुड़ छोर पर आखिरी गांव बिगास है। सर, जब मैं चुनाव लड़ रहा था तब भी और पिछले विधानसभा चुनाव में इस गांव के लोगों ने वोटिंग डालने से इनकार कर दिया था, इलेक्शन का बायकॉट करने का ऐलान किया था। इनकी जेन्युइन समस्या क्या है सर, आपको जानकारी में है कि बाबूगढ़ छावनी जो कहते हैं वहां पर EBS एक्विन ब्रीडिंग स्टड जो है 1811 का बना हुआ है, जहां पर हॉर्स ब्रीडिंग होती है डिफेंस के लिए। वहां से इस गांव का रास्ता उसमें को निकल के है, पूरे उसमें अच्छा रास्ता बना हुआ होता है, लेकिन क्या है कि वो जो 1 किलोमीटर का रास्ता है वो नहीं बन रहा है। हमने उनसे कहा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा है कि या तो उसकी NOC दे दें तो हम अपने MP लेड से बनवा दें या जिला पंचायत से किसी और निधि से बनवा दें, लेकिन EBS बाबूगढ़ जो है वहां का लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ना तो NOC देता है ना वो रास्ता। आप देखिए सर, वहां जो बच्चियां स्कूल जाती हैं, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, इतने इतने गड्ढे हैं। मैं भी 2 दिन पहले उस गांव में होकर आया और वाकई मतलब वो जेन्युइन समस्या है। कहीं ना कहीं रेड की बात है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है, इनके विकास गांव जो है इनके लोगों को न्याय दिलाए और वो रास्ता बनवाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे बोलने का मौका देने के लिए सर आपका और ऑनरेबल स्पीकर सर के पास मैं बहुत आभारी हूं सर। सर, अर्धनारीश्वर के परम भक्तों के विषय में आज कुछ मैं कहना चाहता हूं सदन में सर। सर, किन्नर समाज जो हमेशा ही एक साहसी और प्रेमी समाज रहा है सर, रामायण में जो मैंने सुना है और पढ़ा है सर, जब भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला था तब उनके पीछे पीछे भी उनके कुछ भक्त गए थे वन में। तब भगवान श्री राम ने इनको बोला था कि नहीं, पुरुष और महिलाएं वो वापस अयोध्या चले जाएं, और पुरुष और महिलाएं सब वापस गए थे, पर फिर भी उनके पीछे और कुछ लोग गए थे। वो सर और कोई नहीं थे, वो किन्नर थे, ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर जिसे हम कहते हैं। उनके प्रेम और उनके सेवा से प्रभावित होकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको आशीर्वाद भी किया था सर। मैं सर आपको कहना चाहूंगा
कि ऑल्दो आई फील प्राउड कि दोनों सदनों में ट्रांसजेंडर्स को इक्वल राइट देने के लिए या उनकी आइडेंटिटी को पहचान देने के लिए हम दोनों सदनों में बिल तो पास कर चुके हैं, काफी वक्त हो चुका है इसको, लेकिन अभी भी सही मायने में इसको हमने लागू हर जगह में किया नहीं है। सर, ट्रांसजेंडर्स को आइडेंटिटी का स्वीकार करने का या उनके अस्तित्व पर सवाल उठाने का हमें हक भी नहीं है सर, फिर भी हम उस पर सवाल उठाते हैं और बोलते हैं। सर खत्म करूंगा एक मिनट में सर। जी सर, वो चाहे रामायण से लेकर महाभारत तक हो, मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक हो, और आज भी राजनीति में, कला क्षेत्र में, और सर यहां तक कि न्यायपालिका में भी इनकी भूमिका, इनके हुनर से सूझबूझ से योगदान बहुत रहा है सर। एयरपोर्ट्स में, अस्पतालों में, गवर्नमेंट ऑफिसर्स में, पब्लिक प्लेसेस में, रेलवे स्टेशन पे सर कहीं पर भी इनके लिए सर टॉयलेट्स नहीं है आज भी। ये मेरा रिक्वेस्ट है सर, और लोकसभा राज्यसभा में इनका प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए सर। सर दोनों सदनों में इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तभी इनके लिए हम आवाज और इनके आइडेंटिटी के लिए लड़ सकते हैं। आर्टिकल धन्यवाद माननीय सभापति जी। मैं आपका और आदरणीय स्पीकर साहब का धन्यवाद देता हूं। एक मिनट, इतना लंबा नहीं करना चाहिए जी, प्लीज। खत्म करूंगा सर। सर इस विषय को श्री रामचरितमानस से एक श्लोक के साथ में समाप्त करना चाहूंगा सर, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोही परम प्रिय सोई। सर जब श्री राम ने इनमें कोई अंतर नहीं रखा है, समान इज्जत दिया। आप शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्पीकर साहब। मैं आपका और स्पीकर साहब का धन्यवाद देता हूं कि मेरा खरगोन बड़वानी जो लोकसभा है वो मध्य प्रदेश में पश्चिम निमाड़ के नाम से पहचाना जाता है। निश्चित तौर पर पश्चिम निमाड़ ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्र है, यहाँ पर कृषि के कार्य ज्यादा किए जाते हैं। पहले गांव थे, गांव अब शहरों की स्थिति में बदल गए हैं, और वहां पर आवागमन के कारण कई बार ट्रैफिक जाम भी होता है। कई बार हमारे बड़े बड़े जो शहर बन गए वहां पर रास्ते जाम हो रहे हैं, जिससे हमारे नागरिकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। मेरे संसदीय क्षेत्र में खरगोन जिले के कसरावत, खरगोन, गोगावा और बिस्टान, ऐसे ही बड़वानी जिले के खेतिया, निवाली, पानसेमल, सेंधवा, अंजड़ और राजपुर, यह बड़े शहरों की स्थिति में आ गए हैं और जहां पर ट्रैफिक जाम रहता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आह्वान करता हूं कि इन सभी शहरों में बाईपास की स्वीकृति दी जाए, जिससे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो सपना है कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ बड़े रोडों का निर्माण, इसमें इस सब शहरों को राजमोहन उन्नीतन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। Thank you very much, Speaker sir. The wild boar is classed at least concern for wildlife protection by the International Union for Conservation of Nature, and it has become an invasive species posing threat to crops and human life in parts of its introduced ranges. Sir, in Kerala, wild boar has turned into a menace for the farmers as animal has been causing widespread crops loss in the state. Recently, wild boar attack claimed several lives in my constituency, Kasaragod. The government of Kerala has approached the Wildlife Institute of India, Dehradun, for classifying wild boar as a vermin. Boar is declared vermin under the Wildlife Protection Act. It can be culled. Since the act is a central act, only the union government can modify it and classify the animal. Sir, the central government may be notification declare any wild animal other than those specified in Schedule 1st and Part 2nd of the Schedule H of the Act to be vermin for any area for a given period of time. As long as the notification is in force, such wild animals shall be included in Schedule 5 of the Act, depriving them any protection under the Act. Sir, the wild boar is classed at least concerned by the International Union for Conservation of Nature, and it has turned a menace to the farmers in Kerala, especially Kasaragod, my constituency. So I urge upon the union government may be pleased to declare wild boar as a vermin in Kerala. Thank you very much, sir. श्री फजलुर रहमान जी, आप अनुपस्थित थे उस समय। आपने मौका दिया। मान्यवर, मेरा जिला सहारनपुर की मेरा सहारनपुर की बेहट तहसील उत्तराखंड की पहाड़ियों से सटी हुई है। इस वजह से बरसात के दिनों में पानी बहुत ज़्यादा आता है और उसकी वजह से
जो बहुत सारी नदियां हैं उस बेहट तहसील के अंदर, वो एक इलाका दूसरे इलाके से कट जाता है। तो कुछ नदियों पर पुल बनवाना बहुत जरूरी है, जिसका जिक्र मैं यहाँ करना चाहूँगा। गांव मुर्तजापुर मसखरी नदी के ऊपर एक पुल बनवाया जाए और साथ में बादशाही बाग में भी एक पुल बनवाने का कृपा करें। कुर्डी खेड़ा भी इसी तरह का एक गांव है। इसके अलावा रामपुर तहसील में एक इलाका है कल्लरपुर, गांव कल्लरपुर, जिसका 20 साल से पुल टूटा हुआ है। उसका पिछली दफा यहाँ एक ये इशू उठाया था, उसका एस्टीमेट बन चुका, लेकिन पैसे की ग्रांट नहीं मिली। इसलिए आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि पैसा ग्रांट करे और उस पे जो सूचना हो सकती है वो आप श्री संतोष कुमार जी बताने का। सभापति महोदय, शून्यकाल में बोलने के लिए अवसर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लोग सहरसा पूर्णिया रेलखंड अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र पूर्णिया में स्थित जानकी नगर रेलवे स्टेशन पर जानकी एक्सप्रेस 15,283 और 15,284 एवं कोसी एक्सप्रेस 18,625 और 18,626 के ठहराव की मांग स्थानीय लोगों के द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही है। इनकी मांगों को पूर्णतः वाजिब है। जानकी नगर रेलवे स्टेशन राजस्व के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण स्टेशन है और इस मांग को मैं भी संसद और रेल मंडलों की बैठक में उठाता रहा हूं। उपयुक्त ट्रेनों के ठहराव की मांगों को लेकर स्थानीय संगठन रेल विकास मंच के द्वारा 22 मार्च 2022 को पूर्व सूचना देने के बाद जानकी नगर रेलवे स्टेशन पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और सूचना मिली है कि धरना में शामिल 150 लोग और को नामजद और हजारों लोगों को अन्य करके रेलवे थाना में एफआईआर किया गया है, जिसमें आम लोगों में भय व्याप्त है। जहां तक मेरे पास जानकारी है, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। रेल की संपत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसे में दर्ज एफआईआर को पुनर्विचार की आवश्यकता है। साथ ही आपसे के माध्यम से मांग करते हैं कि उपयुक्त दोनों ट्रेनों का ठहराव जनहित में जानकी नगर सुनिश्चित किया जाए और इस केस को वापस लिया जाए जो वहां के लोगों पर किया गया है। यही आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं, रेल मंत्री जी से मांग करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय जी, आपने मुझे इस पर 0 आवर में बोलने का मौका दिया। सर, मैं सदन का ध्यान प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आकृष्ट करना चाहूंगी, जो घर बनाने में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनाने में सामग्री लगती है, जैसे कि सीमेंट, ईंट, सरिया आदि, इनके दामों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती आ रही है। लेकिन जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो धन आवंटित किया जाता है उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है, जिसके तहत जो लोग घर बनाते हैं या तो उनके घर अधूरे रह जाते हैं या तो घर बनाने के लिए उनको काफी ऋण लेना पड़ता है। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इनके लिए कम से कम या तो जिस रेशियो में सामान की वृद्धि हुई है उसी रेशियो में उनके धन की भी वृद्धि हो जाए। साथ ही साथ 2 और पॉइंट ऐड करना चाहूंगी सर, कि प्रधानमंत्री पॉइंट बोलना चाहिए सर, 2 पॉइंट से जल्दी सर, जो सूची बनाई गई है लाभार्थियों की 2018 के तहत, उसमें कई नामों की कटौती की गई है, कई नाम नहीं है। तो मैं अनुरोध करती हूं कि जिला स्तरीय कमेटी बैठाई जाए या सर्वे किया जाए जिसमें इन नामों की वृद्धि की जाए और लोगों पात्र लोगों को इसमें ऐड किया जाए सर। और जो घर गिर जाते हैं प्राकृतिक आपदा के कारण, इनको भी फास्ट ट्रैक क्या कोई सर्वे कराया जाए, इन लोगों के भी नामों को ऐड किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, इसलिए 2 मिनट अधिक मांग रहा हूं सर आपसे। सर, देयर इज अ ह्यूज अनसर्टेनिटी एंड कंसर्न अमंग्स द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स who are pursuing the medical education, especially after the COVID pandemic and the Russia-Ukraine war. The situation has been very pathetic. Sir, 90%, more than 90% of the students have taken heavy educational loans and their future is uncertain, sir. Sir, the COVID-19 induced pandemic has destabilized the practices in the educational sector. With the new normal changing, the practices and norms of the education sector, there has been a major shift in the medium of teaching. The shift to online classes has greatly lauded and has been benefited to the students to continue their education while these online classes.
serve their purposes of teaching theory subjects. The students have enrolled for degrees such as medicines and other science courses are being deprived of practical classes which are vital for their practice. Sir, especially after 2 years after the pandemic, foreign medical graduates enrolled in universities, especially in China, Ukraine, Philippines, etc., have been going through a tough time, mounting mental stress, worrying about uncertainties in completing their degree courses. Most of them are at the verge of a suicide. Sir, they have a lot of current travel restrictions. As per a reply from the Directorate of Health Services, Kerala, assistance in clinical training can be provided with appropriate permission from the host university, which the students have obtained. Therefore, I request the union government and state government to look into the matter so that suitable help can be provided to the students in any possible form for the hands-on training in authorized hospitals in respective states, and also to amend the National Medical Commission. सभापति जी, मैं आपके माध्यम से एक पर्यटन मंत्रालय के तरफ से 2016 में स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की गई थी और उस योजना के अंतर्गत पूरे देश के अंदर जितने धार्मिक स्थल थे उनके मरम्मत के लिए और उनको ठीक से बढ़िया से वो बन सके, पर्यटन के रूप में वो विकसित हों और जो धार्मिक मान्यता के अनुसार जो पौराणिक इतिहास के हिसाब से देवी देवताओं के स्थान थे उनको विकसित करने के लिए स्वदेश दर्शन योजना बनाई गई थी और उसके अंतर्गत सीधे सांसद के रिकमेंडेशन पर उनके क्षेत्र में मंत्रालय से पैसा भेजा गया था, लेकिन बाद में उसमें राज्य सरकारों को इन्वॉल्व कर लिया गया, जिसके कारण सांसदों के सीधे रिकमेंडेशन पर स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत अब पैसा हम लोगों के रिकमेंडेशन पर नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि जिस तरीके से 16 में योजना लॉन्च हुई थी और सांसदों के संस्तुति पर उनके क्षेत्र में पर्यटन विकास के लिए और धार्मिक स्थल के विकास के लिए पैसा जारी होता था, वैसे ही इसको जारी किया। श्री राम शिरोमणि वर्मा जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें बोलने का अवसर दिया। सभापति महोदय, भारत सरकार की नौकरियों में जनवरी 2004 से तथा उत्तर प्रदेश सरकार की नौकरियों में अप्रैल 2005 से पुरानी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है और इसके स्थान पर शेयर बाजार आधारित जोखिमों के अधीन नई पेंशन प्रणाली लागू कर दी गई है, जिस कारण देश के करीब 3 करोड़ 50 लाख लोग सीधे प्रभावित हो रहे हैं, जिससे शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों में भारी रोष व्याप्त है और पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में आंदोलन है। कोरोना रूपी वैश्विक महामारी के दौरान शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारियों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पूर्ण लगन से मानवता की सेवा की है। देश में नई पेंशन प्रणाली लागू होने व निजीकरण के कारण आज भारत सरकार के शिक्षक, कर्मचारी व अधिकारी अपना पूरा जीवन देश को अपनी सर्वोत्तम सेवाएं देने के बाद भी अपने बुढ़ापे को लेकर चिंतित हैं। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि जनहित में, देश हित में निजीकरण को रोकने व देश के करोड़ों शिक्षकों, कर्मचारियों व अधिकारियों की सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा हेतु उनके बुढ़ापे की लाठी व पुरानी पेंशन व्यवस्था। Thank you, sir. Sir, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme plays a significant role in addressing the issue of rural distress. Millions of rural workers in the country depends the scheme for their survival. Sir, NGNREGs had saved the economy during the lockdown. Still, the wages paid under NGNREGs remains below the minimum wages in many states. There is continuous demand from the beneficiaries and various state governments for revision of wages and increase the number of guaranteed working days under MGNREGs. I request the government to consider revised wages paid under this scheme. Considering the distressed situation, it is necessary to increase employment days to 200 in a financial year. Budget allocation for the scheme should be enhanced for enabling the same. Sir, complaints about delay in the distribution of wages are reporting from many states including Kerala. Government should take
review on this and necessary measures to be taken to resolve Shri this Dhal issue. Singh Bisen Thank ji. you, sir. महोदय बहुत बहुत आपका धन्यवाद। सभापति जी, मैं एक ऐसे विषय की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि इस समय पर पर्यावरण को बचाने के लिए और संरक्षित रखने के लिए बहुत सारी चिंताएं की जा रही हैं। प्रत्येक ग्राम में जो छोटे बड़े झाड़ के जंगल के नाम से राजस्व की जगह पर सारी भूमियां अंकित हैं, पर अब लगातार धीरे धीरे करके सारे वृक्ष जो है समाप्त होते चले जा रहे हैं, लोग उन पे अतिक्रमण करते चले जा रहे हैं और गांव में भूमियां बची नहीं है और यहाँ तक कि वृक्षों की संख्या भी, लोग खेती करने के चक्कर में वृक्षों को भी लगातार काट रहे हैं, जिसके कारण से हमारा पर्यावरण बहुत प्रदूषित हो रहा है, शुद्ध वायु नहीं मिल रही है। तो सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस राजस्व की 1 ग्राम की भूमि को, इसको अतिक्रमण से बचाने के लिए इसका पूरा फेंसिंग किया जाए। वन विभाग इसको केवल फेंस कर दे, इसका संरक्षण कर दे, तो जितना रूट स्टॉक है वो अपने आप वृक्षों में तब्दील हो जाएगा 2-4-5 साल के अंदर। और जहां यदि ऐसी स्थिति नहीं है, लोगों को आवास की दिक्कत है, बहुत सारे लोगों ने आवास उस पर कब्जे कर लिए हैं, तो उसको परिवर्तित करके लोगों को आवास बना के दिए जाने के लिए भूमि भी उपलब्ध कराई जाए। बहुत बहुत सभापति महोदय धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा लोकसभा क्षेत्र बस्तर के 6 जिले बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर में महाराज जाति की जनसंख्या लगभग 10 लाख से अधिक है, जो कि बहुत पिछड़े व गरीब हैं। वे एससी में आरक्षण को लेकर लगातार मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को महाराज जाति को अनुसूचित जाति के सूची क्रमांक के सरल क्रमांक 33 में महार मेहरा के साथ प्रतिस्थापित करने हेतु प्रस्ताव छत्तीसगढ़ शासन ने दिनांक 3 जून 2021, 10 जनवरी 2022 व 28 जनवरी 2022 को केंद्र सरकार के समक्ष सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास भेजा है। अतः आपके माध्यम से मैं निवेदन करता हूं माननीय सभापति महोदय कि महाराज जाति को बहुत पिछड़े और जरूरत है, उनको एससी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार तत्काल पहल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सिखा के 9वें गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने कहते हैं कि हिंद की चादर, गुरु तेग बहादुर, उन्होंने 400वां साला जिहड़ा दिहाड़ा है वो हरियाणा साडे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी उन्होंने मनाने का उपराला किया पानीपत च। तो मेरी आप जी के माध्यम तो रेल मंत्री जी नूं विनती है कि जिहड़ी नांदेड़ साहब एक्सप्रैस ट्रेन है जी, वो साडे नरवाणा, जिहड़ी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी सिरसा है, उत्थों जिहड़ी है नरवाणा तो भी होके गुजरती है। तो मेरी आप जी के माध्यम तो रेल मंत्री जी नूं विनती है कि उत्थे जिहड़ा स्टॉपेज जरूर दिता जाए, ताकि जिहड़े भी साडे सिख बंधु ने वो जिहड़े नांदेड़ साहब पहुंचते हैं, नांदेड़ साहब जिहड़ा जी उत्थे 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी जिहड़े सी वो ज्योति जोत समाए सी, वो बहुत बड़ा तीर्थ जिहड़ा है सिखां दा है। तो आप जी के माध्यम तो मेरी रिक्वेस्ट है जी, उत्थे जिहड़ा है ना, उत्थे स्टॉपेज दिता जाए। 24 अप्रैल नूं पानीपत च बहुत बड़ा उपराला जिहड़ा है वो आपां कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी। सभापति जी, बोलने का मौका देने के लिए आसन को मैं धन्यवाद देता हूं। सभापति जी, मिनिस्ट्री ऑफ डॉनर में नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, ये स्कीम में मेरा जिला बरपेटा के 2 स्कीम गया था, असम सरकार ने भेजा था। एक है स्टेट हाईवे नंबर 2 के बोरटरी से ताराकंदी, मुहिया, मोइनबोरी होकर ताराकंदी तो के रोड, जिसका एस्टीमेट है 45 करोड़। और ये रोड होने से वहां के कृषि क्षेत्र का भी विकास होगा और हदीरा चौकी, जहां पे मान और अहम का लास्ट बैटल, लास्ट युद्ध हुआ था, वो पर्यटन क्षेत्रों का भी विकास होगा। और दूसरे एक प्रपोजल गया था दौलगवा सौसीमाना रोड, इस पे एक आरसीसी ब्रिज 1/1, जिसका एस्टीमेट था 79.80 करोड़। लेकिन दुख के बात है अभी तो ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ डॉनर ने सैंक्शन नहीं किया। मंत्री तो बदल हो गया, पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह था, अभी जी किशन रेड्डी साहब है। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं आपके माध्यम से, ये दोनों, एक जो बोरटरी से ताराकंदी भाया मुहिया मोइनबुरी रोड और सौसीमाना दलगांव रोड के ये ब्रिज, दोनों जल्द ही जल्द सैंक्शन होना चाहिए। धन्यवाद सभापति महोदय।
प्रज्ञा ठाकुर जी, संक्षेप में तुरंत। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय जी। मैं गौवंश के अवरुद्ध करने पर विषय हम रख रहे हैं अपना। महोदय, गौवंश का जो जिनको सांड कहते हैं हम, उनका बधियाकरण किया जा रहा है और गौवंश को, देशी गौवंश को रोका जा रहा है। जिनको जर्सी कहते हैं वो, उनके दूध में कोई भी गुण नहीं है लेकिन दूध अधिक देते हैं, इसलिए उनको तो संरक्षित किया जा रहा है। परंतु जिनके जो देशी गौवंश है, देशी गाय, उनके दूध में जो गुणों से भरपूर है, रोम रोम में औषधि है, उनका वंश रोका जा रहा है और बधियाकरण करके उसको अवरुद्ध किया जा रहा है। हमारी गौ माता है वो, और हम उनके गौवंश को रोकने न रोका जाए और उनको संरक्षित किया जाए, रोड पे ना मारी जाए वो हमारा जी माधव जी। Sir, India has committed towards net zero emission by 2070 and by 2030 achieving non-fossil fuel energy capacity of 500 gigawatts. The government's push to utility scale projects is appreciated, sir. However, the rooftop solar program in the country has failed to pick up, sir. Sir, in this regard, I would like to request the government of India easy financing and also unrestricted net metering and an easy regulatory process could easily spur up the sector. Public financial institutions and other key lenders could also be mandated to lend to the segment, sir. Thus, I would request the Minister for New and Renewable Energy to simplify the process and reform the rooftop solar program to increase share of the residential sector in the total solar power capacity. धन्यवाद सभापति महोदय, मैं बहुत आभारी हूं आपका, आपने समय दिया। देश के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय ने एडीप योजना के तहत देश के दिव्यांगों को आवश्यक उपकरण दिलाने में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनकी प्रेरणा से मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र सतना में 23,000 से अधिक एक दिव्यांगों का पंजीयन करके उनको कार दिलाया, मोटराइज ट्राईसाइकिल लगभग 1400 से अधिक तथा अन्य उपकरणों में आज देश का सबसे अग्रणी जिला सतना बन चुका है। मैं सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री जी से दिव्यांगों का राष्ट्रीय संस्थान खोले जाने की मांग करता हूं। साथ ही एलिम्को कंपनी के उपकरण सुधार हेतु सतना, मैहर, चित्रकूट में आश्रय केंद्र खोले जाने की भी मांग करता हूं। और मैं सभी दिव्यांगों को पूरे देश भर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी की आयुष्मान योजना है उसके साथ सभी दिव्यांगों को जोड़ा जाए, ऐसी मैं मांग करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा की कार्यवाही मंगलवार 29 मार्च 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।